अस्सलाम वालेकुम सर। Assalamu alaikum. Assalamu alaikum everyone. कैसे जनाब? How are you? Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum. Yes, sir. How are you? Fine, Assalamu alhamdulillah. alaikum. Fine, Very good. alhamdulillah. Very happy to see everyone here, and very excited to share some good points which can be helpful आप लोगों के लिए. And बहुत सारे दोस्त who cannot attend via Zoom, we first time making this possible through this YouTube as well, so anyone can watch from YouTube, no problem. So if any of your friends want to watch, make sure कि आप उनको बता दें कि YouTube पे भी ये live आप देख सकते हैं. If anything drop, like internet drop or anything happen, this will be available as a recording as well. First मैं कुछ slides present करूँगा उसमें. I will present some slides, and after that we can have a question answer session. If anyone has a burning question, you can write your question in the chat box, and we can answer those questions later after the presentation. I'll just go on a mute for a quick session.
अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? इरफान हाशमी। Yes, sir. जी सर, आ रही है ना? Okay, that's very good. आ Thank रही है you. सर। Thank you very much for everyone joining us today. We just organizing more people to log in because we are expecting quite big numbers today. So I'm just waiting for a few more. Let's wait for a couple of more minutes. कैसे हैं जनाब आप लोग? How's your day? Was it a working day? I can see some people working in the working uniform in their white dresses. Pharmacy shelves can be visible. Zoeb, how are you? Alhamdulillah, sir. I'm fine. What about you, sir? Yes, I'm well, very excited. I'm very excited because, yesterday Lahore Qalandar has won the match title. तो लाहौर कलंदर की एक शर्ट है मेरे पास इस वक्त जो मैंने रखी हुई है अपने पास। और सर, आपके पास कैब कराची की है? क्या कराची की है, लेकिन कप्तान जो है वो अपने पास होता है हर वक्त। कप्तान जो है ना, अफरीदी जो है, शाहीन अफरीदी, उसकी शर्ट है मेरे पास, तो मैंने पहनी हुई है थोड़े एहतियात से। और बड़ी बात म्हणजे हायरिंग चला यूएसए से ये मगर मीटिंग पाने ये तम खतर के एलिजिबिलिटी छ अगर आस कान त आस करो त सॉरी क्या वीजा 48। ओके, हाँ, कराची की मैंने इसलिए क्या पहनी है क्योंकि मैं ओरिजिनली पाकिस्तान कराची से हूँ, ठीक है। तो कराची ने एक ही दफा पीएसएल जीता है, तो लेकिन आफरीदी जो है वो फेवरेट प्लेयर है और उसने कल जो खेला है वो जबरदस्त डिस्प्ले किया। वो इनिंग से पहले लोग कह रहे थे क्या वो बैट्समैन बन गया है, लेकिन वाकई में उसने मेहनत बहुत की है। आउट ऑफ बाउंड्स जाके खेला है वो। लेकिन बैटिंग तो की है ना उसने, 50 रन बना दिए 15 बॉल पे उसने। जी बिल्कुल। और रन आउट भी किया उसने शायद ना आखिर में। सर मैं मैच देख नहीं सका, लेकिन मैं बस स्टेटस ही देखता रहा हूँ। हाँ, वो लास्ट में रन आउट बिल्कुल बिल्कुल आउट किया उसने। जी, शाहीन भाई को मैंने पर्सनल ग्रीटिंग्स भेजी हैं अभी थोड़ी देर पहले। तो अच्छा अच्छा है कि वो बहुत जबरदस्त काम किया। कंसेक्यूटिव जीतना बड़ी बात है भाई, बिल्कुल सर। और 1 रन से मैच जीतना, तो ये तो क्रिकेट की जीत है। और वो भी मुल्तान सुल्तान से। लास्ट ईयर भी सेम 1 रन से जीते थे लाहौर, लास्ट ईयर भी 1 रन से जीती थी, सेम सिचुएशन थी बिल्कुल। नुमान, और थैंक यू वेरी मच। कल शाहीन अफरीदी तो जीतता है। कल शाहिद अफरीदी जो लेजेंड लीग चल रही है उसमें पाकिस्तान लेजेंड लीग जो एशिया लाइंस है वो भी क्वालिफाई कर गई है फाइनल के लिए। अरे वाह, शाहिद अफरीदी का उसके वो जो कहाँ उसका भी कतर में हो रही फाइनल है? है। जो हाँ कतर जी, में हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जबरदस्त। Can I ask, like, how many people previously have joined our? Can you hold for a second? I'll just answer this. Zohib, where are you, Zohib, at the moment? कहाँ पे आप Zohib? I'm at home, sir.
Okay, no, I mean, which city? Which city in Pakistan or which city in Saudi? Sir, it's Miawali. Okay, acha, okay. So let's start the program. I guess that's nearly 10 minutes. मेरे पास रात के 8:40 हो रहे हैं और आपके पास I think 3:10 हो रहे होंगे शाम के. 3:10. And in Dubai, it's like 2 o'clock. So should we start? Assalamualaikum, sir. Yes, walaikum salam. Thank you. चलिए हम सब अगर everyone can go on mute and we can start the proceeding. I think Zohaib will start the proceeding for the day and then I'll carry on the slides and then we will go further. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum everyone and warm welcome. I'm your host Zohaib Tahir and today's webinar is all about pharmacist pathway to Australia. For this purpose, we have our very special guest, Sir Irfan Hashmi. He is a community pharmacist based in Adelaide, Australia from a huge time period of 20 years. He, along with his wife, Sobia Irfan, owns 7 pharmacies in regional South Australia and Victoria. He has done his B Pharm from University of Karachi in 1997. After that, in 2003, he moved to Australia for further studies. Where in 2009, he got Pharmacist of the Year award by the Pharmaceutical Society of Australia. Sir Irfan Hashmi not only encourages pharmacists to apply and clear caps, but also promotes and supports overseas pharmacists there in Australia. Sir, Assalamu alaikum, and thank you so much for your precious time. Walaikum salam. Sir, firstly, people like me and who are following you want to know about free flu vaccination drive of COVID affectees. Then we will move forward. Okay. Thank you very much, Zohaib. Thank you very much for everyone attending and coming and making a time possible. I know technology make it possible very easy for us. We can log in and we can listen and we can learn. Thank you very much for lovely introduction, Zohaib, and thank you very much for thinking about that we can gather a number of overseas pharmacists, especially from Pakistan, to learn how we can proceed to Australia. So the question that you asked is, what was the drive through like free flu vaccine that we have done here? When COVID came, lockdown came, and everyone was staying at home except pharmacists or other health professionals. And there was a number of people in our Adelaide city where I noticed that especially multicultural, mean that people who are new in this country, especially who were here for a student visa or who were here for some parent visa, or they were speaking different languages because they were from different countries. So I feel that I need to go out and tell them about the vaccines. And I thought that flu vaccine is one of the key part which I can give this message to many multicultural people. And flu vaccines are not free in Australia at that time. So I actually arranged a stock of quite a number of vaccines, and I went to different multicultural community events where I informed that vaccine is important and pharmacists can provide the vaccine. So I actually did 2 things. One is that I was giving free vaccine and I was educating people about pharmacists, what pharmacists can do. As a pharmacist, health professional, they don't need to rely on simple minor elements to go to the hospital or go to the doctor. So that was one major precursor that I was educating them, and I was making them prepare because COVID was new. So we were all aware that COVID vaccine was coming or will be coming in future. So I was trying to make sure that they are aware about the vaccine, significance of vaccines. And so I provided a number of vaccines at that time, maybe 2,000 vaccines. Clinics in 19 or 20 clinics we did in Adelaide in different places, and we give away vaccines. And that way people know that pharmacists can give vaccine as well. Before that, many multicultural people was not aware. They only think that we need to go to the GP and get the vaccine. So that was the reason that I took that initiative, and it became helpful for those who can't afford, and also pharmacist profession become important for those people as well. And sir, you have been a guest speaker in 2 pharmacy conferences for Pakistani pharmacists with a Pakistani High Commissioner in Australia, Canberra, in January 2023 and September 2020. Yes. What was your experience?
That was amazing experience talking with Pakistan Embassy as a guest speaker and also with other guest speakers. I feel huge honor, first of all, that Pakistan Embassy trusted me and my work previously, and they invited me to talk with large audience. So my experience was that when we speak on a regular webinar, as compared to when we speak from an embassy webinar, people feel that is more important, and that message goes wider, and people trust. The trust become more element, because many people think that if a webinar is happening, there must be an agenda behind, there must be maybe a catch, or people are earning money. So these kind of things, which actually I noticed as compared to the embassy seminar, everyone think that, oh, this is significant, important. And when High Commissioner was advocating that Australia need pharmacists, Australia need pharmacists in the regional positions, regional community positions. And also in that webinar, the last webinar, if you have seen or if you have not seen, the recording is still available. You can see Pharmacy Guild president is there, Pharmaceutical Society of Australia president was there, and Terry White is one of the leading brand company here who got more than 600 pharmacies. Their chief pharmacist, Brenton, was also there, speaking widely that we welcome overseas pharmacists in this country. So that was huge success of that webinar. And then after that, Pakistan media took that to a very next level, showing that. So I think my experience with those two webinars back in 2020 was first one, and this one was great. I received a lot of questions, a lot of answers. So we are now reaching out to a number of people. The reason behind is that the Australian government is actually the new Australian government, which came into power last year, the Labour government, Albanese, the Prime Minister Albanese, he has declared that in this program, which is 2023 to 2024 program, this is the government paper of immigration, which tells that they're going to give 200,000 visas for overseas people in different professions. 2 लाख वीजे जो हैं वो ये देने वाले हैं अभी. तो 2 लाख वीजे में से क्यों ना हम ये मैसेज दें अपने फार्मासिस्ट कम्युनिटी को कि जब फार्मेसी गिल्ड का प्रेसिडेंट लाके कहता है कॉन्फ्रेंस में हाई कमीशन के साथ बैठ के कि दे आर 3,500 पोजीशंस वेकेंट इन आवर कम्युनिटी फार्मेसी, 3,500, तो इजीली 3,500 लोग इस 2 लाख वीजे को ग्रैब कर सकते हैं. तो दिस इज समथिंग huge opportunity at the moment. That's the greater message that I want to give to everyone who is listening, either you're from Pakistan or either from any country. I know that this conference will be watched by many pharmacists from Pakistan, many pharmacists from South Africa, many pharmacists from Zimbabwe, many from India. So whoever listening this message, this is something you can note down and record somewhere in your diary, that this is not just a gimmick that we're giving. It's really significant, important. You can even go on and find this statement from Australian government. Even Australian Prime Minister, Mr. Albanese, announced this pharmacist need in his speech. So pharmacist is quite in need, and the significance become huge importance because of that conference that was arranged recently by Pakistan Embassy. So moving forward, Yes, now we would like to know about the caps, how to apply, and what is the procedure, what kind of test we will have, what kind of syllabus we will have to follow. Okay, I have a slide which I like to share for that purpose. Yes, sure. Okay, I'll just share my screen. Can everyone see this screen which says pathways, pharmacist pathways to Australia? Yes, sir. Thank you. Okay, so this is a slide which I actually show in most of my presentation. This is the exact same slide which I used in our embassy webinar as well. Okay, so okay, I'll just do one thing. First, I will discuss about this regulatory
the regulation or the regulatory body that actually allow pharmacists to work as a profession. So CAPS is one of the first element where pharmacists working overseas, like out of Australia, when they pass the CAPS exam, the degree become equivalent to Australian degree. And then they can apply for pharmacist registration. So that is the first part. And in that part, the question that you asked, what is a CAPS exam? So this is actually including this overseas pharmacist journey to Australia. And I will discuss about the time and cost for registration purpose in Australia and different areas where pharmacists can work, and some plans that I will discuss in 2023 or maybe later next coming years, because there's a huge new opportunities coming. All right. So I'll go for the next slide. And also rural pharmacies is significant important for overseas pharmacists. Everyone sitting outside of Australia, we think that there are two main cities in Australia. One is Sydney or one is Melbourne. So keeping in mind that we are not targeting those two places. We are here to discuss the job opportunities which are located in regional and rural part of Australia. So this is the main area of focus or target, that these 3,500, whatever the jobs are vacant in there. So these jobs are not vacant in Melbourne City, or these jobs are not vacant in Australian Sydney. So they are not in the major cities. Okay, so we need to target. So we need to be focused in the start. Okay, where are we coming or where are we going to go to work? So this is the first slide, which actually tell you the outline. Okay. So this Australian Pharmacy Council, which is the main body which actually run this exam, CAPS exam. And this is the authority which actually allow overseas pharmacists to judge or check their eligibility. And we pharmacists, like I am from Pakistan, so I came into Australia through the same process 20 years back. And everyone who is attending exam from Pakistan, they come under this category, which is called CAPS, which is Knowledge Assessment of Pharmaceutical Science, which is Stream A. Pharmacists from Canada or UK or United States or Ireland, they have a different category. They call it COAP exam. So they have a slight advantage as compared to our degrees, as compared to Pakistani degree or any other degree. So this is what only difference. Otherwise, they have to do the same internship program. Okay. And the pharmacy board is the regulatory board which actually allow pharmacists to register and practice as a pharmacist. So CAPS is the body who actually assess your qualification, and when you pass, your degree become equivalent to Australian degree, and then we apply for registration to this body called Pharmacy Board of Australia, and they have different guidelines, they have standards. So these are the second step. When we pass the CAPS, then we go for this option. Okay, I will go straight to the CAPS eligibility. So when a pharmacist from Pakistan, let's say, if you are a fresh graduate, when you have your mark sheet of your performer, which is like a 5-year performer, and you have your degree, for example, after some time university issue your degree. So there's second document. And third document is that when you apply for your pharmacy council certificate in your country, I think it's called category now these days. So those three documents are required for CAPS to check your eligibility. And additionally, your passport, your photograph, and another photo ID could be a CNIC English copy. So these 4 or 5 documents are required. No attestation from anywhere, no attestation, just a scan copy. You can go on APC website, make your portal, and submit your documents by scanning them through this online system, and use your Visa, MasterCard, and pay this fee, which is $1,310. So once you do that, CAPS websites say that it takes 3 months, sometime or 2 months, but these days they are processing that very quickly. In 6 weeks' time, you will receive an email from CAPS. They will say, yes, we have checked your documents. They know many Pakistani universities, so they know how good Pakistani pharmacists working in Australia. So they're already aware about that. They know that English is one of the good element with Pakistani pharmacists. We just need to learn how we talk, how we improve our communication skill as compared to the Australian standard. That's we need to do. That's only we need to, as compared to any other national countries, like some countries where education is not in English. So they
actually take a lot of time because they have to learn English. But over here in our situation, we are already versed in English. We just need to elaborate. We need just to increase that, learn that for a high level, which probably you can do IELTS or PTE test with 7 bands or 65 or 75 band, but that's not required when you're submitting these documents. All right. An exam, how we do the exam? Exam is available 3 times a year: March, July, and November. So 3 times one can attend this exam. This exam is available in different centers around the world. Pakistan is also included. If you are in Dubai, you can attend in Dubai. If you are in Europe, you can attend in London, Oslo. New center is started in Turkey, and Oman, Muscat, they all have centers, right? Okay. Or in India, if you're in India, Delhi is the big center there. There's a big center in New Delhi. Fees for exam is $230 one time. If you pass, you get the degree assist equivalent to Australian degree. Comparing this cost versus comparing the cost of a university student who has spent $60,000 to $70,000 to get that degree in Australia, this amount is negligible. $2,000 or $222, $30 is nothing as compared to $60,000, $70,000 for a student who spend and earn the degree in Australia for 4 years. So this is a huge advantage that I would like to mention. Anyone who's watching this presentation, when people say that this is a very expensive thing to do, it's not expensive. The value that you're getting is significant, huge. Are you agreeing on this, or is that's not relevant for anyone today? Completely agree. That's good, Ahmed. That's good. Good to hear. Anyone else? Because I know that everyone say, "Oh, this is very expensive exam. I can't do that. I don't have money." But look at the advantage. Look at the value. Yes, sir. I agree, sir. Yeah. So that's a hurdle, but you will be earning same amount of money what Australian pharmacists will be earning. So just imagine that you will spend that money and you will come to the level where earnings will be same. Nobody will ask you when you become registered pharmacist from where you did your qualification. There's no difference when you become registered pharmacist. Yeah, I would request everybody to unmute if it's possible. Okay. Please, let's mute everyone. Yeah, Can we mute everyone? Sir, please mute these guys by yourself. okay, I'll see. Let's mute everyone. That Yes, means yes, you I'm mute doing it. everyone. Give me a second. I'm just doing it. Okay, there's the option which says mute everyone. Yep. Okay, so it's mute. Thank you, Frank, for reminding me. Yes, I'm sorry about that. I know that so when we log in from our phone, we forget to put mute option there. Okay, I can see a lot of questions coming. That's good. You can keep adding your question in the chat box. We will answer those questions. Not an issue. Okay, I'll go back to my slide. Okay. So these are the exam dates. You can check on the website the latest dates. All right, and exam centers. There are examples of exam centers. I know we have some friends from Zimbabwe, possibly, or in Nigeria, or I know the exam center is available in South Africa, Harare, and you can see this list live on the website as well. So there's no issue. All right. Yep, this is later. Okay, I'll just change so this is all about CAPS and studying CAPS. I think Zohaib also asked that study of what we need to study and how we need to study. On the CAPS website, there's a syllabus given, which
anyone can log in, and also they can download those initial sample papers, which you can have an idea what questions you will get. Because in exam there will be two papers, like paper one, which is day one. You go and attend the exam for 100 MCQs for 2 hours, and on day two you go another time to the center and attend the second paper, which is again 100 questions. All right. So this is all about the caps. So I'll go for the next question from Zohaib, if Zohaib has another question, or I will check for any other question from him. Let's see. Sir, what about visa process for Australia? Okay. If you have any information Yes, about that. yes, I can tell you about the visa process. Okay, at the moment, the current government, as I said, that 2 lakh or 200,000 visas for skilled workers are available, which is a huge numbers, right? And what types of visas that are available? This is important for everyone to know. At the moment, when you pass the CAPS exam, you have a great opportunity to do application, which is called state nomination application. Mean that states, there are 7 different states in Australia, 7. And each state have some priority list. Western Australia, South Australia are those states, and including Victoria as well, that they are very aggressive in attracting pharmacists, especially Western Australia. When a pharmacist have no experience, when they pass the CAPS exam and they go on Western Australia state nomination website, they fill up the form online, pay, I think, $300 fee. And in that file, when they were putting everything, there's an option that it says that if you don't have experience, we still want you to apply. So without experience, a pharmacist from overseas passing CAPS can get the state nomination from Western Australia. And Western Australia is assisting these applications very quickly at the moment, very quickly. Some friends, some people, some pharmacists in my group who passed the CAPS exam in November 2022, just the last one, and they received the state nomination within a week, 5 days. And they now have applied for the visa. So this is first step, which is a huge motivation for anyone who's listening at the moment. So this is how quickly things are happening. If you pass the CAPS exam, if you have the PTE ready, you go on the website and apply for a state nomination. That means that your application is now have more points for applying for the visa. Okay, so you asked me the question for the visa. I'll show you the visa options, visa numbers as well. Okay, I'll just share my screen. Okay. तो ये आप एक बात कर रहे थे कि एक ओल्ड केयर होम वाली भी आ रही है फार्मासिस्ट की जॉब, तो उसके बारे में भी बताइएगा. Okay, let me talk about the visa thing. We will go one by one. If you have a question, maybe just hold your questions, please. Okay. Okay, so this is just, I hope you can see my slide. Can you see these visa numbers, please? I'm pretty sure it's visible now. Yes, sir. Okay. So if you look at these visa numbers, so these are the visas which are available if you pass the CAPS exam. So all of these options are there, but which one is working faster? I will tell you that, which will be helpful for you to come to Australia quicker. Okay. If you look at the last visa number, which is called 491, skilled worker regional professional visa, 491 subclass state or territory nominated. So this is this. If you can take a picture of this, that will be good for you. So this is 491 visa, state nomination visa, which is allowing people
allowing pharmacists from overseas to come to Australia very quickly. On the website of Department of Immigration, it says that it will take 16 months to 30 months. That's the general statement that they guide. This is the guide, the standard guide. But I know that some pharmacists who applied this 491 visa, they got the visa in 30 days. Some of them got a visa in 1 week. Some of them got a visa in 2 weeks. So this is so quickly things are happening. Okay, so this visa means that you come to Australia for 3 years visa, and you need to work here for any job. You will get a job as the pharmacist. For 2 years, you show you have paid the tax, and on 3rd year, you get the permanent resident visa, or you apply for the permanent resident visa. And in your 4th year, and in your 5th year, after 5th year, you apply for your citizenship. So that's how you become Australian citizen in 5 years. All right. Sir, you went to the Australia for the studies, and so can you please guide us about the scholarships for MPhil and PhD in the pharmacy majors? Okay. Okay. I know that in Australia, number of universities offer their scholarships to their local students very easily, very easily. They have more scholarship than the applications. So they have a lot of money to give, but there are less people to take. That's why they offer this scholarship for international students as well. And to take the full advantage, I would suggest everyone who is actually thinking for a scholarship, look for the scholarship for maybe for PhD, which will be more beneficial, because in PhD scholarship, they will get a scholarship for their fees for study, and also they got some money for the living costs as well. So this is something which I have seen quite a number of pharmacists do, and they come to work in Australia on that. But as a practicing pharmacist, as a working pharmacist, I need to ask a question: why this PhD or masters require? What is the significance? I know I know the answer, but I want to hear from audience that what is the reason behind why every pharmacist or other pharmacists want to become a high educated pharmacist? Like, is it for the jobs in Pakistan, or what is the reason? Zahibi, if you can unmute and please comment on that. Sir, if anyone do the PharmD, then he is not able to go for the teaching profession. Yes. So when he or she does the MPhil and then PhD, then he or she can teach in university. So that is why I think this is one of the reason. And another reason is about research. Some are interested in research. We have some of our fellows who have done the research, and they're in undergraduate level. So they have their paper published. So they want to assume their career as a researcher. Okay. Another question I have with you: when you're coming to Australia, would you want to live and progress here in Australia, or you will go back to work in Pakistan or other country? That's my first question. It is a personal view of everyone. Okay. Yes, sir. Okay, because but obviously research opportunities as compared to the Pakistan are very much enriched in Australia as compared to Pakistan. There is clear difference. So I think obviously the researcher will prefer to live in Australia rather than Pakistan. Yes. Okay. Research can be done while you're working in a community pharmacy as well, right? You don't have to be in a student of program like master's or PhD. So I would recommend, or I would suggest, because I'm an employer as well. So if I see a CV, when I see a CV for
for applying for job, the pharmacist who has like degree like MPhil or degree like PhD, they become overqualified for those jobs, and they get some like not significant importance when their CVs come, as compared to the one who's coming just with a fresh or just a pharmacy or pharmacy basic qualification. So I always encourage every pharmacist who's coming to Australia, focus on getting the registration as a pharmacist. Either you want to work regularly or long-term in community pharmacy or not, or either you want to become a researcher, either you want to become a teaching faculty. First thing is that get the weightage of, which is the heavy weight, get the registration process done, get that in hand. And once you get that in hand, your doors become widely open in Australia. And then scholarships become, because in Australia, when you're applying for Australian pharmacy scholarship, they always ask a question that either you're applying for a master's qualification or any other postgraduate qualification. They ask a question, are you a registered pharmacist in Australia? Mean that, are you a pharmacy board approved registered pharmacist in Australia? So that's something which again come to the basics, which I'm talking today, becoming a pharmacist in Australia. And I have witnessed in my career, when a pharmacist coming from overseas on a scholarship, because they're coming for a study, they're getting the money as well for living cost, that actually make them up, like make them away from the industry. They're more in the university and they're actually working in the lab or the research part. They are not working in community. So they do not get the touch of Australian culture. They do not get exposure to the Australian streamlined community. And when they spend 3-4 years or even 5 years or 4 years for the PhD, when they come out, when they look for the jobs, for example, in Australian government sector or health system, or even as a pharmacist, because they were actually working in a smaller portion in Australia, they sometimes get not accepted straight away because of many reasons. When someone come and establish their career, they work in community pharmacy, and they earn and they work, they meet people. So they are more Australian than any other person. So that actually gives them a huge exposure. So I always encourage anyone who's asking me a question for PhD scholarship, I always say, please go for this pathway first, complete your registration, get some experience, and then go for your research. That bring a huge heavyweight on your career, and that will boost your career very quickly as compared to just going into scholarship and then coming back. Because I know I have so many applicants here in my group who are actually applying for CAPS past jobs, which is intern jobs, right? So I have to advise, I have to fix their CVs, especially I have to advise them, that you need to remove your publication from your CV. You need to remove your PhD from your CV. You need to remove everything from your LinkedIn as well, because employer will be hesitant to take you in your job, in your first job. The reason behind is that they will have a supervisor. They will have a supervisor which feel not comfortable when they have a PhD working under them, or if they have an MPhil working under them, because they think that they are overqualified. So that's a personal clash come. So this is a very common hurdle in Australian jobs market. And I witnessed that physically. Many overseas pharmacists, when they have a PhD sitting on their CV, when they have MPhil sitting on their CV, I have to explain them, look, you need to remove this, you need to remove this, otherwise that's something is stopping your job applications to be accepted. And that happened. So they have to hide that for 1 year or 2 years till they get qualified, and they bring it back, and that actually helped them to take the career to the next level. All right. Yes.
So obviously they have to make their CV is according to the vacancy available for them. Because if the vacancy is for the PharmD graduate, then obviously he or she should write PharmD just. And sir, now I would like to request audience to ask question from you. Yes, that's good. And I think audience has already put a lot of comments, so we can, Sir, I can ask, or maybe we can take a live question first. Yep. yes, sir. Sahil has raised his hand, but I think he's busy somewhere else. So can I ask a question? Yes, sure, please. Sir, I'm a final year PharmD student, so I'm planning to come to Australia for registration process. So I want to ask, what are the future prospects in the coming 5 to 6 years? Okay, that's a good question. Abdul Haq. Abdul Haq, can you please introduce where you from, which part of university or which city you are from? So I am from Lahore and I'm studying in University of Veterinary and Animal Sciences, UAS Lahore. Okay. That's good that you come to the seminar, very good. And you can learn some top points, maybe dot points, make your dot points and maybe discuss with your colleagues. That will be helpful for them as well. Because every time I do a webinar, I always ask that please make your notes with your learning so that you can teach someone. So you can take some very important points today and discuss with your colleagues in your college or university. Answer for your question is that what are the prospects or what are the future for pharmacists in Australia next 5 years, right? Okay, so there are some very exciting news for pharmacists in practicing pharmacists in Australia. Currently, there are number of trial projects going on in community pharmacy where I work. And if I talk about my profession, which is community pharmacy, which is huge, huge mean that we are involved in community locations. There are 6,000 community pharmacies in Australia, and pharmacists are integral part of that location where they practice. And pharmacists are doing vaccination at the moment. They were not doing before in Australia. There's a special training one pharmacist can do and then become vaccinating pharmacists. Vaccinating pharmacists are allowed to vaccinate flu vaccine, COVID vaccine, and typhoid vaccine and travel vaccine in some state. So this is a latest additional work that pharmacists has started. Other than that, Canadian pharmacy and pharmacy profession in England, they have gone to a very next level. Like they have started prescribing as a doctor. So this is something new that happening in our country as well. In Australia, where pharmacists are getting more training, a one-year program, like a postgraduate program, where a pharmacist will be trained on 18 different health conditions where they can be allowed legally to prescribe medicines by diagnosing and also repeat prescription if they already been diagnosed by a GP. So that's another level which is happening probably in 1 or 2 years. This is already started as a trial base in Queensland. And other than that, pharmacists will be going they will be doing testing of some health condition, like blood testing and cholesterol testing is already happening, but some other tests like influenza test, COVID test. So these tests will be available in pharmacy where a patient comes and we talk to them, and if we find the symptoms are there, we can do the test. If they come positive, the test can be arranged and result can be arranged quickly, and we can prescribe those antiviral medicines, right? So this is another step happening. And other than that, there are a lot of health conditions like urinary tract infection is very common, especially in women, where they need to see a GP. That also offload work from the GP, because pharmacists are now allowed to assess, diagnose, and prescribe an antibiotic for that person, for that female person. So this is few development, and there's a list of ongoing things. Pharmacists
in community, they can be a consultant pharmacist where they can do home medicine review of a patient when a doctor initiates that process and get extra money. That's one significant part which is also considered as a clinical pharmacist. If somebody has a desire to become a clinical pharmacist, being in community pharmacy, that one can do. There's an extra qualification one can do after the first year registration. So that's another step which we can discuss. I have discussed that in my other webinar. Like last week, I did a webinar just on how we work in Australia as a community pharmacist. So I did that webinar, and I have put that webinar video on my YouTube channel. If you're interested, I would recommend you to go and watch that 1 hour, 1.5 hour session, and you will know everything what I just said to you in very detail in the slides as well. So make a time and watch those, and you will start loving, wow, there's so much happening in Australian pharmacy system. I love to be part of that. All right. Can I ask one last question? Yes, please. Sir, I want to ask, can we apply for the visa or the state nomination only after passing the CATS exam, or we can initiate the process like CATS exam and the visa process side by side? No, once you pass the CAPS. Okay. Okay, for passing the CAPS, I know that there's some hurdles coming fresh graduates. One of the biggest hurdles that they have to wait. They have to wait for the degree. They have to wait for the pharmacy license from Punjab Council or Sindh Council. To overcome those problems, I have made a small video yesterday or day before yesterday to put on my YouTube, what things one can do to avoid and how they can put up application if they have received the 5-year mark sheet and the degree, and then they can submit on the base of that letter. Because I know sometimes pharmacy councils take 6 months, 8 months, or a year to give you the first certificate, which is category to pharmacists. So don't wait for that, and just use that strategy which I discussed. I was sitting with one of my colleague pharmacists, and I think I was doing a tour to visit some general practice. So I just opened my WhatsApp and I received so many messages. Same question was asked. Sir, we are fresh graduates. We are waiting for category, how we can apply. And we discussed the solution. And Puneet, my pharmacist, he got 10-year experience. He said, Irfan bhai, I have a solution for that. I said, what's the solution? And he said, this is what pharmacists do. And I have done that, and I have suggested that it works. And I said, okay, let's do a video. And we discussed that in that small question and answer session. You can listen very carefully what he's saying and make sure you do the same. And also, if you have some future, like if you have some senior pharmacists who recently graduated and waiting for their category, ask them to do that and submit their application for CAPS. Can you share the name of your YouTube channel? My name, Irfan Hashmi, Australia. If you search, you can easily search. Otherwise, I can share the link here. You can click and we have this presentation going live on our channel as well today. So that's something which is very handy, and you can watch it. And I would advise you one thing: while you're studying, make sure you work somewhere in a pharmacy. Yes, sir. I'm working as an intern pharmacist in community pharmacy, and I have around 1 year of experience now during my studies. That's very good, because working makes you more confident, because medicine surrounds you and you see those things around you as compared with what you study, that make you more like you have a confidence. You can feel, you can counsel patient. And this is what Australian pharmacy students do. When they start their pharmacy graduation, they already working in pharmacy. They're already working as a staff, as a student staff, and they're counseling patient, and their job they become so confident in their job because they're working already. So in my opinion, what you just said, if you're working, then you will be more confident person as compared to any other fellow who hasn't been into the pharmacy. I know many pharmacists who never worked in a pharmacy. They have the qualification, they have the degrees, and if I ask them, can you please send me your CV? And the question and answer will come, sir, I never worked in any pharmacy. I don't have a CV. So that's a slight difference in the people who are working, and that's a slight difference who never worked. So always I encourage everyone, if you're starting your first year degree, go and find some work. If you don't get a money or your payment or your salary, don't bother about that. Just go and work as a volunteer.
even as a person, if you spend 3 hours a day in any store or any pharmacy, that will help you. Thank you so much, sir. Sir, I have a question. Sir, some of the students are asking about state nomination, about the fee structure and the procedure. Okay. Look, state nomination is a program run by each different state, like South Australia state, Victoria state, Western Australia. As I said, Western Australia is very aggressive. The fee for Western Australia, all these state nominations are very minimal. It's just $350 for putting an application and getting your papers assessed by them. And they are there waiting for pharmacists to submit their qualification, and they will approve it very quickly. All right. So state nomination is the way to get endorsement on your documents that state is also willing to allow your visa applicant, and that will give you more points. And I also encourage every student who are doing their final year, go and complete your PTE English test right now, because sometimes PTE test is taking so long. You have to wait 5 months, 4 months to get, because there are so many people are going overseas, so they all need English tests. So waiting time has become huge. Even this state nomination also require you to submit your English test as well. So why not do that as a first priority before even you start your CAPS? And yeah, so that's another advice for state nomination people who are going for that, and also for pharmacy graduates who are going for that. All right. So sir, some of the students are requesting for Urdu language. ठीक है, कोई बात नहीं, that's हमारी language, हम बात करेंगे बिल्कुल, why not? Irshad, you can ask your question. Is it okay? Okay. I'm Irshad from Sri Lanka. I'm 42 years old right now. Yes, sir. So any problem or struggle in future related to 491 state nomination or something for because of the age? When you become 44, then your chapter will be closed for coming to Australia. So you are on the boundary line, right? You know the boundary line, you haven't crossed the boundary line. So do it as early as possible. So do we have, do you want to pay for the internship in Australia, sir? You mean the salary? Like, no. I already assessed skill assessment on New Zealand. Yes, I know that. Yes, I think that's already I discussed with you, sir. Yes. Because for the New Zealand, I have to pay extra, I think 4,000 or something we have to pay for the New Zealand Pharmacy Council. So likewise in Australia, we have to pay for the internship. Okay, can you make your question a little bit simpler for me? What do you mean by that? For the New Zealand, we have to pay internship nearly 2,000 or 4,000 New Zealand dollar. Okay. To the for the Australia is it in Australia? I'll explain to you all the fee structure very quickly. Write it down. Write it down. Right. Okay. Yes. So once you got the visa, 491 visa, if you landed in Australia, right? Yeah. Okay. So you have paid some fee. First, you do the CAPS. You pass the CAPS. You do the state nomination, $350. You applied for visa. Visa fee is $4,200, I think, or $4,500. You get the visa. Let's say you are landed in Australia in 6 months' time, right? And then you start looking for work. You find a job, internship job in, for example, in regional South Australia. The salary that you will get, it will be around 50,000 for a year, which is approximately 4,000 Australian dollars per month. Okay. And when you start your internship program in Australia, you need to do a program called ITP, Intern Training Program, by Pharmacy Guild of Australia. Over there, you need to pay a fee to that ITP body, which is 1,800 Australian dollar for the whole year. Okay. But being you're getting the wages, that fee become not an issue, because you will pay, and you can pay installment, maybe 3, 4, 6 installment
Okay, and then I think For the that's all. license, Sorry. for the license, Okay, when you pharmacy pass license. the final exam of CAPS 2, then you apply for APRA registration, full registration. Okay, and I think that fee exactly I don't know, but it's very low. It's not in $1,000. It would be around 400 something dollars, not in thousands. Okay. Okay. So I don't know what you just said about New Zealand. I'm not aware about that. Because I'm not expert of New Zealand area, so I don't know anything. I'm expert of Australia. You can ask anything. I can tell you anything for Australia. Yes, So what is the salary after getting the permanent registration as a pharmacist? Who's asking that? Can I ask? Abdul Haq. Abdul Haq. Abdul Haq, can you come on the camera, please? I know I want to see you as well because this is a significant, important thing for me. Please. Okay, nice to see you. Thank you. Okay, when you become registered pharmacist after completing your first year of your internship program, you get the full registration. You have already lived for a year in Australia. You have earned that money, which I just said to you, 50,000, 4,000 a month. Pharmacists get paid according to where they're working. We are already targeting everyone to go to the regional area, right? Regional area where the wages are very high. So regional pharmacists earn between 90,000 a year plus salary. 90,000 plus salary. So it's approximately 8,000 to 10,000 a month, Australian dollars. You are on mute, Abdul Haq, you're on mute. Sir, I'm saying it's pre-tax or after the tax? No, I cannot tell you the after tax because tax will be deducted according to your circumstances. Okay. Right? So I think Okay. 30% is the minimal tax on high earning. If you want to know, if you want to become expert of taxation, there's a website called ATO, Australian Tax Office, and you can just Google what is the tax bracket for pharmacists in Australia. It will straight away open everything for you. What are the tax cut for pharmacist wages? Depending on your earning, if you're earning $70,000 a year, your tax bracket will be this, for example, A. If you're earning more than 100,000, your tax bracket become bigger. If you're earning 150,000, your tax become big. So that's how this tax applies. Okay. But there are a lot of advantages of paying the tax. It's not the drawback because you're coming to Australia. Australia is an advanced country. You get good roads, you got safety, you got so many things because of the tax we're paying in this country. It's not like it will go to a corruption politician. It will not like that. It will go to the welfare state. Okay. It will go to the Medicare. It will go for your protection. There are a lot of advantages. And I know that when you start living in this country, end of the day, 2-3 years after that, you will say, I'm proud to pay this tax because the value that I'm getting to live in this country is huge. And you will proud to say that I'm a pharmacist, I pay a lot of tax in this country. Because the status, the value for your pharmacist profession is significantly high, which you cannot even imagine at the moment. You cannot even think at the moment. The trust level. You know that pharmacists become notary public person. Notary public means that you can stamp documents for public when we have the full registration. If you work in a community pharmacy, you are approved as a notarized person because of your APRA registration. People come in a line and ask for pharmacists. Can I get my document certified by him? Sir, I want to ask a question because as you are targeting the rural areas, yes, right? So there are already many pharmacists present in Australia. So why they don't go to the rural areas? Okay, which pharmacists you questioning? Which pharmacists? If the pay in the rural area is high, then why the pharmacists living in the cities in the main suburbs they don't go to the Many rural reasons. There are a lot of reasons. Some pharmacists who qualifying here in Australia from the universities,
they don't prefer to go to region because they think that they will miss out the hustle and bustle of the city. They have grown up here. They will miss out their friends. They will miss out their community people if they go to region. One basic reason. Other reason is that when someone is coming from overseas, like when I came from overseas, like I came from Pakistan, it doesn't matter where I go and work in Australia. It doesn't really matter because I thought where my job is, that's my most important place in Australia. So for overseas pharmacists, it matches very nicely, right? Okay. And I really enjoyed everything. I become member of pharmacy society, pharmaceutical society. I become pharmacy guild member. Every year they do big conferences. So I travel from region to big cities, and my travel cost is also reimbursed by the pharmacy guild as a rural pharmacist. So there's a huge advantage of rural pharmacists. It's not just you just go and live in a rural area. There's a huge advantages, and you get significant importance because you're working in a small area, but you're looking after a big area. You become expert. You get exposed to so many patient queries, which you cannot get in city, because in city, pharmacists don't get that exposure. In my city pharmacies, I know that pharmacists just work on one dispensing. They're just dispensing. They don't get involved in methadone program. They don't get involved in vaccination program. They don't get involved in human resource issues. They have small way of job responsibility as compared to regional pharmacists. In the start of the job, they get exposed to everything. We're mixing things. We are making syrups from tablets because we are the only health professional to provide in that locality. A snake bite person come, we need to provide a solution. We need to arrange those venoms. So that doesn't happen in that's why they get paid. But another thing is that pharmacist is a job for those community pharmacies is a job for those who love people. If you're a person who love people, who want to interact with people, this is a job for you. If you think that this is not you can do, I won't recommend you to do this job. Okay. Thank you so much, sir. Sundas Qureshi, sir. Sundas Qureshi has a question. Sundas, please ask the question. Assalamu alaikum, sir. Can you hear me? Yes, I can hear you, Sundas. Yes, how are you? Alhamdulillah. What about you? Yes, I'm very great. Very happy to see everyone here. Thank you, sir. I have a question. Sir, I have a question like आपने वीजा फी वगैरह तो मेंशन कर दिया है, बट व्हाट अबाउट बैंक स्टेटमेंट? ऑस्ट्रेलिया के लिए बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए? क्या उसके बाद क्योंकि बैंक स्टेटमेंट के साथ हमारे अमाउंट ज्यादा बन जाती है. तो बैंक स्टेटमेंट क्यों चाहिए आपको? किसने बोला आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए? लाइक वन ऑफ माय कजन, वो जो अभी वो ऑस्ट्रेलिया गए हैं स्टडी वीजा पे, तो उनको बैंक स्टेटमेंट चाहिए थी. आप भी स्टूडेंट वीजा पे आ रही हैं? नो ये मैं पूछ रही हूँ कि डू वी नीड या नहीं? No bank statement required. Only your CAPS result required. English good result required. और इसके अलावा बस हमारी ये वीजा फी वगैरह जस्ट ये होगी? जी. संदस कुरैशी, आप कहाँ पे हैं? आपने क्या किया? मुझे कुछ बताएं थोड़ा सा, या आप कैमरे पे आके बात करें तो that will be more appropriate. आप मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताएं. What you have done, what experience you got? सर, आई एम अ 5th Pro Pharmacy स्टूडेंट. Okay. तो इसलिए मैं प्लान कर रही हूँ नेक्स्ट कैप्स टेस्ट के लिए. तो इसलिए मैं पूछना चाह रही थी कि ये इस फी के अलावा बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि जो मेरे कजन मूव किए वो 45 लाख. First of all, if you are applying for Australian immigration, आपको बैंक स्टेटमेंट की सिर्फ उस टाइम पे जरूरत पड़ती है, इंडस्ट्री वालों को खास तौर पे, कि उनको ये दिखाना होता है कि मेरी तनख्वाह जो है वो मेरे बैंक में उतरी है और उसका वो एविडेंस है. दैट्स ऑल. कोई उनको बैलेंस नहीं दिखाना होता है. बैलेंस किसी भी वीजे की जरूरत नहीं है.
आपने अगर कहीं से इंफॉर्मेशन ली है, मुझे पता है कहाँ एक दो यूट्यूबर लोग हैं जो ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हैं कि आपके पास तगड़ी किस्म की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जब आप फार्मासिस्ट बन के आ रहे हो ऑस्ट्रेलिया. दैट्स रॉन्ग. दैट्स वेरी रॉन्ग व्हाट दे डूइंग. यू नो व्हाई दे डूइंग इट? Why? I can tell you why they're doing it. They're doing it because when they see a person wealthy, first of all, they can pay their consulting fee, which Yeah. probably $4,000-5,000. अगर वो फी आप उनको नहीं देंगे तो वो आपसे बात भी नहीं करेंगे, ठीक है. और दूसरा ये कि बैंक स्टेटमेंट की लेजिटिमेट रिक्वायरमेंट ही नहीं है उसके अंदर कहीं भी लिखी हुई. तो हाँ, स्टूडेंट वीजा सेपरेट है, स्टूडेंट वीजा तो अलग चीज है ना. तो Yes. आपको अंदाजा नहीं है इस मैं इसको रूमर कहता हूँ, झूठी खबर. तो इस रूमर की वजह से बहुत सारे फार्मासिस्टों ने अपने 2-2 3-3 साल जाया कर दिए कि हम पैसे जमा कर रहे हैं बैंक स्टेटमेंट बनाने. Yes, exactly. जी जी. तो तो मैं अभी जानता ये हूँ बहुत चीज सारे मुझे लोग अपना अभी टाइम. आपके थ्रू पता चली है because 2 of my friends have completed their degree, Yes. but वो इसी इंतजार में कि हमारे पास इतनी बैंक स्टेटमेंट कलेक्ट हो जाएगी, बैंक इतने स्टेटमेंट अमाउंट क्या देन करना है? उस खजाने को किसको दिखाना है, किसको इम्प्रेस करना है? वीजा ऑफिसर को फिर रिश्वत देनी है? ऐसा तो कुछ होता नहीं है ऑस्ट्रेलिया के अंदर. अगर इतना खजाना हो तो फिर बंदा जाए क्यों हाँ, ऑस्ट्रेलिया? ये भी बात है. तो कोई रिश्वत तो चलती ही नहीं है ऑस्ट्रेलिया के अंदर. तो वीजा ऑफिसर ने आपका इंग्लिश टेस्ट देखना है, उस पर वीजा लगाना है. अगर आपने इंग्लिश टेस्ट अच्छा कर दिया, 90 नंबर ले लिए पीटीई में, तो आई कैन गारंटी यू कि वीजा ऑफिसर आपको 1 हफ्ते में वीजा दे देगा आपको. आई नो दैट पीपल हैव गेन्ड दोज वीजास बिकॉज ऑफ ओके, हाई गुड इंग्लिश. और ये वर्क वीजा है ना जिसकी आप बात कर रहे हैं? इमिग्रेशन है ये. आपको 3 इयर्स का 491 वीजा जो हमने दिखाया, ये वो वीजा है जिसपे आप आके काम कर सकते हैं, लीगली ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हैं, और 3 साल के बाद आप अपनी परमानेंट रेजिडेंट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इस वक्त सबसे आसान वे है फार्मासिस्ट लोगों के लिए. ये हर एक के लिए नहीं है. हम ये ऐसे सेमिनार हर प्रोफेशन के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए मुझे नहीं पता कितना है. क्योंकि आप देखें ना, एम्बेसी क्यों आई है इस प्रोफेशन को हाईलाइट करने के लिए? हाई कमीशन के पास और काम नहीं है दुनिया के जो वो एम्बेसडरों से मिले, इससे मिले? उन्होंने क्यों फार्मासिस्ट के लिए ये दर्द लिया कि वो कॉन्फ्रेंस में बैठे आके और हमारे साथ इतने लोगों को किया, और उसके बाद मीडिया वालों से बात की, और मीडिया चैनल्स पे भी उन्होंने बताया जाके. तो उसके पीछे ये सॉलिड रीजंस हैं कि ये फाइनेंशियल रिव्यूज के मैंने उनको कटिंग भेजी हुई थी. इसके अलावा मैंने उनको मैंने बहुत फीड्स दी थी. उसके बाद उन्होंने कहा ओके लेट्स डू इरफान, लेट्स डू दिस क्विकली. तो आपने वो कॉन्फ्रेंस देखी है या नहीं देखी है आपने? जो नो सर, वो हमने नहीं देखी. देखी नहीं है तो वो देखें आप. हमारे जूम क्या होता है, फेज क्या होता है, यूट्यूब पे जाके उसका कोई लिंक देखें और वो उसको देखें जाके. आपको अंदाजा होगा कि जब पाकिस्तानी एम्बेसी का मतलब पता है ना आपको क्या होता है? दे इशू द वीजा. दे आर लाइक गवर्नमेंट पीपल. व्हेन दे सेइंग ऑस्ट्रेलिया में 3,500 जॉबें खाली हैं, आप लोग अप्लाई करें, ये करें, उसका मतलब है हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं. यस सर. तो सर हमें तो फिर कंसल्टेंट को हायर करने की जरूरत नहीं है. क्या आप हमारे इस प्रोसेस में फिर स्टेप वाइज हमें गाइड कर सकेंगे? मैं इसीलिए तो ये वेबिनार्स कर रहा हूँ. तो और जोहेब साहब और उनके साथ जो इनके फ्रेंड्स हैं, उन्होंने इसी वजह से पाकिस्तानियों को ये मैसेज देने के लिए ये वेबिनार अरेंज कराया, ताकि आम बंदे तक जाके आप मैसेज कर सकें. कितने लोग हैं जो मुझे नहीं जानते होंगे इस वेबिनार के अंदर? आई डोंट थिंक मेनी पीपल वुड नो मी. बट अगर आप जब थोड़ा सा मेरा यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हम कितनी तरीके से मैसेजेस दे रहे हैं. मैं टिकटॉकर भी हूँ. लोग समझते हैं टिकटॉक सिर्फ नाचने गाने के लिए होता है, लेकिन मैं टिकटॉक पे आके मैसेज थोड़ा सा दे देता हूँ 1 मिनट का कि ये हो रहा है. मेरा एक मैसेज था जो मैंने शायद जनवरी में दिया था, जब ये 2 लाख की अनाउंसमेंट हुई थी. इस पेपर की जब ये बात आई थी, तो मैंने एक टिकटॉक पे वो वीडियो बना के डाली थी. मैं एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, तो मैंने कहा था 2 लाख वीजा इशू कर रही है गवर्नमेंट, अल्बनीज गवर्नमेंट, मेक श्योर 1000 फार्मासिस्ट तो आए उसके ऊपर. अब उसको किसी ने सीरियस लिया हो ना लिया हो, कोई टिकटॉक पे आया हो. टिकटॉक पे बहुत सारे फार्मासिस्ट से मैं बात करता हूँ, कहते हैं नहीं हम तो टिकटॉक पे नहीं है. तो मैं तो कहता हूँ भाई क्या एलर्जी है आपको टिकटॉक पे आने में? तो आप टिकटॉक यहाँ पे 1-2 फार्मासिस्ट और भी हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन फार्मासिस्ट हैं टिकटॉक पे. वो जनरल एजुकेट करते हैं फार्मासिस्टों को. तो टिकटॉक एक अच्छा एलिमेंट है, आप भी यूज करें. Okay, thank you sir. Thank you for your valuable time. Inshallah, we will continue on this. Atik Abbas, you can ask me. Hello. Atik Abbas. Assalamualaikum sir. Assalamualaikum sir. Walaikum salam. Hello. I have a question. It's me, Natik Abbas from Gomer University, Deir Ismail Khan. Thank you. How are you, sir? Alhamdulillah, sir. I have a question that what's the validity of that exam? 3 years, sir. आप कैप्स पास कर लें 3 साल तक आप ना आए, कोई मसला नहीं है. Okay, only 3 years. क्यों आप ये क्यों Sir, आपके पास लॉजिक क्या है इसका इसका आंसर का?
क्वेश्चन का सर? और इसका सिलेबस वगैरह उसका क्या वो मटेरियल वगैरह उसका कुछ आइडिया है कहाँ से मिल जाएगा? हमारे पास से मिल जाएगा आपको सब कुछ। ओके, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, अगर हम स्टडी वीजे पे ऑस्ट्रेलिया आ जाएं किसी एमएस में एडमिशन लेके और इसके कौन बात बाद कर रहे हैं वहाँ सर? कौन रह बात के कर ये रहे हैं? मुझे नाम पहले बताइए, और अगर कैमरे पे आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं आपको देख सैयद सफदर, अच्छा, Frank, someone Okay. Frank, ask your question. Yeah. Good afternoon. Yeah. Hi, Mr. Irfan. How is Yes, everything? Frank, how are you, my friend from West Hello. Africa? Yes. So my name is Frank. I'm a practicing pharmacist. Mr. Irfan, my question is in threefold. Okay, so Sorry, Frank. you are working in Australia as a pharmacist, and you are being paid $100,000 a year. That will be equivalent to, let's say, $8,000 Australian dollars a month. Yep. You mentioned that the tax component mostly for most of the states is 30%. Does that mean the 30% will be charged on the yearly revenue or the monthly revenue? 30% tax. Monthly Is it revenue. on the year? Because the pay that you receive as a pharmacist depend on the company. Some pharmacies pay you fortnightly, not monthly. In Australia, Okay. pay is not monthly. The companies pay Okay. you weekly or fortnightly. Okay. No monthly Okay. pay in Australia. So the tax apply on that small bracket. Okay. Let's say if you earning 2,000, let's say $4,000. So 4,000, if you apply 30% on that, the remaining money will come into your bank. That amount will go to ATO, Australian Tax Office, under your name, and the 10% of your wages will go as a superannuation provident fund into your provident fund. 10% in addition 10%. to the 30. In addition to the 30%. I explain to you again. Let's say if your wages is $4,000, let's say 4,000 in 2 weeks time, right? 2 weeks time. So if you add 10% on that 4,000, that 10% will go to your superannuation fund, which is like a retirement fund, which you So will. the 10%, Yeah, on the top. will be deducted from the. No deductive, no deduction. It will be added. It will be added on the top. Okay. Making it 5,000. So what's the 10%? It's like $400. It's like $400 will go into your nominated super account, and from that 4,000, 30% will come out and go to ATO, and the rest money will go to your bank. You got it? Okay. So every 2 weeks, the 30% is applied on your income, and the 30% goes to the government as tax. Yes. Okay, great. Thank you. I'm very grateful for the explanation. My second question, it has to do with the various practice, scope of practice in Australia. I have a feeling that your interest and your specialization is in community practice or community pharmacy practice. I want to know why the hospital or the clinical pharmacy practice is not as common as the community pharmacy. That is it because there are not a lot of hospitals or clinics in Australia? Why is that the job opportunities for hospital pharmacy is not as common as community pharmacies? No, it's not like that. Because Australian hospitals run by Australian government, they want to see all the Aussie and PR people in their jobs. First reason. Right? Okay. When you become permanent resident, when you become citizen, no one can stop you to go in there. But at the moment, these jobs are not for you. Okay. I don't want to misguide anyone. I want to accommodate everyone where the jobs are. That's why at the start of my presentation, I was saying that where are the jobs? Because don't target Sydney Harbour Bridge or Melbourne Cricket Ground that you will get a job there. No, we are not getting jobs there in big cities. Jobs will be in regional area, in community setting. So go, come, get the jobs in hand, work there, earn money. If you want to be earning good money, stay in region, become multi-millionaire, maybe become an entrepreneur,
I know quite a few pharmacists from Africa who are earning a lot because they love region area. They have established an empire of pharmacies. I know some people from Africa. Yep. So I mean, it's your choice whether you want to have a tag of a clinical pharmacist, you want to have a tag of researcher, or you want to have a luxury lifestyle. It's all depend on you. What you want to what you actually want from your life. Everything. Okay, so so before you said, does that mean in clinical or hospital pharmacy practice, the earning is not as high as community pharmacy? How much money you get when you are practicing as a hospital pharmacist? Say again. I missed that. You know, and मैंने तो जाना है आज जाना so है I'm saying that when क्योंकि you कल practice as a मैं hospital, इनकम पे जाऊंगा ना you earn money as high as when you practice as a community pharmacist? Look, in the start, in the first pay scale in hospital, the wages are higher as compared to the level 1 pharmacist package of community pharmacy. But if you grow on a higher position in hospital, the wages are not that attractive. Community pharmacists wages are significant high. Okay, so it means that when I'm a new, pharmacist in Australia, the best area for me is a community pharmacy. Yes, community where the jobs are. Where the jobs are, yes. When I get my permanent residency, I can divert to the hospital or the clinical side. It's up to you. It's totally up to you. But I can tell you one thing. Hospital, pharmacy, sometimes become very stressful because of many reasons. Working with a lot of health professionals can be helpful, but sometimes it's very challenging. But it's up to you how you want to see yourself in future. If you want to become a head of a hospital, if that satisfies you as a person, then why not do it? But you can be perfectly okay working as 10 years, 20 years community pharmacy. You can be perfectly okay. Yes. Okay. All right. Thank you very much. I know one chap from not from Ghana, but from Nigeria. He's from African origin, and he is working as a pharmacy guild and also as an opera manager. So he's one of the very key person in Australian department. I mean, it's own satisfaction. Like, look, I'm doing this for free. I'm happy with that. Many people think that I need money to do this, but I'm happy with that, right? I was sitting in a doctor's meeting just in the lunch today, and they were asking me, Irfan, you're doing this all, who is paying this for you? I said, no one is paying for me. I'm just doing this as something which I think I should give back to the community. So I feel happy with that. I'm very grateful. Yes, so every time money is not significant. Sometimes your satisfaction is more significant in your life. Okay, so as an intern pharmacist, do you pay tax? Yes, you pay tax. So your tax bracket will be less. So you can check that. That's why I said to you, go on ATO website, Australian Tax Office, or maybe Google, what is the tax bracket for pharmacists in Australia? You can see everything there. What is the tax for intern? Intern will be less. Intern tax will be less. Okay, my last question. Yes. Which state nomination visa will you recommend for someone who has less than 3 years experience working as a pharmacist overseas? Western Australia and Victoria. Just do it. 491. 491 Western Australia. Very quick. Very quick. It's Western Australia, Victoria. It's better than 190, right? 90 visa. Look, 190 takes a little longer. Why you want to stay in your country? Just come here and start working. Sure. Mr. Irfan, I'm very, very grateful. I'm very grateful. God bless you for all the works you have. Thank you very much for listening. Thank you for coming in. And hopefully you will learn something today and tell maybe 10 or 20 people. That's the aim as well. So you need to learn
learn this 200,000 thing which I said to you. Over here it says somewhere. So you can even download this document which says clearly 200,000 visas are going to be issued in this current government in next 12 months. And it also tells you that which visas will be given. It tells you there as well. Is it 491 visa, or is it regional employer visa, or everything? It tells you everything here. So just go and find this document. Can I get the document online? The document, Yes, I can get it yes, online. this is available in Australian Department of Immigration website. Yes. So okay. You need to have logic behind what you're trying to do. We are actually doing this all practical experience thing. So I'm teaching you the latest information. Probably immigration agent may have this, they won't give it to you. Otherwise, everyone will do the visa process by themselves, right? As the previous lady just said, why we need an immigration person? Okay. All right. Thank The next question. Thank you. Thank you. Can I ask something? Yes, Sohaib, you can tell who the next person. Has a question, sir. Sir, Fizra has a question. Yes, please. Australian government does not own a pharmacist who was working for any state level institution. So what should a government servant should do? Hello, sir. Gigi, I'm just trying to understand what is the question. State Australian government. Yes, sir. Actually, I also didn't get her point. Can you Fizra, repeat that? please unmute yourself. Fizra. Actually, she can't. Okay, so let's move to the next question if she is not available. Sayyid Safdar आप Hussain, इनका please. क्वेश्चन दोबारा पढ़ सकते हैं? थोड़ा सा आपने जल्दी पढ़ा है, मैं बिल्कुल नहीं पिक नहीं कर पाया. थोड़ा सा स्लोली पढ़ें जरा, क्या क्वेश्चन क्या है? Australian government does not own a pharmacist who was working for any state level institution. So what should a government servant should do? I think she might be talking about government servant in Pakistan. Okay, government servant in Pakistan can come and Might be. apply to Australia on CAFs. That's the answer. और ऑस्ट्रेलिया में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय फार्मासिस्ट है वो है ना जो परमानेंट रेजिडेंट है या फिर सिटीजन है. तो आपके लिए तो पहली वाली जो जॉब्स है वो सारी कम्युनिटी की जॉब्स है जहाँ पे एम्प्लॉयर रेडी है लेने के लिए. ठीक है ना? तो ये I think that's what I can. If that's why I always ask कि आप कैमरे पे आए, बात करें, ताकि हम आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी सवाल को समझ सकें. और जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो that also very clear to you, so you get very good value. जी. सेकंड को और इनका क्वेश्चन है जो आप पूछें आपका नेक्स्ट सर क्वेश्चन. बस और इसके अलावा सैयद सफदर हुसैन, प्लीज आस्क क्वेश्चन. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम. Sir, how are you? I'm very well, thank you. How are you? Sir, first, I really want to admire your efforts for community. Thank you so much. Thank you. I really watching your webinars on YouTube from last 2 or 3 months. My question is, sir, Alhamdulillah, I am through your webinar and videos, I learn a lot about the CAPS, how to apply and how to get enrolled and everything. But I am graduated from Punjab University, Lahore in 2018, and from now on I am working as a community pharmacist in a retail setup. I am a married person and have 2 daughters. Later on I have to migrate to Australia, so I want to know about what will be the education policy, what will be the expense of an education, and what will be the health policy regarding the foreigners and who want to migrate to Australia till they before getting their PR in Australia. Okay. देखिए, फर्स्ट पोर्शन तो आपको वेल अवेयर है आप, जैसे आपने वेबिनार्स अटेंड किए हैं. मेरे क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन सब सॉल्व हो गए होंगे. कैप्स कैसे अप्लाई करना है और कौन सा वीजा अप्लाई करना है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है. वो सब आपने थ्रू कर लिया. 491 वीजे पे आप आ गए, लेट्स से ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए आपकी पूरी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ. तो फर्स्ट आपको क्वेश्चन पड़ेगा कि आपका क्वेश्चन क्या है, एजुकेशन में क्या करना है. उन्होंने आपके बच्चों की जो स्कूलिंग है वो कौन से क्लास की होगी, ये बताएंगे आप मुझे? अभी तो 2 साल 3 साल के बच्चे छोटे हैं अभी तो. ओके. तो आपकी मिसेस जो है वो काम करेंगी या वो हाउसवाइफ होंगी, क्या प्लान है उनका? अभी तो वो हाउसवाइफ हैं, कहीं पे काम नहीं कर रही जॉब वगैरह,
लेकिन अभी मैं उनसे ये डिस्कस कर रहा था कि लेटर ऑन उनको शायद करना पड़ जाए, क्योंकि जाहिर है फ्री टाइम काफी होगा उनके पास, तो कुछ ना कुछ तो। हाँ, क्योंकि ना दो अर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। दो अर्निंग से आप अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, लोग सेव भी करते हैं, और फिर कुछ इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो बहुत इजी हो जाती हैं। ठीक है, तो आई इनकरेज एवरी वुमेन इन द हाउस टू गेट सम अपडेटेड क्वालिफिकेशन। बहुत सारे प्रोफेशन हैं जो वुमेन के लिए यहाँ सुटेबल है। फार्मासिस्ट के भी प्रोफेशन बहुत ज़्यादा वेल एक्सेप्टेड है। ख़वातीन जो फार्मासिस्ट हैं उनकी जो वर्क फोर्स में जो नंबर्स हैं वो तकरीबन 70% है यहाँ पे। 70% फार्मेसी इंडस्ट्री पे लेडीज़ काम करती हैं यहाँ पे, और बाकी प्रोफेशन में भी लेडीज़ को बहुत राइट्स हैं यहाँ पे, बहुत सेफ्टी है, बहुत सहूलतें हैं। ठीक है, तो वो अर्निंग जो है वो करना जरूरी है। ठीक है, तो वो कुछ कोर्सेज करके अपने आप को ग्रूम करके वर्क पे आ सकती है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट शी हैज डन। अच्छा, इस जो एजुकेशन जो है, अभी बच्चों की एजुकेशन जो होगी वो मेरे ख्याल से अभी स्टार्ट नहीं होगी। ईयर 4 से उनका रिसेप्शन ईयर स्टार्ट होगा, जो कि आप जब किसी फॉर एग्जांपल लेट्स से आप साउथ ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं, जो कि पोर्ट पीरी रीजन है, जैसे जहाँ मैं रहता हूँ, तो वहाँ पे जैसे कुबर पीटी है जहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे ओवरसीज के लोगों ने काम किया है, तो वहाँ पे बच्चों को कोई एक्सपेंस नहीं पड़ता उनकी फीस का, क्योंकि वो गवर्नमेंट की जो फीस होती है जो भी साल भर की होती है, मेरे ख्याल से $100-400 वही पड़ती है उनको। तो वो जो फीस है वो मिनिमल चार्जेस हैं। ठीक है, तो वो आपको पड़ेगी। लेकिन अगर लेट्स से आपकी वाइफ भी काम करने जा रही है और आपको अपने बच्चों को डे केयर में छोड़ना है लेट्स से, तो वो फिर जो फीस है ना वो प्राइवेट फीस है, जो कि तकरीबन $100 पर डे की फीस होती है एक बच्चे को लुक आफ्टर करने की। ये एक नॉर्मल फीस है। तो ये एक एक्सपेंस आता है जो कि पेरेंट्स को बेयर करना होता है, क्योंकि वो दोनों काम कर रहे होते हैं छोटे बच्चों के लिए। लेकिन अगर वो स्कूल गोइंग है तो सुबह वो स्कूल में होते हैं, और 3 बजे के बाद जब छुट्टी होती है तो उसके बाद वो डे केयर में चले जाते हैं, फिर पेरेंट्स उनको शाम को पिक कर लेते हैं घर पे। तो ये कॉस्ट फिर जो बाकी शाम के आवर्स होते हैं उसकी कॉस्ट पड़ती है उनको। ठीक है, तो ये तो आपका जवाब हो गया इस कॉस्टिंग का। ठीक है, और आपने हेल्थ की बात की है। हेल्थ में मेडिकेयर ऑस्ट्रेलिया एक मेडिकल कवर होता है जो कि ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंट्स, परमानेंट रेजिडेंट्स, सिटीजन्स के लिए होता है। बीइंग आप 491 पे आ रहे हैं, तो आप जब आ रहे होंगे, जब आप वीज़ा लॉन्च कर रहे होंगे, तो उस वक्त आपको अपनी प्राइवेट हेल्थ कवर लेनी होगी। प्राइवेट हेल्थ कवर में प्राइवेट जो बॉडी है यहाँ की, जो कि इंश्योरेंस कहते हैं उसको, साल भर की एक फैमिली की फीस मेरे ख्याल से उसकी $700-800 होती है। उसमें सारी कवरेज होती है। उसमें आपके डॉक्टर विजिट, आपके हॉस्पिटल विजिट प्राइवेट हेल्थ कवर पे कवर होते हैं। ठीक है, उस और इवन कि मैं यहाँ का रेजिडेंट हूँ 20 साल का, लेकिन मेरे पास अपना भी प्राइवेट हेल्थ कवर कार्ड है, क्योंकि कुछ जगहों पे मैं नहीं चाहता कि मैं गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाऊँ। मैं चाहता हूँ मैं हाई अर्निंग पर्सन हूँ, मैं जो एक प्रायोरिटी जगह पे जाने की जगह मिले, तो मैं अपने प्राइवेट हेल्थ कवर यूज़ करता हूँ। मैं गवर्नमेंट का कार्ड मेरे पास है मेडिकेयर ऑस्ट्रेलिया, लेकिन कुछ जगहों पे मैं मेडिकेयर यूज़ करता हूँ, लेकिन मैंने अपना प्राइवेट हेल्थ कवर रखा हुआ है। तो प्राइवेट हेल्थ कवर आपको शुरू दिन से मिलता है, तो देयर इज नो इशू इन मेडिकल ट्रीटमेंट, और मेडिकल ट्रीटमेंट ऑस्ट्रेलिया में बहुत बेहतरीन। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और था कि जी पूछिए। एक क्वेश्चन ये था कि अब जिस तरह से मेरी जो वाइफ की एजुकेशन है वो डिग्री लेवल तक नहीं है, ठीक है, तो अभी जाहिर है जिस तरह से प्रोसीजर अभी मैंने स्टार्ट करना है, तो मुझे 1.5 साल लगेगा इस प्रोसीजर को टिल टू लैंड ऑस्ट्रेलिया। तो तब तक कौन सा ऐसा कोर्स है जो बेसिक कर लेना चाहिए, ताकि वहां जाके पार्ट टाइम जॉब हो सके, कुछ ना उन्होंने कुछ क्या उन्होंने मेरी वाइफ क्वालिफिकेशन, के लिए उनके सूट पास कोई प्रायर डिग्री है उनके पास कोई? नहीं, उन्होंने बीए तक स्टडी की है बस। देखिए, वो यहाँ आके अपनी स्किल डेवलप कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे आके कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर सकती हैं, सर्टिफिकेट इन चाइल्ड केयर कर सकती हैं वो यहाँ के। ठीक है, सर्टिफिकेट इन एज केयर कर सकती हैं यहाँ पे आके, सर्टिफिकेट इन डिसेबिलिटी कर सकती हैं। तो ये जो 3 प्रोफेशंस हैं ना इस वक्त, इसमें जॉब्स बहुत हैं। मतलब 1 साल की पढ़ाई करके एनी बैकग्राउंड पर्सन कैन अर्न। ठीक है, लेकिन उसके लिए एक चीज बहुत जरूरी है, उनको इंग्लिश जो है ना, उनका जो लेवल है वो बहुत हाई होना चाहिए। तो अगर वो वहाँ पे हैं तो वो पढ़ाई अपनी इंग्लिश को ना एक
ऑस्ट्रेलियन लेवल तक लाने के लिए कुछ इस तरह का कुछ स्टेप लें, वहाँ पे कोई कोर्स कर लें, पीटी कर लें, और कुछ ऐसा करें कि उनकी जो अंग्रेजी है वो यहाँ के उस पे चली जाए, लेवल पे आ जाए। यहाँ की जो टेलीविजन प्रोग्राम है वो आपके घर में चलते हुए होने चाहिए। यहाँ पे जो एबीसी टेलीविजन है उसका रात को जो प्रोग्राम है न्यूज़ का वो आपके घर में चलना चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि ऑस्ट्रेलिया की जो लेवल एक्सेंट है, क्या है, क्या लेवल है। हाँ, एक्सेंट क्या है, बात कैसे कर रहे हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो हम सुनने में भी हमें प्रॉब्लम आ रही होती है, क्योंकि क्या बोल गया हमें पता नहीं चलता है। तो वो जो सुनने का जो एबिलिटी है, लिसनिंग एबिलिटी, वो आपको ज्यादा से ज्यादा सुनने को मिलेगा। आपके घर में रेडियो चल रहा होगा, एबीसी रेडियो चल रहा होगा 1 घंटा 2 घंटा, तो आप भी सुनेंगे, आपके घर वाले भी सुनेंगे, तो आप उस इन्वायरमेंट पे यूज टू हो जाएंगे। सही। इंग्लिश पे फोकस कर लें, बाकी फिर वो मेरे ख्याल से यहाँ के कोर्स कर ले तो दैट विल बी ग्रेट, बिकॉज वो यहाँ का कोर्स होगा ना, तो वो उनके लिए स्ट्रेट अवे, क्योंकि फिर भी कोर्स करना होगा, अगर वो डिग्री करके भी आ जाए ना वहां से, तो उनको फिर भी कोई ना कोई कोर्स करना होगा, तो वो बेहतर है कि यहीं आके कोर्स कर लें। बेहतर है वहीं आके कोर्स करें, ताकि उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें हो सकें और वो अप्लाई भी कर अगर सकें। चाइल्ड केयर में काम करना है तो किसी पाकिस्तान की किसी चाइल्ड केयर में जाके जॉब कर लें, ताकि दिखा सकेंगे यार मैंने काम किया हुआ है, मुझे आता है, बच्चों को माइंड कैसे करना है, बच्चों को किस तरह मैनेज करना है, तो वो उस तरह की चीजें कर लें। सही, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात मुझे थोड़ी सी ऑब्जेक्ट लगी, आपने मुझे कहा 1.5 साल लगेगा, व्हाई यू थिंकिंग दैट लॉन्ग? आपने कैप्स का क्या क्या कर लिया, मुझे बताएंगे? सर मैंने असल में पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, उसमें नेम की थोड़ी सी करेक्शन होनी थी, और उसके बाद कैप्स की प्रिपरेशन भी है। एक सवाल मेरा ये भी था, मैंने वो लिखा हुआ था कि आपने जिस तरह के ग्रुप्स बनाए हुए हैं, तो वो कोई ट्रेनर करेगा या आप इंडिविजुअली कोर्स देंगे, और किस तरह से वो तैयारी को लेके चलेंगे हम? देखिए, मैं ना गाइड करता हूँ, मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं क्लास नहीं ले सकता, मैं बिजनेस पर्सन भी हूँ, मेरी कोई 70-80 लोग मेरे साथ काम करते हैं, मेरी 7 साइट्स हैं, ठीक है। यस सर। तो मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ कि यार ये कोर्स है, आपने इस तरह पढ़ लेना, इसको पढ़ना आपने 4 दफा पढ़ना है उस चीज को। आप पढ़ेंगे ना, मैं आपको सिर्फ बता दूंगा कि ये लो, ये बुक्स हैं, ये मटेरियल है, इसको पढ़ लो, और मैं फिर फीडबैक ले लूंगा आपसे कोई 4 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, हाँ भाई कैसा चल रहा है, आपने सारा कोर्स खत्म कर लिया नहीं कर लिया, ठीक है। प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्वेश्चंस पूछने, आप उस ग्रुप में रहते हुए डिस्कस करेंगे, मैं उसमें आंसर कर रहा हूँ। मेरे 2 मेंटोर्स उस ग्रुप में रखे हैं जिन्होंने अभी पास किया एग्जाम, और दे आर हैप्पी टू हेल्प अदर, तो वो फौरन आंसर करेंगे आपको। तो ये पढ़ाई का सिलसिला है, कोई हमारे ट्यूशन नहीं है, कोई हमारे पास कोई लेक्चर्स नहीं है, क्योंकि हम सारा काम वॉलंटियरिंग कर रहे हैं। वो जो कर रहे हैं ना, जिनका आपने शायद सुना भी है, वो पैसे लेते हैं $3,000-4,000, अगर आपने उनसे करना है तो वो भी आपको पास करा देंगे, ये भी पास करा देगा। इस पे बहुत सारे लोग पास हो चुके हैं हमारे इस तरीके से, तो क्या जरूरत है आपको पैसा डालने की? पैसा रखें अपने साथ, अच्छी सी गाड़ी खरीद ले आके यहाँ पे जब आए। और लेकिन टाइम जो है, नवंबर का इम्तिहान लॉक कर लें अगर आप पाकिस्तान में। जी इंशाल्लाह, ये उसी का इरादा है इंशाल्लाह सर। ओके, ठीक है, टेक केयर, गुड लक। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वालेकुम सलाम। Sir, I'm Azad from Bahawalpur. I have some questions. Can you repeat the documents you have tell us in the start? Yes. 3 important documents, degree category, and third one was डिग्री कैटेगरी एंड मार्कशीट। आपकी जो फुल मार्कशीट है बैचलर्स ऑफ फार्मेसी की, वो मार्कशीट। Marksheet. And sir, is PTE exam is only applicable for Australia? आपकी रिपीट कीजिए क्वेश्चन, आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हुई थी। Sir, is PTE exam is only applicable for Australia, or we can apply of any other country with PTE exam? सर मुझे आप दूसरे कंट्री का पूछेंगे तो मुझे 0 पता है। Okay, right sir. पीटी जो है वो इंग्लिश का टेस्ट है, उसी तरह का जैसे आइलेट्स होता है। आई एम प्रीटी श्योर कि ये हर जगह चलता होगा। आप पियर्सन की वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिए कहाँ ये एक्सेप्टेबल है। पियर्सन जो टेस्ट कराता है उनकी वेबसाइट पे जाके। ठीक है सर। और सर हमें जो यूनिवर्सिटी की तरफ से
मोस्टली यूनिवर्सिटी जो है अपने स्टूडेंट्स को इश्यू करती होती है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, वो भी कोई हेल्पफुल हो सकता है इसमें हमारे लिए? वो कहाँ हेल्पफुल होगा, क्या जानना मतलब कहाँ पे आप चलाना चाह रहे हैं उसको? मतलब कि स्टडी वीजे पे तो आई थिंक वो एप्लीकेबल होता है, स्टडी वीजे पे चल जाता है, लेकिन अगर जॉब के लिए अप्लाई करें तो उसके लिए वो बिल्कुल। एक मिनट आप अनम्यूट कर लीजिए, मैंने सबको म्यूट किया क्योंकि आवाज थोड़ी सी उसमें डिटोरिएट हो रही थी। जी 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 सर। सर स्टडी वीजे के लिए मुख्तलिफ जो कंट्रीज है ना, लाइक यूके, यूएसए या कुछ यूनिवर्सिटीज पे मैंने देखा है उन एप्लीकेबल है, वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर मांगते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ पीपल है यूके में। तो उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि क्या ये जॉब के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है देखिए, ऑस्ट्रेलिया में? जॉब के लिए तो आपका जो आप जिससे बेस से बात कर रहे हैं ना इस वक्त, इस इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जी आपने अगर वीडियो बना के, आजकल वीडियो का ट्रेंड है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो मैं अपने बात करता हूँ कि वीडियो बना के भेजें और उसमें वो 2-4 पॉइंट डिस्कस करें, उसी पे एम्प्लॉयर इम्प्रेस हो जाएगा या डिप्रेस हो जाएगा। ठीक है, जॉब तो आपकी उस पे होगी। ठीक है, लेटर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना आपकी फार्मेसी डिग्री और कैप्स है, जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया लाके खड़ा कर देगा। लेटर्स जो है ना जॉब में मेरे ख्याल से हेल्प नहीं करेंगे। नो, आई डोंट थिंक सो। अगर आप मेरे पास भी जॉब लेने आ रहे होगे तो आई वोंट लुक एट द लेटर्स, आई विल लुक एट यू, आई विल जज यू इन 10 minutes whether you are smart enough to work with my team or not. That's it. एम्प्लॉयर जो है वो इस तरह सोचते हैं। आपका सीवी अट्रैक्टिव होना चाहिए, आपकी सीवी पे हर चीज लिखी होनी चाहिए, क्योंकि जो आप सीवी पे कह रहे हैं हम ये समझेंगे कि हाँ वो हुआ हुआ है, ट्रू, दिस इज ट्रू, तो हम उसकी बेस पे करते हैं। और सर इस लास्ट लेटर क्वेश्चन, का, ये जो आपने बताया, सॉरी, जो जी आपने जी पीटी, सर, एक मिनट थोड़ी सी बात कर लो। पीटी जो है ना, अगर आप अच्छा कर लें, लेट्स से पीटी का रिजल्ट अगर आप 85 तक कर लें, 90 तक कर लें, 80 कर लें, तो दैट विल मेक अ ह्यूज सिग्निफिकेंस इन योर वीजा प्रोसेस। ठीक है, बट दैट वोंट राइट मेक सर, एनी डिफरेंस ऑन द एम्प्लॉयर, दैट वोंट मेक एनी इंप्रेशन ऑन your job prospect. Your job prospect will be your interview with the person and your CV. Your LinkedIn profile should be smart enough, because अगर आप मेरा पहला मैसेज कहीं देखें, जब भी मैं किसी को मैसेज भेजता हूँ, मैं उनको एक सोशल मीडिया की लिस्ट भेज देता हूँ अपनी, कि इस पे आप कनेक्ट कर लो। उसके पीछे एक लॉजिक है। मुझे कोई शौक नहीं है कि आप मुझे मेरे आके फॉलोवर बने या लाइक करें। मैं ये चाहता हूँ कि योर प्रेजेंस इज ऑल्सो अवेलेबल डिजिटली on LinkedIn smart way. You need to be available on Twitter. You need to be available on this Facebook, because आजकल जैसी एप्लीकेशन आती है ना, किसी एम्प्लॉयर के पास सीवी आया, उसने गूगल मारना है टक करके कि अच्छा इसका जरा देखो प्रोफाइल क्या चल रहा है, इसका माइंडसेट क्या है, इस बंदे का व्हाट ही थिंक्स, इसका पीछे बैकग्राउंड क्या है। अगर वो वहां पे रीजनेबल फार्मासिस्ट लग रहा है तो वो कहेंगे चलो चलो ठीक है, लेट्स गो द नेक्स्ट। ये पहला सर्च होता है। लिंक्डइन आपका अच्छा होगा ना, लिंक्डइन पे आपने जो अभी जैसे आपने यूनिफॉर्म पहना है, आप लिंक्डइन पे वैसे ही नजर आ रहे हो फोटो में, तो वो कहेंगे यार इज प्रोफेशनल गाय। कुछ लोग होते हैं अपनी अनप्रोफेशनल फोटोज लगा देते हैं लिंक्डइन पे, तो वो गलत करते हैं। परसों मैं अभी सौबी यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में था, तो वहाँ पे पेशावर के हॉस्पिटल के मेरे ख्याल से एडमिनिस्ट्रेटर आए हुए थे, तो उन्होंने भी ये बात की स्टूडेंट से, कि मैं बड़ा हैरान हुआ उनकी प्रेजेंटेशन में सुन रहा था। उन्होंने आती एक स्लाइड दिखाई कि स्टूडेंट्स गाइस यू नीड टू बी अवेलेबल ऑन इंटरनेट। वो पेशावर की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं यू नीड टू बी अवेलेबल डिजिटली। ये तो ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूं मैं, तो बहुत दूर बहुत आगे की बात कर रहा हूँ। वो तो पेशावर में कह रहे हैं कि वहां भी हम ये देख रहे हैं कि माइंडसेट क्या है लड़के का या लड़की का। तो मुझे नहीं समझ में आता कि जब मैं किसी से कहता हूँ कि आप डिजिटली अवेलेबल हो, लिंक्डइन पे आ जाओ, लिंक्डइन पे मैसेज करो, उसमें इतना ड्रॉबैक क्यों है हमारे फार्मासिस्टों के अंदर। हमारे फार्मासिस्ट इतना पीछे क्यों है इस चीज में। आपने काम किया है, आपने डिग्री अर्न की है, यू नीड टू बी ऑन लिंक्डइन, यू नीड टू, यू आर अ प्रोफेशनल, आप लेबरर नहीं है। व्हाई एनीवन कांट बी ऑन लिंक्डइन, व्हाई वी कैन नॉट बी ऑन लिंक्डइन एंड स्मार्टली प्रेजेंटेड। ठीक है, लिंक्डइन इज लाइक योर सीवी, अपडेटेड करंट सीवी। छोटी सी भी ट्रेनिंग की हो, छोटी सी भी पब्लिकेशन की हो, वो आपके लिंक्डइन में बैठी हुई होनी चाहिए। अभी जैसे एक अभी जोहेब ने बात की कि हमारे स्टूडेंट जो हैं फार्मेसी की ग्रेजुएशन के अंदर भी रिसर्च कर ली,
तो इफ उस बंदे ने रिसर्च कर ली और अगर उसने लिंक्डइन पे नहीं शो किया तो उसने छुपा लिया उस चीज को, उसने उसको इन्हांस नहीं किया, उसने उसको शो नहीं किया दुनिया को. So that's very, this is simple answer. राइट सर. और सर अगर हम पाकिस्तान में जैसे मेरा इंटर्नशिप भी काउंट होगी, अगर मैं कैप एग्जाम क्लियर कर लेता हूँ तो इसका मुझे वहाँ कोई एडवांटेज मिलेगा कि कोई एक्स्ट्रा मार्क्स जब होते आपका हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस काउंट होगा? आफ्टर बैचलर्स ऑफ फार्मेसी के बाद आपने किया है वो इंटर्नशिप, सॉरी आपने फार्मडी के बाद किया है इंटर्नशिप? यस सर, फाइनल ईयर में जी जी फार्मडी के बाद मैं फाइनल ईयर में भी कर रहा था, तब इंटर्नशिप चल रही थी, अब तो प्रॉपर जॉब चल रही है मेरी. Okay, anything after your graduation time that will count. राइट सर. ठीक है, आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है? सर 1 ईयर. Okay, then don't go for experience points because आपको पॉइंट नहीं मिलने वाले. तो आप वो वाला कैटेगरी में जाओ जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ऑफर कर रही है फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स. नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, आप अप्लाई करो कैप्स के बाद, गेट द असेसमेंट, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट का जो है अपना नॉमिनेशन बनवाओ और वीजा लॉन्च करो. सिंपल इज दैट. नो इश्यू. ये पहले नहीं था, ये सब चीजें पहले नहीं थी. ये सारी की सारी चीजें ये भी अक्टूबर 22 में आई हैं, ये जो मैं बात कर रहा हूँ. दिस इज द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन. उससे पहले वही था, 3 साल का एक्सपीरियंस होगा, कैप्स पास होगा तभी आप आ सकते हैं. लेकिन इस वक्त तो ओपन कर दिए डोर उन्होंने. तो टेक द एडवांटेज. 2 लाख वीजा बढ़ जाएंगे, अगर आपने नहीं लिया तो कोई और ले जाएगा. राइट सर. और सर ये जो आपने 2 लाख वीजास का बताया है, ये सिर्फ इस गवर्नमेंट ने ही ओपन किए हैं, मतलब ये गवर्नमेंट चेंज होगी तो वो भी पॉलिसी चेंज हो जाएगी? ये इस गवर्नमेंट का कह रहे हैं कि जी, इस जी. साल हमने देना ही है. राइट सर. ये अभी इस साल का है, ये 12 महीने के अंदर इन्होंने ओके सर. 12 महीने में ये क्लोज कर देंगे प्रोग्राम. इससे बेहतर है कि कैप्स जल्द से जल्द लिखें और लॉन्च कर दें वीजा, इस कैटेगरी में घुस जाएं. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. अगर कोई डिले कर रहा है वो उसकी चॉइस है. क्या पता अगले टर्म के अंदर, ये टर्म्स होते हैं गवर्नमेंट के, टर्म्स कहलाते हैं, सालाना प्रोग्राम कहलाते हैं. तो इस टर्म में ये इतने खुले हुए हैं, हो सकता है जगह भर जा बोले अगले साल हम ये दे ही नहीं रहे, फिर क्या होगा? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बोलेगी नहीं हम वापस आ गए वो 3 साल वाले पे. 3 साल का एक्सपीरियंस होगा, कैप्स होगा, तभी हम अलाउ करेंगे. देन फिर क्या होगा? तब ये सब हिस्ट्री हो जाएगी. ये सब हमें ऐसा लगेगा कि ये ख्वाब था जो खत्म हो गया. That's why I was encouraging everyone. मैं तो ढूंढ के मैसेज कर रहा होता हूँ लिंक्डइन पे, या तो फार्मासिस्ट तो अप्लाई कर दो, फार्मासिस्ट तो अप्लाई कर दो. वो लोग समझते हैं मैं स्कैमर आ गया पूछने के लिए कि मुझे पैसे चाहिए. मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए किसी से भी. राइट सर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम सर. Ukasha Umar, please ask your question. Yes, thank you. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कौन बात कर रहे हैं? जी उकाशा उमर. Ukasha, yes Ukasha, please come on camera, we will have a good chat then. Okay, let me just actually मेरा इंटरनेट स्टेबल नहीं है तो I think not going to come on camera. अच्छा, little about myself, doctor. 2019 में I graduated from Aus Eg University and then I worked 2 years in Novo Nordisk, and then last year I was working in Eli Lilly, and as you know Eli Lilly left Pakistan in November, so after that I began my process for MPH in Australia. So now I have confirmation from Federation University Melbourne, Ballarat campus. So I was about to pay fees and I saw this program. A friend of mine shared कि यार ये program हो रहा है, इसको ज्वाइन करो, उसके बाद डिसाइड करना. मुझे जस्ट ये डॉक्टर साहब आपसे कंफर्मेशन लेनी थी. A little bit I'm confused अब कि मैं MPH पे जा रहा हूँ तो 2 साल का मुझे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, 2 साल का स्टडी वीजा मिलेगा, उसके बाद 5 साल का मेलबर्न में पोस्ट स्टडी वर्क परमिट. तो आई एम देयर 7 years और इसमें मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट हो रही है 2.5 मिलियन की. अब जो आप बता रहे हैं उसके अंदर तो वही कैप्स की फीस जो है वो 1200 है, असेसमेंट की देन 2300 है, पीटी मैंने दिया हुआ है, मेरे 69 ओवरऑल हैं उसके अंदर. और मुझे जैसे ये पूछना था विच वुड बी बेटर, क्योंकि इसमें भी हमने बाद में पीआर फाइल करनी है, इसमें वी आर फाइलिंग पीआर आफ्टर 3 years.
आप क्या चाहते हैं? फौरन ऑस्ट्रेलिया भाग कर आ जाए इस वीजे पे जो आपको मिलने वाला है, ये चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं स्टेबल होकर आऊं यहाँ पे? आई थिंक प्लान तो यही है कि अभी जो हम अगर हम ऑस्ट्रेलिया आते हैं, लाइक इफ आई एम कमिंग फॉर जुलाई इनटेक, तो मैं आते साथ ही नवंबर में कैप्स दे दूं उधर ही, और फिर उसके बाद वही कैप्स दे दें, वहां से एमपीएचपी का अपना कंटिन्यू रखें, और उसके साथ ही हम जो है जब हम पोस्ट स्टडी वर्क परमिट फाइल कर रहे होंगे तब हम पीआर फाइल कर दें, हमारे पास कैप्स भी होगा, उसकी इंटर्नशिप भी हम कर लेंगे फॉर 1 ईयर, और अपना एमपीएचपी कंप्लीट कर लेंगे, तो रीजनल में स्टडी करने के हमें वो पॉइंट्स मिल जाएंगे। ओके ओके, आपने मुझसे क्या पूछना है? आप ये बताएं, आपको सारी चीजें पता है, तो आपने मुझसे क्या पूछना है? सर मैं चाह रहा हूँ कि जो ये मैं करना चाह रहा हूँ, इज दैट राइट? वहां पे आके भी कैप्स हो जाएगा, और या फिर मैं सिर्फ कैप्स करूँ और एमपीएच को रहने दूँ? मेरी फीस 9200 है, आई थिंक यही जो है मैं इजाफी दे रहा हूँ। डॉलर्स में बताएं, थोड़ा सा डॉलर्स में बताएं क्या फीस है डॉलर्स में? डॉलर्स में मेरी फीस है 9200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। उसके बाद हेल्थ कवर है 2 साल का 1200 का सीबीएसएच का, और ये 2 मेजर फीसेस हैं। देन प्रोग्राम की कैश फुल प्रोग्राम की फीस क्या है जो आपने मास्टर्स करना है, वो बताएं मुझे। फुल तो होगी ना, फिर आप इसको 4 से कर लें मल्टीप्लाई, मतलब $9,000 या $10,000 एक सेमेस्टर की फीस है, ये बताया आपने मुझे? यस, 10,000 into 4 times $40,000, ठीक है, फॉर 2 years, यस, $40,000, ठीक है। तो उस मास्टर्स को करके आपको क्या लगता है कि आपको क्या एडवांटेज होगा, ये पता है आपको? सर एक तो ये कि एमपीएच आप देखें कि जो यूएई के अंदर भी जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, मैं लिंक्डइन पे देखता रहता हूँ, दे आर ऑल एमपीएच। आप सऊदीया में भी काम कर सकते हैं एमपीएच पे, यू कैन वर्क इन पाकिस्तान। आप लाहौर में एलजीएस देख लें, जो भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इवन इन मुल्तान जो भी हॉस्पिटल्स हैं, इसके एडमिनिस्ट्रेटर सारे एमपीएच होते हैं। तो आपने बनना क्या है? यू वांट टू बी एडमिनिस्ट्रेटर इन दुबई, और यू वांट टू बी, मतलब आपने पढ़ाई करके वापस जाना है? इज दिस योर गोल? सर आई वांट टू बी सिक्योर कि यार अगर मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ तो मैं सिर्फ कैप्स के ऊपर ना, क्योंकि अगर कैप्स पे मैं अपना सारा डाल देता हूँ और खुदा ना खास्ता मैं फेल हो जाता हूँ, देन आई विल बी बैक टू स्क्वायर वन। इस तरह मेरे पास एक डिग्री भी होगी, मेरे पास कैप्स भी होगा, आई विल हैव ऑप्शंस कि यार मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। तो जो आपका दिल कर रहा है वो करें, मेरी एडवाइस आपके कोई काम की नहीं होगी। नहीं डॉक्टर इरफान, आई जस्ट वांट टू आस्क वन थिंग, जो मैं आपसे एडवाइस दूंगा कि मैं अगर वहां आके कैप्स दे दूं, वुड इट बी बेटर अपने एमपीएच No के साथ? difference. If you are in my group, there's no difference. Or if you go in Australia, or if you sit in Pakistan and attend that exam in Islamabad, it will be no difference. If you ask me an honest question, आप वही पढ़ाई करोगे जो कैनबरा में बैठ के करोगे, या आप जहाँ भी आप आ रहे हो वहां पे करोगे, चाहे वो पाकिस्तान में करोगे, आपको मटेरियल वहां भी वही मिल जाएगा, यहाँ भी वही मिल जाएगा, आपको कोई डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, सिर्फ डिफरेंस ये हो सकता है कि आप ऑस्ट्रेलिया आ जाओ तो आपको लगेगा कि शायद मैं अब बड़ा सिक्योर हूँ, आपको शायद एक अंदर से फीलिंग होगी कि मैं यहाँ आ गया हूँ तो बस मैंने वो चीज़ अचीव कर ली जो मैं अचीव करना चाहता हूँ। ये एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं हमारे ग्रुप्स के अंदर जो आंसुओं से रोते हैं आके, हमने क्या किया ये। बट डॉक्टर इरफान, माय सिचुएशन राइट नाउ इज दैट कि मैं एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा था और मुझे सेटलमेंट भी, मतलब मैंने ये जो सारा जो अपना खर्चा करूंगा मैं अपनी सेविंग से करूंगा, और जो मेरी सेटलमेंट हुई थी लिली में। बट द थिंग इज के अगर मैं वेट करता, आई विल बी अर्निंग देयर, मेरा ये पॉइंट है, और मैं 7 ईयर तो अपने सिक्योर कर रहा हूँ ना कि यार ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, ऑस्ट्रेलिया में इतने ईयर सिक्योर हो गए, डिग्री भी मिल जाएगी। इन 7 साल में अगर मैं कैप्स करके अप्लाई कर देता हूँ पीआर, तो मेरे पॉइंट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास रीजनल स्टडी भी होगी और वर्क जो होता है उसका एक्सपीरियंस भी होगा रीजनल में। सो डोंट यू थिंक दैट वुड बी अ सिक्योर बेट? अभी मैं 2-3 लोगों को जानता हूं जो बिल्कुल आपकी पोजीशन में होंगे, आप भी होंगे उस पोजीशन में, ठीक है, मैं जानता हूं, यहाँ पे एमपीएच कर रहे हैं, कैप्स पास कर लिया उन्होंने, ठीक है, और वो मूव नहीं कर सके टू रीजन एरिया बिकॉज ऑफ सम रीजंस, और वो जॉब नहीं हासिल। सॉरी टू कट यू,
सॉरी टू कट यू, बट हम तो रीजनल से ही कर रहे हैं एमपीएच। मैं बेलारेट में जाऊंगा, मेलबर्न के 1.5 घंटा दूर है ये एरिया। ठीक है। सो इट्स नॉट के मैं मेलबर्न सिटी में हूँगा, मैं बेलारेट में हूँगा, तो इट्स ऑलरेडी। अभी एक पाकिस्तानी को जॉब भी मिली है, मेरे मेरे ग्रुप में भी बताया उन्होंने, उनको बेलारेट में ही जॉब मिली है, एज ए फार्मेसी असिस्टेंट काम कर रही है वो, अभी कैप्स करने वाली है। तो जॉब बेलारेट में आपको जॉब मिल जाएगी, कोई मसला नहीं है। बेलारेट इज रीजनल एरिया इन विक्टोरिया। सो अब लेट मी जस्ट पुट इट आउट के इट वुड बी बेटर मैं बेलारेट में जाऊं, अभी बेलारेट में ही फार्मेसी असिस्टेंट पे जॉब भी कर लूं, मुझे वहां का एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, एमपीएच कंटिन्यू करूं, 7 कैप्स दे दूं। देखिए अगर आपके इतने सारे गोल्स है ना, एमपीएच भी करना है आपने, पूरा करना है, और बाद में अपने आप को यूज भी करना है उस डिग्री को, देन इज फाइन, यू कैन डू इट। बट सम पीपल हैव अ स्ट्रेट गोल कि हमने ऑस्ट्रेलिया आके सेटल होना है, हमने पढ़ाई नहीं करनी, हमने कुछ नहीं करना है। तो उनको फिर मैं ये कहता हूँ कि व्हाई यू गोना सबमिट दैट बिग अमाउंट ऑफ फी, और जस्ट सेव द मनी एंड डू द कैप्स एंड कम टू ऑस्ट्रेलिया। बिकॉज मेरे साथ बहुत सारे वीडियो अगर आप देखें, अगर आपने यूट्यूब देखा है मेरा, उसमें अभी 2 रिसेंट मैंने इंटर्न से बात की है, और उसमें 3 लोगों से बात की है, 3 फार्मासिस्टों से। उनसे मैंने आखिर में सवाल यही किया कि व्हाट डू यू एडवाइस टू pharmacists who are coming here for masters of public health or masters of pharmacy? The answer was that I won't recommend anyone to come on student visa because of this कि यहाँ पे इस वक्त कैप्स करके वीजे खुले हुए, हमारे जमाने में नहीं खुले हुए थे। अगर मेरे जमाने में खुले होते तो मैं इतने पागल थी कि मैंने $60,000 यहाँ पे रगड़ा खा के जमा करके काम करके पैसे कमा के यूनिवर्सिटीज को भरे। तो दैट वाज हर आंसर। सो लिसन दोज यूट्यूब क्लिप्स, तो आपको अंदाजा होगा कि आपके लिए कोई मसला नहीं है पैसा देना, देन इज फाइन। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। ओके, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू जी हेलो, आवाज आ रही है? जी मुझे आवाज आ रही है। जोहेब आप बताएंगे इनको आपने सवाल करने का। मरजान प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। मैं प्लीज वेट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मरजान क्या हाल है आपके? सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, थैंक यू। जी सर मैंने आपसे ये पूछना था कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो आ रहे हैं स्टडी वीज़ा पे, क्या वो फार्मासिस्ट नहीं है, वो बीबीए उन्होंने किया हुआ और किसी 2 साल के किसी कोर्स में एडमिशन लेके जो है वो आ रहे हैं। राइट। सर आपकी पिक्चर नहीं आ रही? मेरी पिक्चर क्यों नहीं आ रही? मैं तो सबसे ज्यादा पिक्चर पे नजर आता हूँ। जी सर। आपको नजर आ रहा है? जी अब आ रहे जी। तो सर वो जा रहे हैं मास्टर्स के लिए, तो वो कह रहे हैं कि अगर हम करेंगे स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई तो स्पाउस वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। सर आप श्योर नहीं हो रहे? अरे सर, तो सर जब मतलब कि अगर वो चले जाते हैं, वो कह रहे हैं कि 6 माह के बाद वो मेरा वीज़ा फाइल करेंगे, ठीक है? तो कैप्स जो है वो वहाँ जाके देना ज़्यादा बेटर होगा या मैं पाकिस्तान से ही कैप्स करके जाऊँ तो ज़्यादा बेटर होगा? कैप्स वहाँ देना और पाकिस्तान में देना, देयर इज नो डिफरेंस। पेपर तो एक ही आएगा और पढ़ाई करने वाला बंदा भी वही होगा। तो आई थिंक इट विल बी मोर इजियर फॉर एनीवन टू सिट इन देयर होम इन अ लग्जरी होम व्हिच यू हैव एट होम इन पाकिस्तान, स्टडी इन योर होम। एग्जैक्टली, दिस इज मोर एडवाइसेबल। जी। और सर मैंने ये एक क्वेश्चन मेरा और है कि लाइक आई एम ए डिसेबल पर्सन, तो मेरे लिए वहाँ पे क्या मुश्किलात हो सकती हैं, या लाइक वहाँ पे तो मेरा जो मैंने जहाँ तक सुना है कि वहाँ पे फिजिकली और इस तरह तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन जॉब में या इस तरह जो है वो मुझे क्या फैसिलिटेट किया जा सकता है वहाँ पे और क्या डिफिकल्टीज हो सकती हैं मेरे लिए एज ए डिसेबल पर्सन? Okay, that's a very good question. Very good question. इस तरह का कोई चांस तो नहीं है सर कि मेरा वीजा रिजेक्ट हो जाए इस बेस पे, क्योंकि ओब्वियसली ये डिसेबल पर्सन को समझा जाता है कि वो इकोनॉमी पे जो है वो बर्डन है। Okay, देखिए as such कुछ भी नहीं है, nothing. I know one person who got a visa just recently, a disabled person, pharmacist. जी सर। Okay, would you like to talk further privately with me on this topic? Yes sir,
Sir, I would like Okay. To take my number, take my WhatsApp number. that I will connect you through Facebook. Okay, then talk to me on WhatsApp. Come on, and discuss this with me. I can Sir, WhatsApp. discuss with you. Sir, your WhatsApp number, please. Your WhatsApp number. If you are connected on my Facebook, just message me. I will respond to you. Okay, sir. My name is Aska Marjan. I will connect you. Yeah, I will write my number here. Anyone, I will write it here because. Assalamu alaikum, sir. That's my number. Wait. Sir, can I ask a question, please? Sir, No, wait. Ask Zohaib. Zohaib is the coordinator for the program. He will let you ask the question. Please ask Zohaib. Please अपने mic off कर दें. मरजान अगर आप question complete हो गए तो आप hand. Thank you, sir. Allah Hafiz. Sir, can I ask about some industrial pharmacist professions? Nadir Fawad, please wait for a while. Umair, please ask your question. I am long queue since long. I'm waiting since long. Okay. Can I ask, please? Umair, Okay. Israr Okay. and Nadir, So- please mic off कर दें. Okay, sir. Thank you. Umair. जी, hello. Okay. Can you listen to me now? Yes, thank you. Okay, sir. इरफान साहब, आपसे क्वेश्चन ये है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जो आपने भी बात की है, एक्चुअली मैं आपका सेशन शुरू से ज्वाइन नहीं कर पाया, सो काइंडली बताइएगा ज़रूर कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इज़ देयर एनी गुड चांस और कोई प्रायोरिटी के ऊपर चांस है इन विद रिगार्ड्स टू एनी अदर स्टेट्स। और नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द चांसेस और व्हाट आर द ओवरऑल चांसेस कि मैं इस टाइम पे अगर मेरे पास 7 ईच आइट्स, यहाँ पर 69 मेरे पास वो होता है पीटी होता है एंड आई क्लियर माय कैप्स एग्जाम, सो व्हाट आर द चांसेस एंड व्हाट इज द टाइम लिमिट दैट आई have to wait to come to Australia? Okay, Umair, can you please come on the camera so I can maybe see you as well? Yes. Okay, so Umair, what you have done, have you done the caps or you are still waiting to do that? Well, actually I have applied for the assessment. मेरी डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट है और एक और मुझे आप क्वेश्चन यहाँ पे आंसर दीजिएगा कि मेरी डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट ऑलमोस्ट 2.5 साल हो चुकी हैं जो मैंने करवाए थे, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली रीजंस की वजह से मैं कैप्स एग्जाम नहीं दे पाया। तो आप मुझे उसकी कुछ लिमिट भी बता दें कि क्या उसकी कोई एक्सपायरी डेट है विद इन 3 years और समथिंग लाइक दैट। और एक्चुअली आई प्लान फॉर लॉन्ग, मैंने कैप्स एग्जाम बड़ी देर से प्लान किया हुआ लेकिन मैं दे नहीं पा रहा, उसमें मेरी अपनी रीजंस हैं। और तो असेसमेंट तो जी आपकी valid जो होगी। इनिशियल डॉक्यूमेंट असेसमेंट जो इनिशियल असेसमेंट होती है ना वो $1000 दे के जो होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जी, that must be valid. There is no expiry on that. If you ask them, Oh, that's good. तो you That's good. आपको कोई दोबारा फीस नहीं जमा करनी है, जस्ट उनको आप ईमेल लिखो कि योर असेसमेंट इज देयर, यू वांट टू सिट इन द एग्जाम। तो कहाँ बैठना है अपने एग्जाम में? पाकिस्तान में बैठना है, दुबई में, कहाँ? वेयर आर यू? Okay, right. So actually, sir, नहीं मैं I'm in Pakistan. I'm in Pakistan currently. Okay. So तो आपका एक्सपीरियंस है yes. हॉस्पिटल फार्मेसी का या रिटेल फार्मेसी का? That's my another question. Do you have 3 years experience or No, not? unfortunately, I only have experience for the retail pharmacy, but not for very long. Actually, currently I've been working in the marketing field for That's about fine. 3 to 4 years. So मेरे पास मार्केटिंग एक्सपीरियंस है। द अदर थिंग इज कि मेरी एक कंसल्टेंट से बात चल रही थी, वो मुझे कह रहे थे कि आपकी मैं असेसमेंट करवाता हूँ वेटएसएस के थ्रू एंड देन मार्केटिंग के अंदर यू विल बी एबल टू अप्लाई फॉर द पीआर। सो व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन? आइदर इट इज कैप्स और आइदर इट इज टू गो फॉर द वेटएसएस। ओके, विटासिस पे वो किस बेस पे कराएंगे आपकी असेसमेंट? मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। वीजा का चांस है उसमें? देखिए उन्होंने मुझे ये कहा है कि आपकी असेसमेंट आपकी हो जाएगी तो आपके 65 पॉइंट से प्लस बनते हैं कि आपका ईवाई डल जाएगा 190 या 491 के ऊपर, वो अप्लाई कर देंगे। वीजा का चांस कितना है? हैव दे सिक्योर एनी वीजा फॉर दैट सिमिलर पर्सन और सिमिलर कैटेगरी? No, he hasn't given me any good chances. So उसने मुझे कोई don't वो नहीं don't take a बताया। risk for your life on this category, because I have not seen anyone coming on this category. When you have a straightforward Okay. pathway Okay. open, do the caps, apply as no experience,
person and just get the visa, either Victoria So, or Western Australia. नहीं तो उसमें कितना टाइम लगेगा? Is it like कि मुझे then वो interviews देने पड़ेंगे and then I'll get the job letter and then apply, or either I will be applying for 190 or 491? Okay, I'll explain to you in very quick 1 minute. Okay. Yes, thank you. आपने कैप्स पास किया first of all, ठीक है? आपकी Yes, कैप right. assessment हुई, you just need to pay $2,300 to कैप्स and sit in the exam in July. 3 months में आपकी पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है? जी. आपने कैप्स पास कर लिया, you already have the PTE result in your hand, ठीक है? So you just go on Western Australia state nomination website, submit your PTE and your CAPS result, no experience. They will process that visa, they will process that state nomination in 1 month or 1 week time. You will get the letter, approval letter from them and apply 491 visa straight. Hopefully you will get 1 month or 2 months time, you will get the visa. That's so simple. No consultant required in this. You will save your money, bring the money, pay for the best car that you can buy here. Okay, right. So simple. Don't go for 190 visa. I don't know why you're saying 190 visa. Is it because it's the PR visa? No. एक मेरा दोस्त है जो कि इस टाइम पे विक्टोरिया में होता है, तो उसने 190 अप्लाई के ऊपर जो है उसको पीआर मिली है, क्योंकि उसने वो पहले ऑस्ट्रेलिया में था। ये तकरीबन लास्ट ईयर की बात है, मुझे मंथ याद नहीं है, आई थिंक अक्टूबर के अंदर उसको 190 मिली है विक्टोरिया में। ठीक है, तो वो पहले से था यहाँ पे? वो पहले से था यहाँ पे ना, उसका कैप क्लियर था। रीजनल 6 months का एक्सपीरियंस बेस पे अप्लाई किया होगा मेरे ख्याल से। Might be. I think he hasn't told me that. वो उसका circumstances था। You are not in Australia. आपके लिए जो मैंने रास्ता बताया 491, you will come with your family and start living, but keeping in mind marketing की jobs नहीं है यहाँ पे आपके लिए। जी वो तो डेफिनेटली यहाँ ऑस्ट्रेलिया के भी कैप्स ही करना है। तो वो कैप्स वही कर लो, आप जुलाई में कर लो, आपके पास सब चीज रेडी है। जुलाई में फीस भरो, जुलाई में बैठ जाओ, हमारे ग्रुप में आ जाओ, पढ़ाई। जी 2 महीने में आप पढ़ के खत्म कर सकते हो पढ़ाई। 2 months 6 hours daily you can do बिल्कुल। Okay, that's good. Okay, sir, कुछ एक और भी ऑप्शन है कि some of the consultants they are saying कि like pharmacy technician is also a good option, और वो उसके ऊपर भी हम जा सकते हैं। pharmacy technician बहुत सारी स्टेट्स में ओपन है। और उसमें एक्सपीरियंस कहाँ से लाएंगे? एक्सपीरियंस ये इट्स अ गुड क्वेश्चन। जाहिर है एक्सपीरियंस इट विल बी डिफिकल्ट। एक्सपीरियंस लाना होगा, उसको वेरीफाई कराना होगा और फिर भी कैप्स करना होगा। हाँ कैप्स तो फिर भी राइट। तो पहली ही कड़वी घूट पी लें और आ जाएं सीधे जब रास्ते खुले हुए। वो एक्चुअली you know कि पिछले 2 साल से कैप्स इसलिए नहीं दे पाया because I have been working in the field of marketing and the job is very hectic, और जॉब छोड़ना पॉसिबल नहीं है कि मैं टेस्ट की तैयारी करूं। So these are some of the reasons, that's why I couldn't take up the test. Best advice for you, do the caps, reduce your working hours, maybe take 1 month leave, study hard, attend the exam in July in Pakistan, and complete this transaction and come to Australia by end of this year. Okay, that is good. Thank you. I think Nadia has left. Hello. So अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी फैसल वन्नान बात कर रहे हैं। जी फैसल कैमरे पे आ जाइए, बात कर लीजिए, थोड़ा सा इजी हो जाता है मेरे लिए। उस्मान जी हेलो फैसल वेट। उस्मान प्लीज क्वेश्चन बताएं अपना। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? जी वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? I'm fine, sir. I'm just first of all admire your efforts for the community pharmacists. I'm just watching your webinars and communities. Your efforts are just admiring. And a little introduction from my side. Yes. I'm just a quality assurance pharmacist. Yes. Graduated from 16 to 2021, and I'm currently working as a quality assurance pharmacist in industry sector. Sir, first of all, I have few questions. Yes. I think I should ask one by one. Yes, please. Sir, first of all, I think first question I have for you,
Sir, what will be the job opportunities from your perspective? I think I'm just working for 1 year, and I have to work all in departments in the industry. I have just injections and tablets and all I have covered in these 1 year. Okay. So what are the job opportunities in First Australia? of all, you need to be in Australia, right? Yes, yes. So how you will come to Australia with your 1 year experience? You cannot come on your 1 year experience as a pharmacist in Australia. You need to have at least 3 or 4 years industrial experience with your pharmacy degree for Vitasis. Then you can apply for the state domination visa. Otherwise, you need to do the CAPS and do what I have explained to the other fellow and apply it quickly. Sir, a little confusion. There are what are the job regarding the industrial sector? Is there a sector that is well graduating in this sector in Australia? Look, Are there any? industrial pharmacy profession jobs are very rare. Okay. Very rare. Sure. Not negligible, near to negligible. Okay. Okay. So if you're thinking to come to Australia, you need to forget about industrial pharmacy and become a community pharmacist. Sure. Okay. So I think you are just recommending me to come here and working as a community pharmacist. Yes. Yes. Sure. So I have a second question. I have my degree right now. I have passport, photographs absolutely available there, and I have just my mark sheet. The one thing I just missing right now is my category, because we are just the pioneer batch, and I just graduated from the Gulab Devi Hospital, and it's the chest hospital, the largest in Punjab, Pakistan. So we are. Have you applied? Have you applied? No, I have not applied. The Come third on, one you is that. need to apply it. At least apply it right now. Sure. So my third question is was that I have just watched your a lot of webinars. A lot of information was there. So a little confusion from where I just start to put up my assessment. First step is I think it's the assessment. You need to apply for CAPS body APC website. Sure. You need to open a portal there. You need to open a login and ID, make your ID, and then apply and like load this scanned document which you have already, and also apply for pharmacy license, Pakistan Pharmacy Council license, and submit a letter saying that you are eligible for getting that certificate from them, and apply that. CAPS will accept it, and you can do your assessment, pay the fee of $1,300. When the assessment will come positive, you can attend the exam in July. And I have made a YouTube 1-2 minute clip on this matter as well, where if you don't have a license in your country, how you can submit your document. I have made one video on there, so you can watch the video on my YouTube channel. Okay, sure, sir. I just go there. Yesterday I was just listening. You're just talking about that if you haven't taken any sort of category, you may go for the lateral assessment. Yes, assessment. So I will encourage everyone that when you get your degree, apply Pharmacy Council license same day. Don't waste a day, because that will actually delay your whole process. But do that as a priority. All right. So simple solution is for you, because you are a pharmacist by your qualification, but you choose industry by your own choice. But if you come into Australia, you can change that way to community pharmacy. You can become a registered pharmacist. Your earning will be high. You can start your life here in Australia. In maybe 3 to 4 years time, when you start connection here, you will find maybe a job available, and you can go back to industry later on. Who knows? Sure. So I think right now the first or the most important thing is to just go for the applying my documents. On which website you just start? ABC website. On which website? CAPS APC website. CAPS website. CAPS. So my passport, except my category, I think passport, mark sheet, and degree. All these things are valid. Yeah. Are you on TikTok? Yes. Okay, watch my TikTok. I have a TikTok video just on that, which I said applying CAPS is very simple. Just this, made a profile, do this,
No attestation required. There was a big confusion with so many pharmacists that I need to get them attested by embassy. I need to get them attested by HEC. I need to get it attested by brigadier in Pakistan. I say no attestation is required. Just a simple 6 copies of your document, and that is accepted by CAPS. So simple. Okay, sir. Thank you. All Thanks right. lots, sir, for all your efforts. I just admired. Thank you. Thank you. Israr Khan, please ask your question. Hello. Please. हेलो सर। जी बताएं, क्वेश्चन बताएं आप, लेकिन आवाज आप कम आ रही है। इसरार खान, आप म्यूट पे हैं, आप पहले अनम्यूट करें अपने आप को। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। हेलो सर। जी अब आवाज आ रही है। यस सर जी, मैं आपका बहुत से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वेलकम। थैंक यू फॉर कमिंग। सर, मेरा क्वेश्चन था कि हम अगर फार्मेसी टेक्नीशियन पे असिस्टेंट फार्मासिस्ट जाए ऑस्ट्रेलिया पे, आ जाए, और वहाँ पे अब केप्स एग्जाम वहाँ पे दे देना, तो बिल्कुल हो सकता है। अगर आपका एक्सपीरियंस लेटर बन जाता है या है आपके पास, तो व्हाई नॉट। बिटासिस को आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें जो उनको चाहिए। उनको आपसे आपका एक्सपीरियंस लेटर चाहिए, एटलीस्ट 3 to 4 years एक्सपीरियंस हो आपकी फार्मेसी पास होने के बाद। लाइसेंस हो या ना हो, डजंट मैटर। आपके पास अगर ये है और आपके पास पे स्लिप्स हैं और आप सबमिट कर सकते हैं वो सारी डॉक्यूमेंट विटासिस की वेबसाइट पे ऑनलाइन जाके। $1600 वो फीस लेते हैं, एंड यू कैन गेट द पॉजिटिव रिप्लाई in 10 days. In 10 days, you will get a positive reply for pharmacy technician in 10 days. ओके सर। ठीक है। और जहां से भी आप एक्सपीरियंस लेटर दे रहे हो, make sure they will call that company or place. They will call and ask that कि किस डेट को आपका जॉब स्टार्ट हुआ था, किस डेट तक आपने कितने जॉब किए हैं, क्या सैलरी मिलती थी आपको, कितने आवर्स काम करते थे, वो वेरीफाई कर दें तो वो पास कर देते हैं टेक्नीशियन का एक्सपीरियंस। और इंग्लिश का PTE टेस्ट करना है जो कि 65 चाहिए। देन अप्लाई फॉर स्टेट नॉमिनेशन अगेन। स्टेट नॉमिनेशन जो टेक्नीशियन के लिए सबसे बेस्ट है वो विक्टोरिया है, वो साउथ ऑस्ट्रेलिया है, वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। ये तीनों जो है बहुत फ्रेंडली है इस वक्त। इन तीनों में अपना स्टेट नॉमिनेशन अप्लाई करें $350 दे के। उसके बाद वीज़ा अप्लाई करें, आप अपने साथ अपनी फैमिली का भी वीज़ा लॉन्च कर सकते हैं। अल्लाह खैर सल्लाह 3 से 4-6 महीने के अंदर आपका वीज़ा लग जाएगा। आप यहाँ आ जाएं, काम करना शुरू करें, जॉब ढूंढ के किसी रीजनल टाउन के अंदर, फीस जमा करें कैप्स असेसमेंट की, और फिर इम्तहान में बैठ जाएं 3 महीना तैयारी करके। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। और अगर आपने ज्वाइन करना है तो वो हमारा फेसबुक ग्रुप है या कौन सा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आ जाएं। उसमें वक्तन वक्तन आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। देन इट विल बी इजी प्रोसेस। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो वो प्रिपरेशन का एक अलग ग्रुप है हमारे पास। हम उनको उस ग्रुप में आने देते हैं जिन्होंने विटासिस नहीं, कैप्स की असेसमेंट की भी होती है। उससे पहले हम उसमें उनको आने नहीं देते हैं क्योंकि वो यूजलेस होता है। क्योंकि कैप्स की असेसमेंट करने वाला ही जब वो पैसे दे चुका होता है $1300, तो वो ही हम उसको समझते हैं वो सीरियस बंदा है, तभी हम उसको पढ़ने को देते हैं। अदरवाइज हम किसी को किताब भी दे दें तो वो उठा के घर में फेंक देगा, वो कहेगा मैं थोड़ी पढ़ूंगा। वो इसलिए जरूरी है कैप्स की असेसमेंट हमारे ग्रुप में आने के लिए, एग्जाम वाले के लिए। लेकिन इन्फॉर्मेशन ग्रुप में कोई भी आ सकता है। ठीक है, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Afifa Shafqat, please ask your question. Afifa Shafqat. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मिस अफीफा, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह सर, हाउ आर यू? जी मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ इस कन्वर्सेशन को क्योंकि मेरा फेवरेट टॉपिक है ये। जी सर, मैं भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन कैच कर रही हूँ वेबिनार से। और सर बेसिकली मैंने फार्मडी 2021 में किया एंड और उसके बाद मैंने 1 ईयर एक्सपीरियंस है मुझे जॉब का रिटेल में। और अभी रिसेंटली मैंने एमफिल के लिए अप्लाई किया था, तो एमफिल में एडमिशन ले लिया और जॉब कंटिन्यू है। बट मेरा एम है कि मैं अपना एक्सपोजर बढ़ाऊं और
इंटरनेशनल एक्सपोजर होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा मुझे कंफ्यूजन थी कि विच कंट्री को मैं टारगेट करूँ, बट मुझे पाथवे समझ नहीं आ रहा था ना, और मैं नहीं चाहती कि मैं स्टडी वीज़े के थ्रू किसी भी कंट्री में जाऊँ बिकॉज लॉट ऑफ एक्सपेंसिव। तो अभी मुझे जो आपने ऑस्ट्रेलियन वीज़े के लिए पाथवे बताया है, तो ये मुझे एक यानी इंस्पायर भी किया है और एक मोटिवेशन भी मुझे मिली है। आसान हो गया। जी जी। तो अब मैं इस बात पे कंफ्यूज हूँ कि मैं अभी से इस असेसमेंट के लिए अप्लाई करूँ या फिर आफ्टर माय कंप्लीटिंग एमफिल। तो आप अरे भाई मुझे इस पे नहीं थोड़ा नहीं गाइड नहीं करें। नहीं, एमफिल कहाँ से आ गया बीच में, कैप्स के बीच में? एमफिल करके आपको कोई वो ग्रेस मार्क्स नो थोड़ी नो दे सर, मैं देंगे। कर रही हूँ ना, तो इस वजह से मुझे कंफ्यूजन आ रहा है। नो 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 नो, एमफिल करने और ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और एमफिल वो हेलो जी जी। हेलो जी सर। जी जी। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। देखिए, एमफिल के बगैर अभी आप कैप्स असेसमेंट को अप्लाई करें, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स भेज दें जो कि आपके पास होंगे, डेफिनेटली आपके पास हर चीज़ मौजूद है, तो ऑनलाइन जाके एप्लीकेशन सबमिट कर दें, ठीक है। और साथ में एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दें। और अगर जुलाई में बैठना है या नवंबर में बैठना है तो जस्ट सिट इन द एग्ज़ाम and pass the exam and apply the visa which we already explained। वीज़ा हो जाए तो ऑस्ट्रेलिया आ जाएं, क्योंकि अभी वीज़े खुले में, तो ये लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो साल 2 साल तक होती हैं, उसके बाद चीज़ें चेंज हो जाती हैं। पिछले साल ये कुछ नहीं था, पिछले साल इतना चर्चा हम नहीं कर रहे थे, था वीज़े सिंपल होते थे, कैप्स पास करते थे लोग और फिर एम्प्लॉयर को ढूंढते थे कि एम्प्लॉयर उनको स्पॉन्सर कर देगा तो वो आ सकते थे। लास्ट ईयर पूछें कितनी जिद्दोजहद थी, लास्ट ईयर भी हम वेबिनार करते थे और हम उन लोगों से बात करते थे, हम नए लोगों से तो बात ही नहीं करते थे, हम सिर्फ उनसे बात करते थे जिनको कैप्स का पता हो और जो कैप्स पास करके मुझे अप्रोच करते थे ढूंढ ढांढ के। फिर मैं उनको उनके साथ वेबिनार्स करता था और उनको मैं एजुकेट करता था कि आपका अपना सीवी कैसे अच्छा करना है, आपको इंटरव्यू कैसे अच्छा करना है। और फिर मैं उनमें जो बेस्ट पर्सन होते थे उनको मैं कनेक्ट कराता था एम्प्लॉयर से और बात करता था, भाई ये ओवरसीज से आए हुए हैं, जिम्बाब्वे से आए हुए हैं, पाकिस्तान से आए हुए हैं, इनको जरा आप चेक कर लो कि आप इनको जॉब दोगे, वीजा दोगे। तो वो सूरत हाल थी लास्ट ईयर। तो अब सूरत हाल डिफरेंट है, अब तो स्टेट कह रही है कि आप आके हमारे वेबसाइट पे आके आप आके कैप्स पास करके ले लो हमसे स्टेट नॉमिनेशन। हम पहले एम्प्लॉयर को ढूंढते थे, एम्प्लॉयर नॉमिनेट करेगा। तो इस वक्त तो चेंज हुआ हुआ सिनारियो। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये सारी जिंदगी से हो रहा था और आज पता चल गया आपको, ऐसा कुछ नहीं है, ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है ये। और ये इंफॉर्मेशन जो है ना वैलिड है, वी डोंट नो कब ये इनवैलिड हो जाए, तो व्हाई टू डिले दिस ऑल। एवरीवन लिसनिंग दिस माय इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अभी समझाने की कोशिश की है सबको। ये कोई बरसों से ये चला नहीं आ रहा था सिलसिला जो आज आपको पता चला है, ये नई चीज है ये। अगर आप ये बात कर रहे होते मुझसे पिछले साल जून में तो ये कुछ नहीं था, नथिंग वाज देयर। यू गॉट माय जी आंसर बिल्कुल अफीफा। सर, आपकी बातों से यही है कि ये गोल्डन चांस है, हम इसको अभी अडॉप्ट कर सकते हैं। जी जी, जस्ट यूज दिस। एग्जैक्टली। ओके सर, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आई So डू वेल। don't wait for MPhil, don't wait because MPhil is not a requirement for your caps। आपका जो फार्म डी है वो आपके हाथ में है, just apply it। ओके सर, थैंक यू सो मच। वीजा लग गया, आप आ गए, तो आपकी लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आ जाएगा। और ये बात जो हम कर रहे हैं सिग्निफिकेंट चेंज की, वो आपकी लाइफ की नहीं, आपके फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बात हो रही है, क्योंकि आपके जब यहाँ फैमिली आबाद हो तो दैट विल बी अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट। आप ये ना सोचो कि आप अभी निकल के आ जाओगे और यहाँ पे काम करोगे और कुछ होगा। इट्स अ ह्यूज ह्यूज एडवांटेज। ये दुबई नहीं है,
जहाँ पे आपको काम करना है, वीजा खत्म हुआ वापस, ऐसा नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। ओके, थैंक यू। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है, उसी से रिलेटेड है कि नाम बताइए सर, मुझे नाम बताइए आप प्लीज। सर कौन बात कर रहे हैं? कैमरे पे आ जाएं तो अच्छा। उमैर उमैर बात कर रहा हूँ। उमैर भाई प्लीज वेट करें, बहुत लंबी लाइन है, if you don't mind. ओके, बस एक छोटा सा एक क्वेश्चन है कि once we get invite from the Western Australia, $4,200 हैं primary applicant के, and then secondary applicant के 22 हैं, and then बच्चों फैमिली को हम बाद में बुला सकते हैं after saving some money. Thank you. नहीं, बाद में क्यों बुलाएंगे? जब आप एप्लीकेशन वीजे की लॉन्च कर रहे हैं तो सारी लॉन्च कर दें। आप क्यों लॉन्च करेंगे सेपरेट उनकी? सर एक्चुअली समटाइम्स हर किसी के पास इतने फंड्स नहीं होते, लाइक 10 लाख इकट्ठा करना चलो फिर आसान है, रादर देन के 20 लाख आप इकट्ठा करें, यू नो डॉलर रेट कहाँ पर चला गया। हाँ ठीक है, that's something you can do it later, that's fine. और उसमें उनके वीजा तो उनको वही मिलता है ना, 491 ही मिलेगा उनको भी। जी वही वीजा, एक जो आपको मेन एप्लीकेंट आप हैं, आप उस फैमिली में जितने आप शो करेंगे वो करेंगे, मर्जी आपकी जितना आप उसमें करें। ओके, एंड व्हाट अबाउट वंस हम उधर पहुंच जाते हैं, कैप्स हमारा क्लियर है, तो व्हाट आर द जॉब चांसेस के कितना टाइम लग जाता है जॉब सर्च करने में? बिकॉज़ इफ वी आर मूविंग विद आवर फैमिली। कैप्स देखें, अभी मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले, यार इस भाई को कब तक बोलोगे? किसी और को भी चांस दो। चले हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, ये मैं आंसर कर दूंगा, आप थोड़ा सा वेट कर लें, ठीक है? क्योंकि दे आर ओके पीपल वेटिंग, बिकॉज़ दिस इज नॉट रिलेवेंट राइट नाउ, यू नीड टू पास द कैप्स एंड देन जंप ऑन दिस क्वेश्चन, राइट? ओके हसनैन इज नेक्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम हसनैन जी, बताइए सर हसनैन कहाँ से बात कर रहे हैं, और थोड़ा सा वीडियो पे आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छा। जी सर मैं आ गया हूँ वीडियो। थैंक यू थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएं क्या जी सर, I have graduated in 2021 and I am from Lahore and I am doing job in marketing department. And sir, I just want to ask question about PTE exam. I have passed PTE with overall score of 70. But in writing I got 63 score, and in other sections I got 63. But in other section I got 66 plus. Okay. And that makes my overall 70. So that's why I want to ask. आपको एक एपरा का पेपर देता हूँ, एपरा की जो रिक्वायरमेंट है इंग्लिश की, वो देखा हुआ है आपने? I think they require 66 each. हाँ यस, तो आपको अगर पढ़ लिया आपने वो डॉक्यूमेंट, उसमें लिखा हुआ है अगर 66, तो वो आपका टेस्ट बेकार है, आपको रिवाइज करना होगा। Sir, we cannot apply or we need to, for immigration. इमिग्रेशन के लिए चलेगा, इमिग्रेशन के लिए चलेगा, आई थिंक इमिग्रेशन के लिए निकल जाएगा, आपका काम हो जाएगा। लेकिन जब आपरा को आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन डालोगे ना, फार्मेसी में जब जॉब मिलेगी, वहां उनको तकलीफ हो जाएगी, वो बोलेंगे ओ यू मिस दिस बाउंड एज। मैं आपको ना ये, आप मेरे ग्रुप में हो या नहीं हो? आप मेरे ग्रुप में? Yes, I am in the group and आप मेरे उस ग्रुप पे हो, वो जो ग्रुप है ऑस्ट्रेलिया फार्मा इन्फो 23, उस पे हो? No sir, I am not there. ओके, आप उस ग्रुप में आओ, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, उसको पढ़ो गौर से, ठीक है? अगर उस पे लिखा हुआ है कि आपका ये क्रॉस हुआ हुआ है तो कोई मसला नहीं है। आई थिंक मेरा जहां तक गट फीलिंग है ना, ये है क्रॉस, आपका पार है ये। एक मिनट, आई विल जस्ट रीड दैट। And sir, I have also applied for skill assessment and I am planning for July. Caps. Inshallah. Caps. Yeah. Inshallah. वेरी गुड, गुड। तो ग्रुप में आ जाओ, हम तुम्हें पढ़ा देंगे भाई, फ्री में पढ़ा देंगे। ओके सर। सर आई वांट अ लिंक फॉर द ग्रुप। देखो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, पेपर पे लिखा हुआ है नो स्कोर इन एनी ऑफ द कम्युनिकेटिव स्किल इज बिलो 58। ओह ओके। PTE 65 मिनिमम and individually you each a minimum score of 65 in each of the communicative skills across the 2 sittings. A minimum of 65 in each sittings. No score in any of the communicative skills below 58. तो ये 58 कह रहा है, तो इसके हिसाब से you are okay, you are safe. Yes, maybe I wish it's safe. Don't worry about it. Focus on caps. That's the main thing.
वीजा तक आप सेफ हो, ठीक है। वीजा लग जाए, नॉमिनेशन जब वीजा हाथ में आ जाए या कैप्स हाथ में आ जाए तो पीटी दोबारा बैठ जाना भाई, ऐसा क्या हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम। 50,000 का तो है, पीटी 50,000 रुपीज का तो है। कैप्स से कम निकाल लो और उसके बाद ये हो जाएगा, ये कोई मसला नहीं है। Okay, sir. नियत होनी चाहिए। Yes, I have another question, sir. I am also enrolled in MBA last year, and I have done 2 semesters, and I am not sure there is any other scope. And you can tell me, is there any scope if I have come to Australia after CAPS? There is any scope for MBA in pharmacy as a manager level post or anything else? Okay. When you will complete your MBA? When? Feb 2024. No, February 24 तक कंप्लीट हो जाएगा आपको, डिग्री आ जाएगी आपको। Yes, sir. Okay. Then get the degree. हो सकता है काम आ जाए आपको कहीं। Okay. जब कितना थोड़ा सा रह गया ना, लेकिन ये कर लो, वीजा अप्लाई कर दो, वीजे का बंदोबस्त हो जाए, वीजा हाथ में आ जाए, डिग्री खत्म करो, फिर अप्लाई कर जाना। Okay, okay. ठीक है, Thank you, get the sir. degree, don't lose the degree. काम आएगा, Okay, कहीं ना कहीं काम आएगा। मैनेजर लेवल बनने में जब बात आएगी ना, जब 3 साल के बाद आपको देखोगे तो बोलना मेरे पास MBA की डिग्री है, तो हो सकता है बॉस बोले अच्छा इसके पास MBA की डिग्री है, चलो मैं जरा इसको चेक करूं काम करवा के, मुश्किल काम देके, और आपने काम करके दिखा दिया तो वो डिग्री पे कैश हो जाएगी। Okay, sir. Thank you. And sir, I want a link for the group that you were asking. Okay, मैंने यहाँ पे एक शायद शेयर किया है हर एक को ना, शायद मैंने everyone in the meeting, मैंने एक अपना वो शेयर किया था, मैंने शायद व्हाट्सएप ग्रुप you shared your number, I think. हाँ, मैंने व्हाट्सएप भी किया है, मैंने अपना ट्विटर भी किया है, मैंने अपने सारे TikTok, Facebook, Twitter, Insta, LinkedIn, not WhatsApp. नहीं व्हाट्सएप किया है मैंने, व्हाट्सएप नंबर सबसे ऊपर है मेरा व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू। मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, यू कैन कांटेक्ट मी। ओके, ठीक है, टेक केयर। Vivo V2116, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। वीवो तो मोबाइल नंबर लग रहा है, कोई मुझे मोबाइल कंपनी। Yes, sir. He might have got sponsorship. Vivo? Sponsorship from Vivo company, Vivo mobile company. Yes, sir. Yes, sir. क्या नाम है सर आपका? आपकी फोटो आ रही है। Please ask your question. Might not be interested. चलें दूसरे से पूछने की बात नहीं, आप दूसरे को। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। Yes. Adnan, please wait. Herbert. Hello. Yeah. Hello. Yes. Can you hear me? Yes, sir. But how are you? How are you? I'm good. I'm a bit kind. I'm joining from Zimbabwe. Yes, thank you. Welcome. Yeah. So first of all, I just want to say thank you for your audios that you send on your social media handles. Yeah, they are doing wonders for me. Yes, I love a lot of Zimbabwean. You know that? I love Zimbabwean pharmacists. Yeah, I'm proud to say that I've actually set for the CAPS exam in this March session, and they are doing wonders. Each and every video that you post, it's doing wonders. Just praying for a positive outcome in the next 2 to 3 days. Do you know that 3 Zimbabwean pharmacists working under my supervision here in Australia? I just know someone by the name Hilda and Tanya. She's from Harare. Hilda is from Harare, and Naisha is from your Harare. All right. Yeah. So I'm from Harare too. Yes, so I started the entire following your videos in November. So I set for the exam in March. So yeah, they are doing wonders. So I've got one question. Yes. Which is troubling me right now. I think you are the only one who can clear that confusion. So I've got less than 5 months of post-qualification experience as a pharmacist in Zimbabwe. Yes, no problem. Right. Yes. And my pharmacy council issue out a certificate of good standing after 2 years. So is it possible? Yeah.
That's what I heard. So I just took a leap of faith and I said, I'm going for this. And I'm just praying that they give me the certificate of good standing without that much of experience. Have you ever helped someone with less than 2 years experience? Not like this. I never come across this question. No, this is first time. So I'm thinking out of box solution is that if you can write back to APRA for your application, for your provisional registration, and say that story that my council in Harare do not issue a good standing certificate for a pharmacist more or less than 2 years. I cannot get a good standing certificate. Would you exempt me? They will exempt you. All right. Thank you, sir. Just write that to provisional registration body, which is APRA. Is nothing to do with CAPS, is nothing to do with APC, is only APRA, which is the next level of your registration, where they will ask you that. When this question will ask, you will reply that nicely. They may come back and say, can you please write that in a paper or get this in writing from your board? That would also be acceptable for them. Oh, thank you so much, sir. Okay, thank the you. Next question that like I've been doing the cups preparation from an Egyptian group. Yes. So I didn't want to mix with your group. So, but now I'm done with cups. Do you have a mentorship group on how to look for jobs, how to conduct interviews? I got a group for pharmacists who done the CAPS, and I include those who come for that kind of assistance. So I have a jobs group as well. All right. So I'll contact you in the next 3 to 4 days if my just message me on WhatsApp and send me your introductory video and CV, and I'll put you in that group and I will discuss jobs, because I employers come to me for intern jobs. I'm very proud to say that I think I engaged 80 pharmacists, intern pharmacists in last 12 months, that they have been secured jobs through me, and they're working now. They got the visa, they got the sponsorship visa from employer, and that's why I was on TV and radio a few times because of that work. Yeah, I've been following all your videos. They are doing wonders for me. They're acting like a motivation for me. This is a motivation. Why not? Yes, and this time employer visa is not really important, because government is saying state nomination is open, so you can apply state nomination in Western Australia and come here quickly. Okay, sir. Thank you. I'll connect you on WhatsApp. Thank you. Take care. Shahid Ali is next. Yes, Shahid. Shahid Ali, गाड़ी चला रहे थे. Yes, I saw you. Yes. How are you? आप म्यूट पे हैं. आपकी आवाज नहीं आ रही शायद. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. How are you? कहाँ पे हैं जनाब आप? फाइन सर, अल्हम्दुलिल्लाह. आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है सर. मैं अच्छा हूँ. आप कहाँ पे? बड़े जबरदस्त मौसम में गाड़ी चला रहे हो. हाँ सर, अभी हम शारजा में हैं और यहाँ पे बारिश हो रही है. क्लाउडी वेदर है, बहुत अच्छा वेदर है. Very nice. जी जी सर. सर मेरा क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन है. एक एज रिलेटेड क्वेश्चन है और एक मेरा जॉब से रिलेटेड है और एक कैप्स के हवाले से. फर्स्ट तो मैं कैप्स पे आऊँगा कि सर मटेरियल के हवाले से हमें जो काफ़ी मतलब कंफ्यूजन है, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन की थी इन 2009 एंड इट्स बीन अ लॉन्ग गैप. कितना गैप है? सर 2009 में मैं पास आउट हुआ. ईयर बताया ना कितना है? 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, कितने साल हो गए? नहीं 20-30 साल तो नहीं है. ऑब्वियसली 14 इयर्स. देखें मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जिनकी मैंने वीडियो लोड की थी, शायद आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं देखी. जाके मैंने देखी है सर, बिल्कुल देखी है. 26 साल वाले साहब हैं, ठीक है, और एक अभी मैंने लोड की है 16 साल वाले. तो आप दोनों से कम है तो कोई मसला ही नहीं है. Okay sir. I was a bright student, although I was position holder, and अब सब कुछ भूल गया हूँ. In a professional life, I don't remember anything, to be honest. तो जो भी चीजें स्टार्ट करनी है, स्टार्ट से ही करनी है, मतलब एज अ बेसिक. तो 2 महीने लगेंगे आपको, 2 महीने लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे. ओके सर. तो सर मेरा तो मतलब प्लान ये कि नवंबर में मैंने प्लान किया हुआ है अपीयर होने के लिए, और डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो. एक दो डॉक्यूमेंट्स जो है ना पूरा डेटेड नहीं है. क्यों नहीं है? डॉक्यूमेंट में क्या ऐसी चीज है जो आपको दिक्कत आ रही है? सर एक तो नारा का कार्ड है सर, ऐसा कुछ नहीं है. नारा का कार्ड और पासपोर्ट इज गोइंग टू एक्सपायर मे बी आफ्टर 7 months.
So it will not take too much पासपोर्ट time. एक्सपायर होने वाला है या हो चुका है? नहीं होने वाला, it's about to, it's up to 7 months. तो उससे क्या होता है? कैप्स को क्या लेना देना आपकी एक्सपायरी से? आप अभी अप्लाई कर दो, अभी मान जाएंगे, उसमें क्या मसला है? एग्जैक्टली सर कैप्स का तो मतलब वो कंसर्न डॉक्यूमेंट्स का नहीं है, कंसर्न जो है मेरा स्टडी का है कि until June I think I cannot prepare for it. So obviously but 100% in November I'm going to appear for CAPS. I'm preparing for it. I've just started my preparation. तो फर्स्ट तो ये था कि उसके बाद जो सेकंड जो है सर वो ये कि यहाँ पे मुझे यूएई में almost it's been 8 years working in UAE as a community pharmacist in different organizations. Yes. So जो first मेरी organization थी वो अब no more is in UAE sir. It's been closed and I don't have salary slip from pay slips from those organizations. The first जो है करंट की है आपके पास? करंट की है। पिछले का लेटर है खाली? पिछले का लेटर भी है, ऑफर लेटर भी है और तो बस सही है, तो उसकी फिक्र क्यों है? पे स्लिप और कंपनी की फिक्र नहीं होनी चाहिए। वो थोड़ी वो क्लोज कंपनी को फोन करके आपको वीजा देंगे। जो करंट कंपनी है उसी को वेरीफाई कर लेंगे एक आध फोन करके। और कैप्स जब पास हुआ होगा ना आपकी फाइल के ऊपर लिखा हुआ, तो वीजा ऑफिसर को इतनी फिक्र नहीं होती है। दे डोंट बॉदर अबाउट मेनी थिंग्स, क्योंकि आपने ऑस्ट्रेलियन ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम पास किया होता है। आपकी डिग्री ऑस्ट्रेलिया के डिग्री के बराबर में खड़ी हुई होती है। तो वीजा ऑफिसर बेवकूफ होगा कि वो आपको वीजा ना दे। ही विल बी स्टूपिड। और आप उसके अगेंस्ट केस कर देना। अगर आपका केस रिजेक्ट किया, आप उसको केस अगेंस्ट करवा देना उसको कहना कि तुम पागल हो कि तुमने मैं कैप्स पास करके आया, तुमने मेरा वीजा रिजेक्ट कर दिया किसी बात पे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। थैंक यू सर, लॉट ऑफ motivation, sigh of relief. And the third thing sir, age factor. I'm 38 years and I know after 40 years 44 हो जाता फिर मसला होता। Okay, but sir what about the points for state nomination, like for 190 it should be a 365. देखिए आप 190 को क्यों टारगेट कर रहे हैं? किसी ने मशवरा दिया आपको? नहीं सर, मशवरा के बाद हर बंदा ये चाहता है कि इसकी डायरेक्ट पीआर हो। तो डायरेक्ट कर लीजिए, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वीजा थोड़ा सा, क्योंकि जब पीआर होती है ना ऑस्ट्रेलिया में, परमानेंट रेजिडेंट जब होती है ऑस्ट्रेलिया की एप्लीकेशन में, तो उसमें ना सिक्योरिटी चेक्स बहुत होते हैं। ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है। मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ माइग्रेशन का, लेकिन ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। बहुत सारे पुलिस चेक्स अंडर जो उनकी सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, उनको सिक्योरिटी चेक्स कहते हैं। तो उसमें ना एप्लीकेशन का जो प्रोसेस होता है ना आने का, लंबा हो जाता है, क्योंकि वो परमानेंट रेजिडेंट दे रहे हैं, आपको खुली इजाजत दे रहे हैं, आपने ऑस्ट्रेलिया में जो करना करो आके। तो 491 में उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती। वो कहते हैं ठीक है टेम्पररी आ रहा है, आने दो, टैक्स कमाएगा, हमारा फायदा करेगा, फौरन आने दो उसको। तो ये फर्क है आपको ये दोनों में। So sir, what about after 5 years again we have to apply for same path? After 3 years you apply for permanent residency, जो कि बहुत ही जल्दी हो जाता है, 2 से 3 महीने में हो जाता है, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही रह रहे होते हो। और उसके बाद 2 साल के बाद आप सिटीजन अप्लाई कर देते हो, तो 5 साल बाद आप सिटीजन अप्लाई कर देते हो। तो ये डील बुरी नहीं है। बहुत सारे हैं मेरे साथ जो सोचते हैं दुबई वाले कि यार हम वो 190 ही करेंगे, पक्का ही काम करेंगे, लेकिन वो वेट करते रहते हैं। वो वेट ही कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं भी आके। वो उनके अपने दिमाग की बात है कि यार मुझे पक्का वीजा चाहिए, पीआर। तो मैं कहता हूँ भाई ठीक है, आपकी ख्वाहिश है। क्वेश्चन जो रेज हुआ था, तो मैंने कहा आपसे, आप ही जो वो ऑथेंटिक बंदे जिससे हम ये चीजें पूछ सकते हैं। Obviously no one is giving us the correct information regarding Australia. You are the one sir, from where we are getting it. Keep our faith on it. That's why we are asking for it. And we are getting the what we say, our best advice from it. और शायद साहब आपको जॉब का भी पता है ना, जॉब्स कहाँ मिलेंगी आपको? सर लिटिल बिट की एक दो बंदों ने बताया कि वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में देख लो, विक्टोरिया स्टेट में देख लो, आजकल नॉमिनेशंस ओपन है। I don't know much about more than about it. नहीं, जॉब्स की बात कर रहा हूँ। नॉमिनेशन और जॉब्स दो डिफरेंट चीजें हैं। जी सर, जॉब्स का नहीं सर, मुझे सच कुछ आइडिया नहीं है। ये भी पता होना चाहिए। देखिए आपको 190 का पता था, लेकिन आपको जॉब्स का नहीं पता था। इसका मतलब है कि आपको उन दोस्तों ने ये चीज बताई कि आप पीआर अप्लाई करो, आपको ये नहीं बताई कि जॉब्स कहाँ लेनी है जाके। जॉब सबसे पहले पता होनी चाहिए, जॉब्स कहाँ मिलेंगी आपको। जी सर, नहीं आइडिया, बिल्कुल नहीं। जॉब्स रीजनल ऑस्ट्रेलिया में जॉब्स मिलेंगी। जी सर, ये आपकी मैंने वीडियोस देखी हुई है अक्सर रीजनल ऑस्ट्रेलिया की, तो उससे मेरा सर वो मतलब जो मेरे माइंड में जो क्वेश्चन आता है वो के रीजनल एरियाज आर दोस पार्ट व्हिच आर ऑन कंट्री साइड आर नॉट ऑन मेन पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया।
मेन Okay, पार्ट no कोई matter. कैपिटल सिटी नहीं, सिडनी में नहीं जाने जा रहा आप। Okay, okay. So sir, these are my question. And sir, regarding caps, sir, थोड़ा बता दीजिए कि सर कहाँ से सर स्टडी करनी है हमें, क्योंकि जो चीजें बताई जा रही हैं कि CPR कर ली जाए, लिपिन कोड कर ली जाए, तो मतलब इतने गैप के बाद मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है कि मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरी नॉलेज अपनी रिसर्च नहीं है। कैप्स का जो इम्तिहान है ना, वो लिपिटोर और CPR एक हेल्पिंग हैंड होता है। ठीक उनको है। पास करने के लिए आपको ना जो पीछे एग्जाम करके आ रहे होते हैं ना, उनसे कनेक्शन बनाना होता है, उन्होंने कैसे क्वेश्चंस किए होते हैं उनसे वो जानना जरूरी होता है। तो वो क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं, आपको मिलते हैं, तो वो तैयारी में सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट हेल्प करते हैं। और उनको हासिल करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप किसी एकेडमी को ज्वाइन कर लें जो कि हैवीली पेड एकेडमीज होती हैं, ठीक है। आप फेसबुक पे बहुत सारे बेतहाशा ग्रुप हैं जहाँ पे फालतू के मटेरियल आपको पकड़ा देंगे, बुक्स चीजें पकड़ा देंगे, वो उसमें बहुत सारी इनकरेक्ट चीजें होती हैं। या तो आप किसी अथेंटिक पर्सन के पास चले जाएं जिसने हेल्प किसी को की और उसने इम्तहान पास किया, जैसे कि हमारे पास सहूलत मौजूद है। लेकिन चक्कर ये कि हम लोग उस ग्रुप में उसी को आने देते हैं जो अपनी कैप्स की असेसमेंट करा लेता है। तो हमें पता होता है कि वाकई में ये बंदा कैप्स में सीरियसली डूब गया है, इसने अपनी कश्तियां जला दी हैं पीछे से, फीस जमा कर दी है, तो इसका मतलब है इसने अपनी कश्तियां जला दी हैं पीछे से, और ये कैप्स करके पास करके आगे जाएगा, तो हम फिर उसको पढ़ने देते हैं। क्योंकि हमारे साथ कोई 40 लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं इस वक्त इम्तहान की, वो ये सारे वो लोग हैं जो डेड सीरियस है, डेडली सीरियस, जिन्होंने इस कंट्री में आना ही आना है अगले 6 महीने के अंदर। दे बिलीव कैप्स के ग्रुप में वही आता है जो मेंटली स्ट्रांग होता है और उसको कोई फियर नहीं होता है। मेरे ग्रुप में जो भी पढ़ रहे होंगे ना, जो वो फियरलेस लोग हैं। वो एक दो वेबिनार में आए होंगे, डर लगता होगा, लेकिन जब वो ग्रुप, जब उनकी असेसमेंट आती है ना, तो मेरे साथ बहुत सारी लेडीज हैं, बहुत सारे मेन हैं, they are all fearless people who are sitting in my caps group because they are charged, supercharged, they know कि 2 महीने में मैं पढ़ाई करूंगा और इसको किल कर दूंगा एग्जाम को। तो वो मेंटली जो रेडीनेस है ना, वो अगर नहीं होगी तो यू कैन नॉट पास द एग्जाम। और ये उसी वक्त होती है जब आप फीस जमा करते हो ना, कि ये लो फीस $1300 मेरी असेसमेंट करके दो, तब वो फीलिंग आती है, अदरवाइज आपको फीलिंग ही नहीं आएगी वो। Exactly, sir. Correct. No, sir. That's what I'm going to do. In next month, I'm going to going to proceed for the assessment, and then I will be back to you, sir, for the material of the exams. आप उससे पहले आओ, उस वक्त नहीं आना जब कर लो, अभी से आओ, ताकि आपको इस तरह के वेबिनार में आप बैठोगे तो आपको अंदाजा होगा कि हम क्या बातें कर रहे हैं। अगर आप मेरे ग्रुप में आओगे तो आपको रोजाना कोई फीड आ रही होगी मेरे पास से उस बारे में कि ये कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, किसी ने कर लिया तो मैं भी कर सकता हूँ, इस तरह की चीजें आपको पता चल रही होंगी ना, तो दैट ऑल्सो मेक योर माइंड प्रिपेयर। Exactly. मैं आपके ग्रुप में सर, व्हाट्सएप के जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप है उसमें ऑलरेडी हूँ। ओके, तो मैसेज करना मुझे, जस्ट सेंड मी अ मैसेज। थैंक यू सर, थैंक यू सर। Okay, now we have the last question from Faraz. Faraz. अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, एक्चुअली मैं फार्मडी का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, और सर मेरे मामू होते हैं ऑस्ट्रेलिया पिछले 2 साल से। फराज, आप कैमरे पे आओ तो अच्छा मुझे लगेगा। एक मिनट। यस, वो ऑस्ट्रेलिया होते हैं, मामू मेरे 2 साल से ठीक है। क्या करते हैं, फार्मेसी वाले या कोई और प्रोफेशन वाले? नो, कोई और प्रोफेशन में। वो चाहते हैं कि मैं भी उनके पास आ जाऊँ। ठीक है, ओके। तो सर मैं ये सोच रहा था, अगर मैं एडमिशन लेकर जाता हूँ किसी एमफिल में या एमएस में फार्मेसी, तो सर उधर जाके कैप एग्जाम पास करूँ तो मेरे लिए कोई मुश्किल तो नहीं होगा? बहुत मुश्किल होगी। फीस कैसे दोगे आप? और वो कह रहे थे, मामू कह रहे साथ में हेल्प कर दूंगा। चलो मर्जी है, आपकी मर्जी है, आपको हेल्प अवेलेबल है, फ्री पैसा मिल रहा है तो क्यों नहीं। सर ये कितना मुश्किल हो जाएगा अगर करें तो? देखो, अगर ऑस्ट्रेलिया में वाकई में काम करना है आपने, ठीक है, तो जो मामू हैं वो आपको कब तक फीस देंगे ये आपको पता है, या पूरे जिंदगी भर फीस देंगे आपको? भाई ये 2 साल का ही होता है ना, 2 साल चले तो 2 मुश्किल साल में $40,000 फीस दे देंगे वो आपकी। मामू क्या करते हैं भाई, ये तो बताओ।
सर उधर सिक्योरिटी की जॉब फिलहाल वो न्यू ही है, सिक्योरिटी वगैरह जॉब करने के बाद साथ वो खुद भी पढ़ते हैं, मास्टर कर रहे हैं साथ में। Okay. देखो बिल्कुल सच्ची सच्ची मैं मिसाल आपको वो दूंगा, एडवाइस दूंगा। आप फार्म डी खत्म करो, इंग्लिश जी का सर। टेस्ट पास करो तगड़े नंबर से, कैप्स पास करो और फिर जाओ मजे से सीना चौड़ा करके ऑस्ट्रेलिया जॉब पे। अगर उधर जाके कब पास कर लूं सर, इसके अलावा कोई और पाथवे नहीं है, कोई और रास्ता हो मेरे लिए? वहां पे कर लोगे पास, लेकिन वहां पे भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। वहां पे कोई नकल मार के या कोई शॉर्टकट थोड़ी लगा हुआ है वहां पे, आपको पढ़ना तो पड़ेगा फिर भी। यहाँ सर पे बाई आपका चांस। घर है जहाँ भी रहते हो। आप कहाँ रहते हो पाकिस्तान में? जी पाकिस्तान गुजरांवाला है सर। तो गुजरांवाला में आप अपने घर पे पढ़ाई कर लोगे। मैं आपको एक ऑनेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? आपकी अपनी सर्कमस्टेंसेस से मुझे नहीं पता, ठीक है? आपने जिस तरह बताया कि आप आ सकते हो, मर्जी है आप आ जाओ, लेकिन आ, आने के बाद भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा आपको। पढ़ाई का स्ट्रेस अलग होगा। मास्टर्स की पढ़ाई आसान नहीं होती है यहाँ की। मास्टर्स की पढ़ाई जी बहुत तगड़ी होती है। आपको वो रगड़ा लगवाते हैं पढ़ाई पढ़ाई कराने का। यहाँ पे मास्टर्स की पढ़ाई में वो पढ़वा देते हैं और उसके बाद आपको फिर इम्तहान में बैठना होता है। तो मास्टर्स कोई वो नहीं है कि आप बस आ गए, छोटा सा कोर्स में आ गए, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। बाकी आपकी मर्जी है। दिस इज माय एडवाइस। मैं आपको एडवाइस कर चुका हूँ कि आप जब हम जी सर जब हम इधर मास्टर में आते हैं एडमिशन लेके, जी तो जी इसके लिए जो वो वर्क हम करते हैं स्टडी, ये मामू कर रहे हैं, वो एक दिन में एक क्लास होती है उनकी, सिर्फ एक वीक में सिर्फ एक दिन क्लास होती है। अगर हम मास्टर के लिए आते हैं तो कितने दिन हमें वर्क के लिए जाते मिलेगा? डिफरेंट मास्टर्स हैं। कुछ मास्टर्स में 3 दिन होती है क्लास, बाकी फिर अपना पढ़ाई करते हैं और काम वाम करते हैं लोग। सर मेरे लिए कोई बेस्ट एडवाइस है वो मुझे आपके लिए चाहते बेस्ट एडवाइस मैंने आपको दे दी है। आपको ऑनेस्ट एडवाइस दी है मैंने आपको। या तो एक एक चक्कर होता है ना कि हमने ऑस्ट्रेलिया आ जाना है, बस ऑस्ट्रेलिया आके ना तस्वीर खिंचवानी है, एपरा जो ओपरा हाउस है सिडनी का, और अपने फेसबुक पे लगा देनी है कि भाई पहुंच गए ऑस्ट्रेलिया, शहजादा पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया। एक तो वो होती है फीलिंग, बड़ी एक्साइटमेंट होती है, ठीक है? सब करते हैं, कोई नया बंदा तुम लोग नहीं होगे जो करोगे, सब करते हैं। लेकिन ना उसके बाद फिर डिप्रेशन आता है कि यार ये क्या जी। कर, माँ बाप नहीं है मेरे, मैं अकेला बैठा हूँ, खुद ही खाना पकाना है मेरे को, ठीक है? और फिर जी जी घर वाले याद आते हैं। और फिर जब जॉब नहीं मिलती है या जॉब मिलती है, जॉब में काम करना पड़ता है और फिर पढ़ाई करनी पड़ती है और ऊपर से कैप्स भी पढ़ना पड़ता है। और कैप्स और इम्तहान में, मास्टर के इम्तहान में आप फेल हो गए तो वीजे के ऊपर एक, समझो एक खतरनाक घंटी बजनी शुरू हो जाती है। यूनिवर्सिटी वाले नाराज हो जाते हैं। तो ये सारे मसले हैं। तो अगर आपके मामू आपको इनकरेज कर रहे हैं तो चले जाओ, दैट्स वंडरफुल। लेकिन मामू ने फार्मेसी नहीं की हुई, आपने पहले बता दिया। ये भी मेरा पहला सवाल था, मामू फार्मेसी वाले हैं या कौन से वाले हैं? मार्केटिंग वाले सर, मार्केटिंग एमबीए वाले। किया हुआ है। आपका प्रोफेशन दूसरा है भाई, आपका प्रोफेशन प्रिविलेज प्रोफेशन है, हाईली रेटेड प्रोफेशन है, वीजे खुले हुए हैं इस वक्त। हाँ, आप होते किसी और प्रोफेशन में तब तो ये जिंदाबाद, ये वाला रास्ता बहुत अच्छा था, मास्टर करो किसी तरीके से पहुंच जाओ, कोई ना कोई वीजा सेटिंग हो जाएगी, ठीक है? लेकिन अभी फार्मेसी वाले हो भाई आप, डिफरेंस है। सर दूसरे नंबर सेकंड मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हमारे हर साल प्राफ होते हैं, फर्स्ट प्राफ, सेकंड प्राफ, थर्ड प्राफ और फाइनल प्राफ। सर थर्ड और फोर्थ प्राफ में मेरी एक सप्ली लगी है, ठीक है? उसमें जब ट्रांसक्रिप्ट की बारी आती है उसमें फिर लिखा आता है कोई अब दूसरी मसला बार नहीं। हम एग्जाम। नोबडी आस्क यू अ क्वेश्चन कि क्या हुआ था। नोबडी। आपके पास डिग्री होनी चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए, फार्मेसी काउंसिल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, दैट्स इट। जी सर। कोई मसला नहीं है, जीपीए कुछ भी हो, उनको उससे मतलब नहीं है, उनको डिग्री से मतलब है। जी कहाँ सर। से, और हमारे लिए वेयर आर यू स्टडीइंग, व्हिच यूनिवर्सिटी? पंजाब यूनिवर्सिटी सर। तो पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री काफी है, दुनिया जानती है पंजाब यूनिवर्सिटी को। और सर इसके फार्मेसी अलावा काउंसिल भी जानती है, ऑस्ट्रेलिया की फार्मेसी काउंसिल भी जानती है। जी सर। उनको सर मार्कशीट देखेंगे भी नहीं, वो तुम्हारी मार्कशीट नहीं देखेंगे, क्योंकि डिग्री इशू हो गई है, दैट्स इट। थैंक यू सर। सर इसके अलावा मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर हम वो इंग्लिश टेस्ट पास करते हैं तो कितने मार्क्स होने चाहिए? एटलीस्ट 70 तो हो, पीटी में 70 हो, आइलेट्स में 7.5 हो, ताकि जी वीजा सर। ऑफिसर को अच्छा लगे आपको वीजा देते हुए, वरना वो कहेगा यार ये इंग्लिश बड़ी कम है इसकी। ठीक है सर, मेहरबानी सर, शुक्रिया ओके, सर। और ग्रुप में आ जाना ताकि थोड़ा सा पता लग जाए और चीजें, ठीक है? बेहतर सर। Okay, next question from Sayyid Ghulam Awez.
Adnan, please wait. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है? बहुत देर से मैं आपको देख रहा हूँ, यू आर लिसनिंग वेरी केयरफुली, दैट्स गुड। सर मैं तो ग्रुप में भी हूँ आपके में, अवैस बात कर रहा हूँ। और जो है पहले तो आपको मुबारक हो, शाहीन भाई जीत गए। अरे वाह, PSL। शाहीन भाई जीत गए। और शाहीन भाई की शर्ट भी मैंने रखी हुई थी कि कोई शाहीन भाई के दीवाने हो तो ये अफरीदी की शर्ट है जो वो वर्ल्ड कप खेल के देखे गए थे मुझे। जबरदस्त जबरदस्त सर, इंशाल्लाह वहां पे आके ये शर्ट आपसे ना ऑटोग्राफ लेके आपसे लूंगा मैं। नहीं नहीं, ये मैं फ्रेम करा के लगाने वाला हूँ घर के अंदर। मेरे घर में आओगे ना तो आप देखोगे 100 से ज्यादा बल्ले रखे हुए मेरे पास। इमरान खान के साइन हुए हुए, तो विव रिचर्ड के साइन हुए हुए, पता नहीं किस किस के साइन हुए हुए। दुनिया का सारे क्रिकेटर, डॉन ब्रैडमैन से लेके गवास्कर से लेके सबके साइन है मियां के। चलें चलें, सही है सर, ठीक है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन जो है ना वो ये था कि पहले तो एम्प्लॉयर से वो नॉमिनेशन होती थी हमारे वीजे की, तो वो उसी के पास ही हम जॉब करते थे। अब ये है कि स्टेट नॉमिनेशन है। मिसाल के तौर पे मेरा आने का दिल कर रहा है आपके पास साउथ ऑस्ट्रेलिया में, पर मुझे नॉमिनेशन मिल जाती है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की, तो क्या मैं आ सकता हूँ आपके यहाँ? आपको 2 साल उधर काम करना है। अच्छा, और दूसरी बात ये सर कि अगर वो नॉमिनेट करते हैं कि स्टेट नॉमिनेशन मिल जाती है मुझे किसी भी स्टेट की, तो क्या वो गवर्नमेंट मतलब जो सेटअप होता है वहां पे, या फिर उस स्टेट में कहीं भी आप इंटर्नशिप कर सकते हैं? कहीं भी किसी भी जगह पे। अच्छा अच्छा, बस यही क्वेश्चन है मेरा सर। ओके, मोस्ट वेलकम। तो अपना कैप्स का जर्नी क्या है? कैप्स कहाँ तक पहुंच गया आपका? कैप्स सबमिट हो गया या नहीं हुआ है? असेसमेंट सर, असेसमेंट का वो सारा कुछ हो गया है, बस कल मंडे के दिन, हाँ कल ही जो है वो मैं फीस जमा करवाने लगा हूँ। सही है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू मिस्टर अदनान। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम अदनान। कहाँ पे हैं और किधर हैं, क्या कर रहे हैं? सर मैं मोहम्मद अदनान अली, ग्रेजुएट फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, जबरदस्त, 2021 बैच। वेरी नाइस। तो सर मेरे 2 क्वेश्चन ये थे कि अगर ये जो असेसमेंट करवाते हैं तो इसका टाइम ड्यूरेशन कितना लग जाएगा? असेसमेंट जो है ना इस वक्त 6 हफ्ते में करके दे रही है कैप्स। आप ऑनलाइन फाइल जमा करो, अपनी एप्लीकेशन जमा करो, 6 हफ्ते के अंदर आपको ईमेल पे आ जाएगा कि असेसमेंट हो गई है। और फिर आपकी मर्जी है तो जुलाई वाले इम्तिहान की फीस जमा करा दो, जुलाई में बैठ जाओ पाकिस्तान में, या नवंबर में बैठ जाओ। ठीक है, 6 वीक्स के विद इन 6 वीक्स असेसमेंट हो जाता है। 8 वीक्स कहते हैं लेकिन वो 6 वीक्स में दे रहे हैं अभी। तो सर वेबसाइट कौन सा, लिंक कौन सा, के किससे असेसमेंट? एपीसी जो मैंने स्लाइड दिखाई है उसकी जो वेबसाइट है, एपीसी कैप्स की वेबसाइट। ठीक हो गया सर। आप ग्रुप और में सर हो? ग्रुप में हो? पहले बताओ, आप मेरे ग्रुप में हो या नहीं सर, ग्रुप में नहीं है। व्हाट्सएप नंबर देख लिया मेरा, उठा लिया व्हाट्सएप नंबर? जी व्हाट्सएप नंबर उठा लिया। तो व्हाट्सएप नंबर पे करो और अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना कि मेरे से बात हुई है पंजाब यूनिवर्सिटी। अगर वीडियो बना दोगे तो आई विल ऐड यू इन द ग्रुप, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी अगर मर्जी। चले सही। तो सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि अगर पीटी नहीं देते तो आइट्स का, क्योंकि आइट्स का मेरा कमिंग डेज में है टेस्ट, वो मैंने बुक किया हुआ है। तो आइट्स तैयारी कर ली उसकी? तैयारी कर ली है? जी वो तैयारी कर लिया। कितने नंबर की तैयारी की है? क्या नंबर टारगेट किया हुआ है? व्हाट इज द टारगेट टू गेट? सर टारगेट तो 7 था। अरे भाई नहीं, 7 पे टारगेट नहीं करना वरना 6.5 आएगा। टारगेट करो एटलीस्ट 8.8 समथिंग, ताकि 7.5 पे तो लैंड करो। ठीक है सर। ठीक है ना, टारगेट अच्छा हो ताकि गलती कम से कम हो, ज्यादा नंबर आएंगे। ठीक है ना, ज्यादा नंबर। हाँ, मिनिमम तो 7 है, मिनिमम सब में चाहिए 7 तो मिनिमम पे क्यों बैठो? टारगेट हाई करोगे तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा वरना। ठीक है, ठीक हो गया। मतलब सर वैलिड है आइट्स भी अगर आपने 2 इयर्स के लिए वैलिड है, 2 इयर्स के लिए। ठीक हो गया सर। 2 साल के लिए छुट्टी हो जाएगी। तो ये सर असेसमेंट जो है ये इसकी फी कितनी है? $1310 है। वीजा कार्ड से पे करवा दो, ऑनलाइन जाके ऑनलाइन ही सब कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो। अपना फार्मेसी काउंसिल का सर्टिफिकेट स्कैन हुआ हुआ, मार्कशीट और डिग्री और सर कैटेगरी जो ये आप बता दें, कैटेगरी नहीं अभी आई, लेकिन उसका क्या वो आप कह रहे थे कि एक सर्टिफिकेट बनवा ले, तो वो कौन सा सर्टिफिकेट है? वो ना एक
अगर आप मेरी वीडियो जाके देख लो ना, यूट्यूब पे पड़ी हुई है मेरी, मैंने कल परसों बनाई है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि हाउ टू अप्लाई विदाउट फार्मेसी लाइसेंस और कैप्स। सर वो समथिंग डिफरेंट फ्रॉम गुड स्टैंडिंग गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट। डिफरेंट चीज है, ये डिफरेंट चीज है। ठीक हो गया सर, ठीक हो ठीक गया है, सर। वो करके इसको फारिग कर दो। और कैप्स वाले बड़े इस वक्त फ्रेंडली हुए हैं, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट फ्रेंडली है फार्मासिस्टों के साथ, तो फायदा जी उठा सर। लो। 2 लाख वीजे जो है चलो बंटने वाले हैं, उसमें से अपना वीजा उठा चलो लो और अपनी आगे वाली जनरेशन को अच्छा कर लो। चले सर, थैंक यू सर, ठीक बहुत है। शुक्रिया। ओके। Last question from Sundas Qureshi. अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम संदीप जी, हाउ आर यू? सॉरी सर, पहले मैं एक क्वेश्चन करके मैं कॉल ड्रॉप हो गई थी तो इस वजह से। सर मुझे 2-3 क्वेश्चंस पूछने हैं कि ये जो अभी आपने वीजा बताया, इसमें हमारी कोई और विजिट हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री मैटर करती है? ऑस्ट्रेलिया में अगर आपने किया रिजेक्ट वगैरह है तो वो शायद मैटर करे, लेकिन मेरे ख्याल से कैप्स से पास कर लेते तो सारी चीजें धुल जाती है, कोई मसला नहीं रहता। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो आपने सैलरी बताई है वो पर ईयर की बताई है आपने, 80 to 90,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स? जी जी, महीने के तो नहीं दे सकते ना, वो साल के ही है जी। हाँ, तो ये एक ही बार पे करते हैं? नहीं, ये आपको फोर्टनाइटली पे आती है बैंक में या वीकली आती है। सही, ठीक। ऑस्ट्रेलिया में और वीकली सर, नहीं आती। तो स्टार्ट में तो आपने ये बताया कि स्टार्टिंग में तो कम्युनिटी की जॉब्स हैं बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए, जी, तो कम्युनिटी इसके अलावा फार्मेसी है, कम्युनिटी जी फार्मेसी। जी, तो इसके अलावा क्लिनिकल का क्या स्कोप है वहाँ पे, बीसीपीएस अगर हम अपना गोल रखते हैं तो? व्हाट इज बीसीपीएस, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? बोर्ड ऑफ जो स्पेशलिटी फार्मेसी स्पेशलिटी एग्जाम जो है, ये कहाँ पे होता है? सर सर ये यूएस। एएसएसपी से अगर कोई एसोसिएशन लिंक है तो वो PGY2 करवाते हैं और फिर उसके बाद एलिजिबल होते हैं बीसीपीएस के लिए। वो एक्चुअली अमेरिका में होता है, ओके ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक नहीं। नहीं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बॉडी है AACP, जो कि जी कंसल्टेंट फार्मासिस्ट बनने के लिए होती है। तो जब फुल रजिस्टर हो जाते हैं फार्मासिस्ट, तो वो वाला क्वालिफिकेशन करके आप कंसल्टेंट फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन सकते हैं कम्युनिटी में काम करने के लिए। तो दैट्स अनदर हाई रैंक जॉब, वो कम्युनिटी क्लिनिकल फार्मेसी। की साइड की हायर डिग्री है? हाँ, वो डिग्री नहीं है, वो सर्टिफिकेशन है। ठीक है, वो डिग्री नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको यूनिवर्सिटी जाके पढ़ना है, आपको जी खुद ही जी। पढ़ना है, खुद ही आपको तैयारी करनी है, जर्नल्स पकड़ के, बुक्स पढ़ के, और फिर आप वो पास कर लेते हैं। उसमें आपके कुछ रिसर्च की तरह से कुछ केसेस होते हैं, वो कर लेते हैं। उसके बाद आपकी सारा कुछ ना कम्युनिकेशन का खेल है, पढ़ाई, फार्माकोलॉजी और क्लिनिकल फार्मेसी, उसके अंदर आपकी असेसमेंट होती है। जब आप पास कर लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेशन दे देते हैं, और जब सर्टिफिकेशन मिल जाती है तो उसके अंदर आपको मेरे ख्याल से हर साल के 80 CPD पॉइंट्स करने होते हैं एज ए कंसल्टेंट फार्मासिस्ट, प्रूफ देना होता है, तभी वो आपकी रजिस्ट्रेशन चलती रहती है, वरना वो लैप्स कर जाती है। तो उसके सर, तो ये इसका क्या आपने बोला कि कम्युनिटी में क्लिनिकल फार्मेसी के मतलब लाइक आप अपने ओन पे क्लिनिकल सेटअप रन कर सकते हैं? अपने ओन पे रिव्यूज कर सकते हैं जाके, फार्मेसी नहीं कर सकते। अपने ओन पे डॉक्टर्स के साथ काम कर सकते हैं, अपने ओन पे जहाँ पे जॉब कर रहे हैं उसमें जाके रिव्यूज कर सकते हैं फार्मेसी में, तो आपकी पर्सन की इनकम भी बढ़ जाती है उसमें। सर, इसके अलावा हमने पाकिस्तान में एक ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा कॉमन है कि आप फार्मडी करके एमडी की साइड पे स्विच कर लें, तो इसके बारे में आपके क्या रिव्यूज हैं? क्या एमडी के ऑस्ट्रेलिया में ऐसा मतलब कुछ? डॉक्टर बन जाए, डॉक्टर, एमडी मतलब डॉक्टर। जी। कुछ फार्मासिस्ट हैं करते हैं, यहाँ पे डॉक्टर बन जाते हैं। तो उसके लिए उसमें कुछ सब्जेक्ट्स के लिए एग्जाम्पशन होती है फार्मासिस्ट के लिए, जो उसमें सब्जेक्ट्स हमने उसमें पढ़े हों? उसमें मेरे ख्याल से जो मेडिसिन की डिग्री है ना यहाँ पे, उसमें शायद 5 साल की डिग्री होती है, तो उसमें 2 साल एग्जाम हो जाते हैं, 3 साल पढ़ना पड़ता है, ये मुझे पता है। ये कंफर्म इंफॉर्मेशन है? हाँ, मैं आपको झूठी इन्फॉर्मेशन क्यों दूंगा। नहीं नहीं, एमडी वाली आई मीन। एमडी नहीं होती यहाँ पे, और ये अमेरिका नहीं है, एमडी की डिग्री अमेरिका में होती है। यहाँ पे जो डिग्री होती है ना, वो मेडिसिन की जो बैचलर्स डिग्री होती है ना, वो होती है, क्योंकि यहाँ पे फार्मडी भी नहीं होता ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यहाँ अभी भी बी फार्मेसी होता है 4 ईयर का। तो अच्छा, एमडी की डिग्री जो है ना, वो तो न्यूयॉर्क में होती है या अमेरिका के स्टेट्स में होती है। तो तो यहाँ यहाँ पे की डिग्री का क्या नेम है? बीएस यहाँ बैचलर्स? पे वही बैचलर्स ऑफ MBBS जो पाकिस्तान में होती है। सही। हम्म। और सर, ये जो है जो आपने कुछ स्टूडेंट्स ने बात की आपसे कि पॉइंट्स की, कि एक्सपीरियंस के पॉइंट्स मैटर करते हैं, ये पॉइंट्स का क्या मतलब? ये तो इमिग्रेशन में जब अप्लाई करेंगे ना, वहाँ पॉइंट चाहिए होते हैं आपको अपने
केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लेकिन वहाँ पे जो जो एक्सपीरियंस वाले नहीं है, आप एक्सपीरियंस वाली है नहीं है, आपका क्या एक्सपीरियंस है? नो सर, अभी मेरा फ्रेश है, मेरा 4th ईयर है अभी। अरे भाई, तो आप बातें इतनी आगे की कर रही हो, एमडी तक पहुंच गए सारा आप। सारा प्लान ओ माय गॉड, ओके। सारे ऑप्शन होने चाहिए। तो मेरे ख्याल से सिंपल गोल रखो, अपना जी। डिग्री खत्म करो, और मेरे ख्याल से फार्मासिस्ट जो है ना वो बेहतर प्रोफेशनल पर्सन है एज कम्पेयर टू डॉक्टर। डॉक्टर यहाँ पे बहुत रगड़ा खाते हैं, जी। उनको लगा देते हैं शिफ्टों पे, रात दिन अलग अलग काम कर रहे हैं। फार्मासिस्ट मजे में मॉर्निंग में काम करता है, घर आता है, अपना एक लाइफस्टाइल होता है फार्मासिस्ट का। सर ये जो तो अभी तो लाइक मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, तो मैं जब कंप्लीट होगी तभी कैप्स के लिए वो कर सकती हूँ। तो मैं क्या इंग्लिश टेस्ट के लिए अभी से प्रिपेयर करके वो अभी से दे सकती इंग्लिश टेस्ट प्रिपेयर करो, अपनी स्किल्स बढ़ाओ, अपनी डिजिटल स्किल्स बढ़ाओ, और गूगल के कुछ डिजिटल कोर्सेज होते हैं वो कर लो। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटीज़ में जिन्होंने अभी फार्मेसी डिग्री ख़त्म की है, और उनको मैंने आइडिया दिए थे कि गूगल में सर्टिफिकेशन होती हैं बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग की, वो यस फार्मेसिस्ट सर। को अगर कर ली जाए तो वो बहुत हाईली हेल्प करती है। जब आपके सीवी पे लिखा होता है इवन के गूगल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक कोर्स करा रहा होता है 6 महीने का, वो भी अगर आप कर लो आपके सीवी पे हो तो एम्प्लॉय को लगता है यार ये बंदा काम का है हमारा। ये सर गूगल की सर्टिफिकेशन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं साइड हसल के लिए फ्रीलांसिंग करती हूँ, जिसके लिए मैंने वेब डेवलपमेंट और ये सारा कुछ एसईओ सब कुछ सीखा हुआ है अपने ओन पे। मैं अपने वेबसाइट्स खुद डेवलप करके उनके ऊपर राइटिंग करके डिजिटल ये काम भी साथ कर रही हूँ। तो वो काम आएगा आपको अपने जॉब ढूंढने के अंदर, क्योंकि वो इन्हांस करता है एक जिसने ना किया हुआ और जिसने किया हुआ। ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू सो मच। सर क्वेश्चंस हमारे पास एंड हो गए हैं, और ये हमारे पास जो वेबिनार था इसके लिए कोलैबोरेशन आप फार्मेसी की स्टोन्स ने किए, दैट इज एन ऑनलाइन फेसबुक पेज। और हमने इसके अलावा जो एक और बॉडी थी दैट वाज अ यंग फार्मासिस्ट कम्युनिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। और सर हमने ये वेबिनार का सिलसिला शुरू किया हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि सबको पसंद भी आ रहे होंगे। जो YPC है सर उसका इंट्रोडक्शन बड़ा शॉर्ट से ये है, और बड़ा ब्रीफ या समझ लें कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं, पेशावर यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और बाकी भी यूनिवर्सिटीज़ में ये हैं, और वहाँ पे डिफरेंट कंपटीशंस एंड वेबिनार एंड सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं। जो फार्मेसी की स्टोन है इसने तो खैर वेबिनार की एक सीरीज शुरू की हुई है, स्टार्टिंग फ्रॉम द महरीन नाज, फिर उसके बाद हमारे पास यासर अब्बास साहब आए थे, फिर अब आप आए हैं, एक हमारे पास न्यूक्लियर फार्मेसी का भी हो चुका है वेबिनार। सो सर वी जस्ट नीड योर क्लोजिंग रिमार्क्स अबाउट दिस वेबिनार। देखिए मेरे ख्याल से आई रियली एंजॉयड डिस्कसिंग दिस ऑल। बहुत सारे इसमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से बात करने का मुझे मौका मिला, और जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं वो इट्स लाइक अ स्पंज जो कि इंफॉर्मेशन लेके अब्जॉर्ब करते हैं, और फिर वो दूसरों को भी डेफिनेटली शेयर करेंगे अपने अपने बाकी स्टूडेंट्स को, और वो फिर जब उनका टाइम आएगा अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद, उससे पहले वो वेल अवेयर होंगे। तो अवेयरनेस पहुंचाने का जो तरीका है ये बहुत अच्छा है, अवेयरनेस होनी चाहिए। और बहुत सारे लोग खासतौर पे फार्मासिस्ट लोग जो हैं वो मिस कम्युनिकेशन रूमर्स की वजह से ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अभी ये स्टेटमेंट की बात हमने डिस्कस की यहाँ पे। इसके अलावा कुछ ऐसे रूमर्स भी होते हैं जो कि जैसे कि कैप्स की वेबसाइट पे किसी ने ऐलान कर दिया कि इस साल की कैप्स एप्लीकेशन ही फुल हो गई हैं, किसी ने ये लंबी सी खबर छोड़ दी पाकिस्तान के अंदर। तो वो मिस गाइडेंस जितना ज़्यादा है, और लोग फिर एक दूसरे से सुनते हैं और उस पर बिलीव करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे सेशन के अंदर जो आएगा, जो इंटरेक्शन करेगा, तो उसको नज़र भी आएगा। और जब हम वीडियो पे बात कर रहे होते हैं तो आजकल इतना स्मार्ट बंदा है कि वो समझ सकता है कि वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। तो हम इसके अंदर सिंपल सिंपल चीज़ें बता रहे हैं, लोगों को क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं। तो आई थिंक लोगों की, बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन दूर हुई होगी। जैसे कि एक साहब थे जिन्होंने असेसमेंट की हुई थी और उन्होंने कैप्स नहीं लिखा, वो दोबारा असेसमेंट करने जा रहे थे। तो मैंने कहा आपकी असेसमेंट वैलिड है भाई, आपको दोबारा क्यों पैसे खर्च करने हैं, $1300 आपको नहीं खर्च करने। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये उन्होंने सुनी, इसके अलावा और लोगों ने भी सुनी होंगी, तो वो फिर दूसरों को बताएंगे जाके। तो इट्स वेरी फ्रूटफुल एक्सरसाइज, और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा प्रोडक्टिव आप ये काम कर रहे हो, जो कि
पाकिस्तान में फार्मेसी के प्रोफेशन में अशद ज़रूरत है, और इसको हर यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। मेरे ख्याल से हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को इसमें बैठना चाहिए, ख़ास तौर पे जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, उनको तो ज़रूर से बैठना चाहिए, क्योंकि इस वजह से कि मैंने बताया जो वीज़ाज़ है ना, ये उनके काम के ख़ास तौर पर वीज़े हैं। 2 साल के बाद शायद ये वीज़ाज़ नहीं होंगे तो हम ये बातें नहीं कर रहे होंगे, उस वक्त फिर हम ये बात कर रहे होंगे हो सकता है कैप्स पास कर लो, एम्प्लॉय ढूंढ लो, और एम्प्लॉयर जब ढूंढ लोगे तो आपको स्पॉन्सरशिप हो गई तो आप आ जाओगे ऑस्ट्रेलिया। तो कि जो कि ये होता रहा है पिछले सालों के अंदर, ठीक है ना। तो ये वेबिनार में जो भी साहब आए, जो भी लोग आए, अगर आप उनको रिकॉर्डिंग भी दोगे, जो नहीं देख सकें तो वो भी उनके बहुत काम आएगी, उनको अच्छा फील होगा कि दे हैव गेन सम अपडेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए रीजनेबल एक्सपीरियंस पर्सन। और आपका भी जो नेटवर्क है उसमें ये बात और लोगों को जाएगी, तो हो सकता है हम एक और वेबिनार भी कर लें उनके साथ आने वाले टाइम में। इंशाल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम सर। मेरे भी अपने कंसेप्ट बड़े सीधे हो गए हैं और बहुत मज़ा आया। मैं आपको काफ़ी टाइम से लिंक्डइन पर फॉलो कर रहा हूँ और आपकी एक्टिविटीज़ फॉलो कर रहा हूँ सर, माइंड ब्लोइंग। और जिस तरह आप एनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो कैप्स में अपीयर हों और ऑस्ट्रेलिया आएँ, ज़रूर आएँ, तो दैट इज़ समथिंग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन इसलिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर स्पेंडिंग टाइम विद मी, आई रियली एंजॉयड कि आपने सबको क्वेश्चन के लिए बारी बारी रोका हुआ था, क्योंकि बहुत सारे लोग जंप मार रहे होते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है मुझे। मैं तो सबको कहता हूँ हाँ ठीक है पूछ लो, लेकिन अच्छा था, यू हैव कंट्रोल द क्राउड एंड एक्सप्लेन के आप बारी। जी जी नादिया, जी आप। सर अस्सलाम वालेकुम सर, होप यू आर गुड। जी आप वापस आई हैं, मेरे ख्याल से आप चली गई थी अभी शायद। जी सर, एक्चुअली आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम लाहौर टू कराची, तो बहुत पीछे नॉइस था और कनेक्शन भी बड़ा प्रॉब्लम कर रहे थे। सर मैं थोड़ा सा जानना चाह रही थी इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट के हवाले से कि उनकी क्या ग्रोथ है ऑस्ट्रेलिया में, और उनके क्या सैलरी पैकेजेस हैं, और क्या इतने ही वर्थवाइल हैं जितने कि एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट के हैं। ओके, पहले तो आप बताएं कि आप उसी कैटेगरी से हैं या आपका कोई और प्रोफेशन है? सर मिला जुला प्रोफेशन है, मतलब हॉस्पिटल फार्मेसी की है आधा टाइम और आधा टाइम इंडस्ट्रियल की है। तो कैप जाहिर है इंडस्ट्रियल में अगर आपको आना है तो आपके पास वैलिड एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना। जो कि अभी रिसेंट एक्सपीरियंस होगा तो सही है, अगर पीछे का एक्सपीरियंस है तो कोई वो यूजलेस है, उस पर आप कुछ नहीं अप्लाई कर सकते। यू नीड टू बी हैव ए रीसेंट एक्सपीरियंस। और जहाँ तक जॉब्स का ताल्लुक है, जॉब्स जो है ना यहाँ पे लिमिटेड जॉब्स हैं। सही यानी कि इंकरेजमेंट नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इंडस्ट्री वाला केस अपना बिल्ड करो और आ जाओ और जॉब मिल जाएगी, ऐसा मैं किसी को भी नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं, दे आर फेसिंग डिफिकल्ट टाइम। और जिनको मेरी बात क्लिक कर जाती है कि कैप्स करना ज़रूरी है, जैसे एक साहब से मैं बात कर रहा था, कैप्स कर लोगे तो लाइफ अच्छी है, तो वो उसमें से एक पर्सन को तो समझ में आ गई, उन्होंने शायद वो चौथे दिन ही उन्होंने कहा हाँ मैं कैप्स करने वाला हूँ। और एक बंदा है जो डटा हुआ है अभी भी कि नहीं भाई मैं तो इंडस्ट्री की जॉब तलाश ही करूंगा। मैंने कहा इंडस्ट्री की जॉब निकालेगा कौन आपके लिए? तो वो बिला आखिर जाके वो फार्मेसी असिस्टेंट की जॉब में कहीं वो बंदी लगी है जाके, और बहुत ही अफसरदा है, बहुत ही उसको शदीद सदमा है कि उसकी इंडस्ट्री का जो काम है उसको यहाँ काम नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा लोग यहाँ प्रोफेशन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे डॉक्टर आके अपनी रजिस्ट्रेशन में पास नहीं होते तो टैक्सी ड्राइवर बन जाते हैं, यहाँ पे लोग सिक्योरिटी का काम करने लग जाते हैं। तो फार्मेसी ही का प्रोफेशन है ना, फार्मेसी का ही प्रोफेशन है कम्युनिटी फार्मेसी। वो कोई तंदूर पे रोटियां नहीं लगानी हमने उसके अंदर, हमने फार्मेसी में खड़े होके जाके दवाई समझानी, एक्सप्लेन करना है, और आप सामने खड़े होके बात करते हैं। तो दैट्स द एक्सीलेंस वे ऑफ वर्किंग एज ए फार्मासिस्ट, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको रिकग्निशन मिलती है उसकी। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। और सर इसके अलावा जो शॉर्ट कोर्सेज आप कह रहे हैं, अगर हम फैमिली मेंबर्स के लिए जो बीए और बीएड लेवल के हैं उनके लिए शॉर्ट कोर्सेज और भी मतलब आसान होते हैं आने के बाद, जैसे स्पाउसेस हैं या जो उनके बिहाफ पे लोग आ रहे हैं, बहनें हैं मेरी, वो अगर अप्लाई करना चाहें। सॉरी दोबारा क्वेश्चन करें, आप दोबारा करें। सर जी सर, जिनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं हो, जैसे एक साहब थे उन्होंने कहा था कि उनकी वाइफ जो है वो उन्होंने बीए किया हुआ है, किसी ने बीकॉम किया हुआ है, उनके लिए सर क्या ऑप्शंस हैं ये जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज के हवाले से जो ऑस्ट्रेलिया में? नहीं, पढ़ाई तो कोई भी कर सकता है, वो जो सर्टिफिकेशन है वो तो कोई भी कर सकता है जाके। ओके आपके पास वैलिड वीजा होना चाहिए यहाँ पे रहने का। यानी कैप्स इज द ओनली वे। आई हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग सर, और इतनी इन्फॉर्मेशन अल्लाह का शुक्र है ग्रुप पे, तो फिर हम तो परेशान हो रहे थे, लेकिन ग्रुप पे इतनी चीज़ें हमें मिल जाती हैं
कि हमने कहीं और देखा हाँ, अभी मुझे कल एक साउथ अफ्रीका से एक हमारे साथ ज्वाइन किया, उन्होंने ग्रुप अभी मैसेज किया, उन्होंने एक एकेडमी को अभी $4,500 या पता नहीं कितने $1,000 पे किया है एग्जाम में तैयारी करने का। तो आप सोचिए जरा लोग कितना पैसा अपना फालतू का फेंक रहे हैं इधर उधर। जी सर अभी मेरे पास ये इनवॉइस आई है, उन्होंने इनवॉइस भेजी है, मैंने उनको थोड़ा सा जोक भेजा, मैंने कहा तो भाई हमारे पास पहले आ जाते हैं, अब ये पैसा अपने पास रखते हैं, इसकी गाड़ी खरीद लेते हैं। नहीं सर, आप तक पहुंचने का रास्ता भी आसान नहीं था, बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो गाइडेंस इनके पास नहीं थी। और अब वो मेरा वीडियो यूट्यूब पे जाके वो देखे ना, वो जो टानिया के साथ मैंने मशहूर थे, इंटरव्यू किया ये है, तो बाई चांस अल्लाह का शुक्र की तैयारी कर रहे हैं। और जिम्बाब्वेन फार्मासिस्ट जो है जिसका इंटरव्यू है मेरे नहीं सर, वो चैनल मैंने पे, नहीं देखा, वो इंशाल्लाह मैं इसको देखो ना, देखती वो जाके देखो, हूँ। वो जाके देखो, उसका कमेंट सुनना वो क्या कहेगी कि मेरी इरफान से अच्छा पहली सर, वो जी एक जो बिल्कुल एक फार्मासिस्ट हैं जिम्बाब्वे से, तो वो कहती है कि मेरा इंटरेक्शन हुआ, मैंने जॉब अप्लाई की, तो मुझे कॉल आई, मैंने कॉल की उसको, मैंने कहा ठीक है तुम कैमरे पे आके बात करो। तो वो कहती है कि मुझे ऐसा लगा कोई स्कैमर है, ये कोई स्कैम कर रहा है मेरे साथ ना। तो मैंने कहा अच्छा, तो अगर तुम मुझे पहले बता दिया तो मैं तुम्हें वहीं से लेता ही नहीं, तुम्हें जॉब पे। तुमने कहा ये बात अभी की तुमने जो की है ना इंटरव्यू के ऊपर, तो मैं तुम्हें वहीं से भगा देता। तो वो इस तरह लोग फील करते हैं, अगर किसी को खुद से कोई अप्रोच कर लेना बाहर से ऑस्ट्रेलिया से, तो समझते हैं यार उनका कोई फायदा है उसके अंदर, कोई उनके क्रेडिट कार्ड की डिटेल लेके चुरा के पैसा निकाल लेंगे उसमें से। ये चक्कर समझ में आता है सबको। और कोई क्वेश्चन किसी का? फहीम सलम ने हाथ रेस किया हुआ है, इनके का कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी फहीम। कैसे हैं सर? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप बताएं सर, हाउ आर यू? आप कहाँ सर मैं फैसलाबाद में एक्चुअली हूँ, वैसे मैं रेजिडेंट की नहीं से, वो पाकिस्तान का छोटा सा शहर है। तो यहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ जीसी यूनिवर्सिटी से। सर मैं ग्रेजुएट हूँ 2020 से। 2020 ओके। तो फहीम आप कैमरे पे आ सकते हो? कैमरे पे यस सर। थोड़ा सा आवाज ब्रेक हो गई थी, मुझे समझ में नहीं आया, आपने बोला आप कहाँ से हो और कौन से छोटे से शहर थे, वो मैं नहीं सुन पाया। सर मैंने कहा चीचावतनी से हूँ, छोटे से शहर से, फैसलाबाद में जॉब कर रहा हूँ। ठीक है ओके ओके। तो सर क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी वहाँ पे नहीं है इतनी, तो मैं यहाँ पे जो है ना तकरीबन जब से डिग्री हुई चल रही है जीसी यूनिवर्सिटी से, सर मैं ग्रेजुएट हूँ 2020। आप क्या काम करते हो? सर मैं सेल्स में हूँ। ओके। फैसलाबाद से एक फार्मासिस्ट अभी जॉब पे आया हमारे साथ इधर अभी व्याला में, उसको किसी एम्प्लॉयर ने एप्स पास करने पे जॉब दी, वीजा दिया, सब कुछ दिया। और हमारे साथ एक और लड़का, उसका नाम भी फहीम है, वो भी फैसलाबाद यूनिवर्सिटी का है, वो फार्मासिस्ट बन गया है। सही। सोना है सभी। सर एक्चुअली मैं पूछना चाह रहा था कि क्या इस तरह हो सकता है कि हम असेसमेंट अभी करवा लें और टेस्ट बाद में दे दें? हाँ असेसमेंट आप अभी करा लो और टेस्ट नवंबर में दे दो, नो प्रॉब्लम। सही सर नवंबर में सर एक्चुअली बहुत सी चीजें होती हैं साथ साथ, जिस तरह डिग्री जॉब चल रही है, जॉब छोड़ना पॉसिबल नहीं है, फैमिली सपोर्ट सर बहुत जरूरी है, और इतना टाइम नहीं होता कि हम जो है ना तैयारी कर सकें। अगर तैयारी भी करते हैं तो सर इकोनॉमिकली बहुत से इश्यूज हैं, क्योंकि फैमिली सपोर्ट भी साथ करनी है। तो टेस्ट के व्हेन यू कैन डू द एग्जाम? सर मेरा इंशाल्लाह प्लान है, क्योंकि मेरी सेविंग्स साथ साथ चल रही हैं, तो जितनी टेस्ट की फीस है तो मैं ये चाह रहा था कि स्टेप बाय स्टेप चलूं, एटलीस्ट असेसमेंट में करवा लूं, उसके बाद जो है ना वो कैप्स दे दूं एटलीस्ट आफ्टर 1 ईयर। सही है, मार्च 24 का प्लान कर लो। ओके सर। तो सर मार्च 24 तक होगा ये वैलिड जो आप बता रहे हैं 491? देखो वीजा जो है ना कैप्स वालों के लिए तो चलते रहेंगे, कैप्स बंद नहीं होने वाला। ठीक है, ये जो फार्मेसी टेक्नीशियन गलती से खोल दिया ना उन्होंने, ये गलती से खोल दिया, मेरे ख्याल से इतनी जरूरत नहीं है फार्मेसी टेक्नीशियंस की और फार्मेसी इंडस्ट्री वालों की, ये शायद वाइंड अप कर दें जल्द से जल्द, मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा फील होता है, लेकिन कहीं लिखा हुआ नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन कैप्स चलता रहेगा। मैं तो वैसे ही शक में नहीं हूँ कि इंडस्ट्री मुझसे होती भी नहीं है। एक तो ये है कि मैं बाउंडेड एनवायरनमेंट में ऐसा नहीं जॉब कर सकता, मेरा ये थोड़ा सा मेंटल है कि मैं लोगों के साथ इंटरेक्शन में रहूं, आपका एक्सपोजर ज्यादा होता है। और दूसरा ये कि सर फार्मेसी टेक्नीशियन पे हमने क्यों करना है जब हमें फार्मासिस्ट का वीजा मिल रहा है? बिल्कुल,
और वीजा मिल गया तो आपको जॉब भी मिल जाएगी। कैप्स पास कर लोगे तो जाता है। When you pass a CAPS, when you have a CAPS pass on your CV, एम्प्लॉयर के सामने आपकी इम्पोर्टेंस होती है। जी सर। तो सर मैं ये आ रहा था कि ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन ये जो 491 जिसके अंडर हम अभी आप इनकरेज कर रहे हैं सबको माशाल्लाह कि आप अप्लाई करें, तो ये मार्च 24 तक जो आपने बताया कि उस वक्त इनरोल करवा सकता हूं मैं, तो क्या उस वक्त तक ये वैलिड होगा? हाँ ये वैलिड होगा, क्योंकि फार्मासिस्ट जो है ना इस वक्त अभी और जॉब्स खड़ी हो रही हैं, नई खड़ी हो रही हैं। जुलाई 23 से एक बहुत बड़ा एरिया खुल रहा है फार्मासिस्ट का यहाँ पे, एज केयर में फार्मासिस्ट। वो सर जिस तरह आपने पहले बताया कि प्रेस्क्राइबर के तौर पर भी, जनरल प्रैक्टिशनर के तौर पर भी, और साथ में वो अलग है, वो अलग है जो चीजें बताइए ये, लेकिन एज केयर एक अलग एरिया है जो कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। बुढ़े लोग जहाँ रहते हैं, एज केयर होम्स जो होते हैं, उसके अंदर फार्मासिस्ट को जॉब खुल रही है 1 जुलाई 23 से। तो परेशानी ये है कि फार्मासिस्ट कहाँ से आएंगे। अभी AJP जो ऑस्ट्रेलियन जर्नल ऑफ फार्मेसी है, उसने आर्टिकल छापा था जो कि मैंने अपने फेसबुक ग्रुप पे उसका आर्टिकल प्रिंट मतलब शेयर किया था। उसमें ये लिखा हुआ था कि जॉब्स तो खोल रहे हो, पैसे भी आ गए तुम्हारे पास, गवर्नमेंट ने पैसे भी दे दिए, तनख्वाहें भी दे दी हैं, लेकिन फार्मासिस्ट कहाँ से लाओगे। ये क्वेश्चन था, वेयर द फार्मासिस्ट विल कम फॉर दीज जॉब्स व्हिच आर स्टार्टिंग इन 1 जुलाई 2023 इन एज केयर। तो जॉब्स तो बहुत अभी जॉब्स 3000 खुली हुई है, ये जॉब्स और खुलने वाली है। तो फार्मासिस्ट तो चाहिए, लेकिन वो वाला फार्मासिस्ट चाहिए जो कैप्स पास किया हुआ हो, जिसके पास लाइसेंस हो, जो ऑपरा का रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो। सही, यानी कि सर असेसमेंट हम पहले डालें और जितनी जल्दी पॉसिबल हो कैप्स पास करें। हाँ, नवंबर में अगर कर सकते हो तो कर लो, 2 महीना छुट्टी ले लो काम पे से, 2 महीने की पढ़ाई कर लो, यू कैन डू इट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं ये क्वेश्चंस जो विंडो में लिखे हुए ना चैट बॉक्स में, ये बड़े जबरदस्त क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो कि मैं इनको आंसर कर देता हूँ क्विकली 1 बाय 1। तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फैसल कैसे हैं? खैरियत जी, कैसे हैं आप? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ आपका, माशाल्लाह वीडियोस मैंने बहुत अरसे से देख रहा था आपकी वीडियोस। अरे वेरी गुड। तो आपने क्या असर लिया उन वीडियो को देख के? आप भी टिकटॉक मैं मोटिवेट हुआ इरफान साहब, मोटिवेशन बहुत मिला। लेना था ना, एक्शन क्या मैं लिया? इंडिया से हूँ, B.Pharm ग्रेजुएट हूँ, फार्मेसी किया मैंने। ओके। और इंडिया हैदराबाद से हूँ। अरे वाह, ओके। और मैं यहाँ कुवैत में जॉब कर रहा हूँ फार्मेसी टेक्नीशियन की बेस पे। जी, तो मैंने स्किल असेसमेंट करवाई मैंने अपनी फार्मेसी टेक्नीशियन पे। यस यस। तो क्योंकि काफी 4 इयर्स एक्सपीरियंस था मुझे, तो मैंने सोचा इसको इस्तेमाल करूँ, फिर कैप्स भी यूज करूँ, मतलब कैप्स के लिए भी। लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम हो रही है कि कैप्स की जो मेरी फार्मेसी काउंसिल जो है ना, फार्मेसी सर्टिफिकेट जो रजिस्ट्रेशन वाला, वो एक्सपायर है। तो मुझे रिन्यू कराना है। तो मैं इनिशियल सर्टिफिकेट इस्तेमाल कर सकता हूँ कैप्स स्किल असेसमेंट के लिए? कोई मसला नहीं, एक्सपायर का कोई मसला नहीं है, जस्ट सेंड इट। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। जैसा मैं स्किल असेसमेंट का डेट डालूंगा, आप इंशाल्लाह ग्रुप में आ जाऊंगा पढ़ाई के लिए इंशाल्लाह। हाँ, आप कर दो, फिक्र ही नहीं करो। और मैंने ये 491 के लिए डाला था इरफान साहब, ये साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया और NSW 3 के लिए डाल दिया मैंने। 70 पॉइंट्स हो रहा था। कितने दिन में डाले हुए? 2 दिन पहले ही डाला मैंने। अरे तो आ जाएगा, 10 दिन में तो आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये NSW में ये कह रहा है कि कुछ फिर वेबसाइट पे करना है हमको ROI, क्योंकि EOI तो डाल दिया मैंने 3 भी, लेकिन मुझे ROI का पैसे मांग रहे हैं वो, खामखा में $800 फीस मांग रहे हैं स्टेट नॉमिनेशन भरने की। तो हाँ, तो वो छोड़ दो, मतलब जरूरी नहीं है। क्वींसलैंड कर लो, आप क्वींसलैंड कर लो, अगर एक और करने का शौक हो रहा है क्वींसलैंड में डाल दो, वो भी सस्ता है। क्वींसलैंड में PT फिर से लिखना पड़ेगा, प्रोफिशिएंट चाहिए वो लोग। इंशाल्लाह लिखूंगा मैं कैप्स के बाद। जो मिल रहा है वो पहुंच जाओ, कंप्यूटर जो आपका असेसमेंट आ गया ना, जो मिल रहा है लेके ऑस्ट्रेलिया लैंड कर जाओ, फिर बाद में देख लेना जो होगा। अच्छा, ठीक है। और कैप्स की असेसमेंट डाल दो और अपना लाइसेंस रिन्यूअल का डाल दो। तो यही डाउट था मेरा इनिशियल रजिस्ट्रेशन में, सडन वो मेल करेंगे कि वेयर इज योर अपडेटेड, ऐसा सोच के मैंने कुछ नहीं करेंगे इंशाल्लाह। चलो ठीक है, वही एक डाउट था मेरा बस। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रान। ओके, टेक केयर। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम सलाम जी, उज़ैर आमिर जी। सर आई हैव वन क्वेश्चन। जी कैमरे पे आएंगे? जी उज़ैर, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आई एम फॉलोइंग यू इन एवरी फॉर्मेट। मैं आपका यूट्यूब, लिंक्डइन और फेसबुक हर जगह पे फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक सर मैंने असेसमेंट करवानी है। ठीक है। तो रिसेंटली मैंने एमफिल जो है ना वो पास आउट किया है, लेकिन अभी मेरा ट्रांसक्रिप्ट नहीं आया। सॉरी, तो क्या चीज की है आपने? एमफिल किया है? एमफिल। ओके। तो सर मुझे एमफिल के ट्रांसक्रिप्ट का वेट करना चाहिए या फॉर्म डी बेस पे ही असेसमेंट के लिए अप्लाई कर दूं? नो, एमफिल करने से आपको कोई वो सैल्यूट नहीं मारेंगे। कोई नथिंग, एडिशनल बेनिफिट नहीं कुछ होगा? भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। उसको छुपा के ठीक रख है, लो तो अच्छा है, ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एमफिल आपको कुछ भी नहीं देगा, याद रखना आप। ठीक ठीक। तो ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, यही पीएचडी बस। कर लेना, फार्मेसिस्ट बन जाना, पीएचडी कर लेना बाद में, उधर काम आएगा, लेकिन अभी काम नहीं आएगा। ठीक ठीक। ऐसा नहीं कि टाइम ज़ाया कर दिया। इट विल बेनिफिट यू इन डूइंग द पीएचडी। इफ यू वांट टू डू अ पीएचडी इन ऑस्ट्रेलिया, स्कॉलरशिप पे पीएचडी कर लेना। जब पीआर वीआर हो जाए हाथ में, जब पीआर आ जाए उस वक्त स्कॉलरशिप पीएचडी जरूर करना, मजा आएगा तुमको करने में, उस वक्त काम ठीक आएगा ये। ठीक है सर, थैंक ठीक यू। है, ओके, वेलकम वेलकम। सर मेरा और एक डाउट था, सॉरी सर मैं जी भूल ही बोले गया। बोले। सर ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया के लिए मैंने ईओआई डाली थी, फिर उसके बाद कुछ आरओ ऐसा कुछ डालना है या बस सफिशिएंट है वो ईओआई? ओके, ये क्वेश्चन का आंसर ना, ये टेक्निकल आंसर है, ये मुझे ना इमिग्रेशन वाले से पूछना पड़ेगा। आई डोंट नो दिस। तो मतलब इमिग्रेशन का पर्सन है हमारे साथ, तो मैं उसको सवाल पूछ लूंगा, आप मुझे लिख के दो ये सवाल। विक्टोरिया में मैंने देखा आरओआई रजिस्ट्रेशन ऐसा कुछ लिखा हुआ था, तो मैंने सबमिट किया, वो फ्री है, मतलब उसमें कोई अमाउंट नहीं है विक्टोरिया में। फिर मैंने सबमिट किया, लेकिन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, बस मैंने ईओआई डाला और छोड़ दिया बस। मैं इसके बारे में नहीं जानता, आई डोंट नो दिस। ये मेरा एरिया नहीं है ना ये वाला, मैं सिर्फ गाइड करता हूँ शुरू में, आगे ये वाला क्वेश्चन आप लिख दो। मैं ऐसे ही आपको नंबर है ना, तजुर्बा ऐसे यू गॉट माय नंबर ना, यू गॉट माय जी नंबर। जी जी मैंने लास्ट टाइम write this question and I will forward that to the immigration person. I will get a response. थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। ओके, थैंक यू। अल्लाह। जैसे मैं एक चीज सोच रहा था, ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं इनको मैं पढ़ता जाऊं और आंसर देता जाऊं, तो ये रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, तो लोगों को आंसर मिल ही जाएंगे अगर वो यूट्यूब ठीक पे है सर, कहीं देखेंगे। तो मैं ये कर देता हूँ जल्द से जल्द। ये क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर जितने भी डाले हुए हैं। आपने देखे क्वेश्चन ये वाले? नहीं देखे सर, मैं कॉल से कट हो गया था, इस वजह से अच्छा, दोबारा ओके। जब ज्वाइन किया तो फिर मेरे पास सिर्फ एक क्वेश्चन अभी आया है हसनैन का। क्या सवाल है वो बोल दें अगर आप। हसनैन अली, वो कहते हैं सर आई एम हसनैन अली, आई एम आस्किंग दैट माय वाइफ इज डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी करंटली इन फाइनल ईयर एंड आई एम आल्सो इन फाइनल ईयर फार्मडी फ्रॉम गोमल यूनिवर्सिटी। यस सर, हाउ कैन वी बोथ came on spouse visa in Australia and what about her job perspectives? ओके, बहुत अच्छा है। And बहुत अच्छी है। what's the best advice to make it happen in as soon as possible? ओके, तो वो ये करें कि अपनी डिग्री निकलवाएं अपनी यूनिवर्सिटी से फौरन, वहाँ का फार्मेसी काउंसिल का भी कर लें, कैप्स असिस करा लें, कैप्स पास कर लें, और एज ए 491 वीज़ा, फैमिली वीज़ा अप्लाई कर दें। ठीक है, और साथ में जो उनकी फिजियोथेरेपिस्ट वाइफ हैं, वो जब फिनिश हो जाए तो पाकिस्तान का जो फिजियोथेरेपी का अगर लाइसेंस है वो कर लें, और फिर वहाँ की जो बॉडी है उसको एप्लीकेशन डाल दें। इक्विवेलेंसी का जो भी प्रोसेस है उसका भी एग्जाम होता है, और शायद कोई कोर्स करना होता है यूनिवर्सिटी में, वो कर लें तो उनके तो बारे नहीं आ रहे। बहुत अच्छी प्रोफेशन है फिजियोथेरेपी का ऑस्ट्रेलिया के अंदर। स्पोर्टिंग नेशन है तो हर जगह फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए होते हैं। सर, इसके अलावा मेरे पास कोई क्वेश्चन सामने नहीं है। I'll read the question। ये कोई असामा सईद हैं, उन्होंने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम, काइंडली clear it to me if it's possible to exchange my grade to Australia while studying PharmD from Pakistan. Okay, इसका आंसर ये है कि आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को लिख लो और टाइप अपना आंसर, उसको क्वेश्चन भेज दो कि आप माइग्रेट करना चाहते हो उनके फार्मेसी के प्रोग्राम में। हो सकता है आपको एक्सेप्टेंस मिल जाए, हो सकता है कुछ आपको वो दे दें, लेकिन फीस बहुत तगड़ी है यूनिवर्सिटीज़ की यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट की। तबीयत साफ हो जाएगी आपकी। इतनी ज़्यादा फीस है कि एक साल में $30,000 निकलवा लेंगे वो आपसे। तो थिंक अबाउट इट, फार्मेसी करो अपने मुल्क में, फार्म इधर इधर आके कैप्स करके इधर आ जाओ, सबसे सस्ता काम है। ठीक है, ये बहुत महंगा क्वेश्चन है ये। तो अगला सवाल है
थोड़ा सा उर्दू में बोले। अरे अच्छा, ये मैंने देखा ही नहीं। अरीबा अरशद कहते हैं। ओके, उन्होंने बहुत पहले कहा था, मैंने देखा नहीं। यू आर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, किसी ने लिखा है, शाहिद ने। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। डोंट राइट ऑन स्क्रीन प्लीज। ओके, एग्री 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 एग्री, कोई बात नहीं। ओके, अगला सवाल है, इट्स टू मच, इट्स रिस्की एज वेल, आई विल अनफॉर्चुनेटली वोंट पास, इट्स वेस्ट। नो, नतीक अब्बास कहते हैं कि बड़ा रिस्की है। देखिए, लाइफ में रिस्क लेना पड़ते हैं, वही लोग आगे जाते हैं। तो रिजल्ट को ना सोचें, जो एग्ज़ाम का फेलियर है उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। एग्ज़ाम की तैयारी करें, एग्ज़ाम की तैयारी करें, इंग्लिश की तैयारी करें, इंग्लिश पास करें, और फिर जब तैयारी अच्छी होगी ना, तो ये ओवर तैयारी कर लेंगे तो ये पास हो जाएगा, तो ये डर खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बहुत लोग पास करते हैं, और वही लोग फेल होते हैं जो तैयारी अच्छी नहीं करते हैं, जो डाउट में रहते हैं, वो फेल हो जाते हैं। डाउट पहले क्लियर होना चाहिए। मैंने कहा था ना कि मेरे जो कैप्स के अंदर जो जो लोग आते हैं ना, वो फियरलेस होके आते हैं। उनको मैं आने नहीं देता हूँ जब तक कि मुझे पता ना चल जाए ये बंदा फियरलेस है कि नहीं है। जब तक कि इसका एग्जाम का डर खत्म हो गया नहीं हो गया, ये ऑजी वे में आ गया या नहीं आ गया, वो रिदम में आ गया या नहीं आ गया, वही लोग ग्रुप में आते हैं मेरे। और उसके लिए एक प्रोसेस मैंने रखा हुआ है, तो वो प्रोसेस करना होता है आपको। बट वी हैव टू गो फॉर इट, वी हैव टू अटेम्प्ट। ओके, प्लीज mute everyone. Okay, ठीक है, silence please sir. From where we should prepare ourselves for this exam? Okay, अनम शेख, इन्होंने सवाल किया प्रिपेयर कहाँ से करना है। पहले तो आप कैप्स की असेसमेंट करा लें, ठीक है, और उसके बाद जब आप कर लें तो उसकी रसीद मुझे भेजें और हमारे ग्रुप में आ जाएं। हम आपको ग्रुप में कुछ आपको चीज़ें करने को बोलेंगे, वो आप कर लें, और फिर आप स्टडी ग्रुप में आ जाएं, तो आपको एग्ज़ाम में पढ़ाई करने में आसानी हो जाएगी। और आपका 2 महीने लग के पढ़ाई करके, 3 महीने लग के पढ़ाई करके इम्तहान हो जाएगा, जो कि आप जुलाई का भी अटेंड कर सकते हैं। प्लीज़ शेयर द मटेरियल ऑफ एग्जाम, इलियास कहते हैं मानसेरा से। देखिए, मटेरियल मैं किसी को भी नहीं देता इस तरह सवाल पे, तो मैं भगा देता हूँ कि प्लीज़ शेयर द मटेरियल। मैं नहीं करता, क्योंकि मटेरियल का मतलब है कि आपने उठा के सारी बुक दे दी और आपने करना वरना कुछ नहीं है। जब तक कि आपने कैप्स की चीज़ें जमा नहीं की है ना, मैं उस वक्त तक नहीं देता हूँ। हाँ, किसी को बहुत शौक है, मैं उनको सैम्पल पेपर दे दूंगा, पढ़ लो, थोड़ा सा बुक दे दूंगा, लिपिन कॉर्ड दे दूंगा, ये दे दूंगा, लेकिन जो पूरा मटेरियल है ना, वो आपको उसी वक्त आपको ग्रुप में ही मिलेगा, जब आप ग्रुप में आओगे, उस पूरे प्रोसेस को करते हुए फियरलेस होके। डरने वाला बंदा मेरे ग्रुप में मतलब डर लग रहा है तो वो फिर फेल ही हो जाएगा। तो वो डरने वाले जो है ना, वो मेरे पास नहीं आते हैं, वो फिर कहीं और जाते हैं। सर, इट्स पॉसिबल कि हम स्टडी वीजे पे ऑस्ट्रेलिया आए और बाद में ऑस्ट्रेलिया में एग्जाम कर लें? इस पे हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं मेरे ख्याल से। सर, इन रीजनल एरिया गुड फॉर गेट अ जॉब और अदर प्रोफेशन? जी, अदर प्रोफेशन में भी जॉब मिल जाती है। ऊबर पीडी एक एरिया है, बहुत ही रीजनल एरिया है, माइनिंग टाउन है, वहाँ पे कोई बंदा फारिग नहीं होता है, हर बंदे को जॉब मिल जाती है। एक फार्मेसी में बंदा काम करने आया था, उसकी वाइफ थी, उसको मास्टर्स डिग्री थी मैथमेटिक्स में उसके पास, उसको बैंक में जॉब मिल गई। मैंने उसको बोला कि सीवी ऐसे ऐसे बनाओ और बैंक में डाल के आ जाओ। वो बैंक में डाल के आ गई, उसको बैंक वालों ने बैंक में जॉब दे दी। और क्या चाहिए? जो जो बंदा मेरे पास काम कर रहा था, उससे ज़्यादा सैलरी पे उसको बैंक ने जॉब दे दी। उसको किसी को पता ही नहीं था, कोई एक्सपीरियंस। रीजनल एरिया में लोग नहीं है, काम करने वाले लोग नहीं है, आपको जॉब मिल जाती है। जॉब हर प्रोफेशन में जॉब मिल जाती है, ठीक है। इज इट ईजी टू गेट अ जॉब फॉर कैप्स? वेरी, इट्स नॉट लाइक कि आपको कैप्स करेंगे और आप एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, एम्प्लॉयर खड़े हुए होंगे नीचे बोर्ड लेके, हाँ भाई जॉब तुम्हारे लिए। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, आपको अपने डिजिटल प्रेजेंस तैयार करनी पड़ेगी, आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल टॉप नॉच होनी चाहिए, आपको इंटरव्यू स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको सीवी आपको कैसे बनाना है वो पता होना चाहिए, और उसको मार्केट कैसे करना है, अपने आप को मार्केट कैसे करना है। आपको वीडियो पे होना चाहिए, आपको आपकी वीडियो जो है वो वेबसाइट पे, जो रिक्रूटर्स हैं उनकी वेबसाइट पे, वहाँ अच्छी बनी हुई इंटरव्यू स्किल्स होनी चाहिए। जो जो कि मैं अपने पहले मैसेज में कहता हूँ कि जब आप मेरे पास आ रहे हो तो आप अपना एक वीडियो बनाओ, फ़ोन रखो सामने ऐसे करके, और बात करो कि आई एम इरफान हाशमी, आई एम अ फार्मासिस्ट, आई डिड माय ग्रेजुएशन इन 1997 एंड आई वर्क एज द कम्युनिटी फार्मासिस्ट, and why I want to come to Australia, the reason behind is that the Pakistan profession that I'm working is not that good in payment, in salary. I want to earn good salary. Simple as that. Simple. सच बोलो कि आप क्यों आ रहे हो इतनी दूर से ऑस्ट्रेलिया? आप अच्छा कमाने के लिए आ रहे हो, आपको शौक है एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक नई जगह काम करने का, आप शौक है आपको नए दोस्त बनाने का, आपको शौक है एक नए इन्वायरमेंट में जाके नई जगह पे मिक्स होने का, मल्टी कल्चर इन्वायरमेंट में मिक्स होने का, एक अच्छे
वेस्टर्न कंट्री के अंदर आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ गुजारना चाहते हो वहाँ पे, आपके बच्चे जो हैं वहाँ के स्कूलिंग में पढ़ेंगे, आपको स्पोर्ट्स का शौक है, आप ऑस्ट्रेलियन कल्चर में मिक्स होना चाहते हो इन तरीक़ों से, ये वीडियो में बात करो और सच बोलो आंखों में। तो ये वीडियो मुझे दो, वो वीडियो मैं चेक करूँगा, उस पर कोई चीज़ ऊंच नीच होगी वो बता दूंगा। और क्योंकि ये वीडियो इंटरव्यू तो होते रहेंगे ऑस्ट्रेलिया में, तो ये पहला झटका लगता है जब कोई मेरे पास आता है। बहुत सारे लोग भाग जाते हैं इसको देख के, कहते हैं नहीं नहीं ये तो नहीं कर सकते हम, लेकिन ये करना होता है ताकि आप आगे चल सकें। तो जॉब मिल जाती है, जॉब इसी तरह हम तैयार करवा देते हैं जॉब्स को, ठीक है। और अग्रीड Okay. Sir, there is one of the question from Azazur Rahman. जी बताइए। What is the difference between metastasis and caps? ओके, विटासिस जो है ना एक बॉडी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो कि बहुत सारे प्रोफेशन की असेसमेंट करती है। उसमें से हमारे फार्मेसी के 2 प्रोफेशन हैं जो कि इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट का प्रोफेशन उसकी असेसमेंट करती है, और एक फार्मेसी टेक्नीशियन की प्रोफेशन की असेसमेंट करती है। और इसके अलावा कोई 100-200 प्रोफेशन है जिनकी वो असेसमेंट करती है, लेकिन हमारे लिए सिर्फ 2 की इंपॉर्टेंस है। तो पेपर बेस्ड असेसमेंट है, कोई एग्जाम नहीं लेती है, वो सिर्फ पेपर पे आप पेपर भेजते हैं, फीस भेजते हैं $1400, $1500, $1600, 10 डेज में वो असेसमेंट आर या पार करके आपको फारिग कर देते हैं, ठीक है। कैप्स जो है वो कम्युनिटी फार्मेसी में जब काम करना है, रजिस्टर होना है, उस प्रोफेशन के लिए वो असेसमेंट करती है। पहले वो पेपर देते हैं, वो 2-6 हफ्ते लगाते हैं, पेपर असेस करते हैं, फिर आपको एग्जाम देना होता है। एग्जाम देते हैं तो आपकी डिग्री ऑस्ट्रेलियन डिग्री के बराबर हो जाती है। फिर आप उनकी जो एपरा की जो बॉडी है उससे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, इंग्लिश पास होता है आपका तभी होती है वो। तो ये स्टेप्स हैं, ये फ़र्क है दोनों में, ठीक है। ओके, एब्सोल्युटली वर्थ द इन्वेस्टमेंट, पता नहीं क्या मतलब है, आई डोंट नो, मरियम कहती हैं। ओके, एब्सोल्युटली बहुत लोगों ने कहा इट्स टू मच, इट्स रिस्की, ये फिर आ गए। ओके, फिर क्यों कह रहे हैं दोबारा। ओके, प्लीज शेयर द मटेरियल, ये बात हो चुकी है। मार्च, जुलाई, नवंबर, ठीक है सर। इन रीजनल एरिया, ये भी बात हो गई। ओके, इज इट इजी टू जॉब? यस, एनी चांस फॉर इंटर्नशिप और एनी चार्जेस फॉर इंटर्नशिप और एनी अदर चार्जेस? ओके, इंटर्नशिप में तो पे मिलती है, चार्जेस नहीं होते, तनख्वाह मिलती है, ठीक है ना, सैलरी मिलती है। सर आपने जो USD लिखे हुए पाकिस्तानी कितने बनते हैं? मैंने USD नहीं लिखा, मैंने ऑस्ट्रेलियन डॉलर लिखा था। ऑस्ट्रेलियन डॉलर इस वक्त जो है पाकिस्तान के आई थिंक 180 रुपये के बराबर है। तो आप कन्वर्ट कर लें, $1310 इंटू 180 कर लें, कैलकुलेटर पे नजर आ जाएगा आपको। और एग्जाम की फीस $2300 है, उसको मल्टीप्लाई कर लें 180 से, तो आपको पता लग जाएगा पाकिस्तानी कितने होते हैं। किसी ने लिखा है 4 लाख, किसी ने लिखा है 10 लाख। आई डोंट नो व्हाई इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट लिखी है। ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर, नॉट अमेरिका, सही है। तो किसी ने ऑस्ट्रेलियन से US से कन्वर्ट कर दिया तो 10 लाख बना दिया उन्होंने। तो ये भी पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कन्वर्जन क्या है। इज देयर एनी कैप्स मटेरियल व्हिच गो थ्रू द वेरियस कंटेंट बीइंग एग्जामिन्ड? इज देयर कैप्स मटेरियल? इज देयर कैप मटेरियल स्टडी गो थ्रू वेरियस स्टडी मटेरियल? हम दे देंगे आपको। व्हाट आर द पासिंग मार्क्स फॉर कैप्स? ओके, गुड क्वेश्चन। पासिंग मार्क जो है वो लिखा हुआ तो वेबसाइट में 50% है कि 50% होगा तो आप जा सकते हैं, लेकिन 50% पे क्यों हम तैयारी करके जाएं? हम 100% पे क्यों नहीं तैयारी करें? तो मैं तो अपने स्टूडेंट में कहता हूँ कि पासिंग मार्क जो है ना 80 है, 80 पे आप रखना। अगर 80 आप सही करके आए हो तो पास हो जाओगे, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। तो 50 तो मैं बिलीव ही नहीं करता हूँ। जब से मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ 50 तो मेरे लिए जोक है। 50 मैं किसी को भी नहीं कहता कि 50% मार्क्स है। 50 का मतलब है आप फेल होने जा रहे हो। जैसे अभी किसी ने कहा था ना कि इंग्लिश के टेस्ट में क्या है 7 होना चाहिए, तो मैंने कहा था टारगेट ये रखोगे तो वहाँ फॉल करोगे, अगर टारगेट ही 50 रखोगे तो फेल ही हो जाओगे फिर। तो ये दैट्स नॉट राइट। बुकिश का मतलब वेबसाइट पे जो लिखा है 50% है, लेकिन मुझे पता है उनका जो पिकअप होता है ना वो टॉप लॉट पिक कर लेते हैं, और उसमें जो टॉप वाले होते हैं वो वही होते हैं जो 70-80 पे होते हैं, बाकी सब रह जाते हैं, ठीक है। ये सब बेकार है। 50% इज जस्ट नॉट राइट। लिखा हुआ है पेपर वेबसाइट पे, बट इट्स नॉट राइट। ओनली पास, दैट्स गुड, ओनली पास, वो सही आंसर नहीं बताते कि क्या कितने पे उठाया उन्होंने। हाउ मेनी GPA रिक्वायर? कोई GPA नहीं चाहिए कैप्स को, नथिंग, इज जस्ट अ डिग्री। कोई सप्ली वप्ली लिखाओ, डजंट मैटर किसी की मार्कशीट पे, इट डजंट रियली मैटर, ओके। तो GPA का सवाल पहले भी पूछा था, मुझे याद है मुल्तान की किसी उसमें प्रोग्राम में जब मेरे से, तो सारे स्टूडेंट बड़े खुश हो गए थे, वो कोई GPA का मसला नहीं है। तो मैंने इधर भी बता रहा हूँ, कोई GPA का मसला नहीं है। फार्मासिस्ट की डिग्री है, दैट्स इट। अदर वो देखेंगे नहीं नीचे आपने क्या किया। हाँ, लेकिन इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए ताकि आप जॉब ले सको, ठीक है। लुकिंग फॉर रिसेंट रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। सर टोटल कितने पैसे लगेंगे पाकिस्तानी?
आप फीस कैलकुलेट करते जाओ, सब पता चल जाएगा आपको। मैंने बताया अभी $2300 असिस्टेंट, $2300 एग्जाम फ़ी, वीज़ा फ़ी 4500, बस ये मोटी मोटी फीस है। और स्टेट नॉमिनेशन की $350 है, ऐसी कुछ है। आई एम ऑल्सो कन्फ्यूज अबाउट दिस। क्यों भाई इसरार खान क्यों कन्फ्यूज है? हम इतने सिंपल तो बता रहे हैं चीज़ें। अगर कन्फ्यूज है तो बार बार अटेंड करें, वेबिनार अटेंड कर लें, ये वाला वेबिनार दोबारा देख लें रिकॉर्डिंग में जाके, अगर कन्फ्यूज हो रहे हैं। 4 लाख अपीयर इन एग्जाम, बिल्कुल, लेकिन उस एग्जाम को पास करके आपकी डिग्री ऑस्ट्रेलिया के $60 लाख वाली जो डिग्री है उसके बराबर खड़ी हो रही है। ये भी तो देखें, 60 लाख मल्टीप्लाई बाई मतलब 60,000 मल्टीप्लाई बाई करेंगे जरा कैलकुलेशन पे, जरा आपके पास कैलकुलेटर हो जोहेब, जरा कीजिए जरा। $60,000 इंटू 180 कितने रुपए होते हैं पाकिस्तान के? $60,000 मल्टीप्लाई बाई 180 रुपया। सर इंटू 180 रुपया, ये हो जाता है कितने 1 करोड़ों में? करोड़ जी, 1 करोड़ 12 लाख। 1 करोड़ 12 लाख की डिग्री बन रही है आपकी 4 लाख की इन्वेस्टमेंट से। तो ये तो कोई भी कंपैरिजन नहीं है। ये तो समझे आप लैंड क्रूजर खरीद रहे हैं रक्षा के पैसे के अंदर। बिल्कुल सही है ना? तो अब ये भी वैल्यू भी तो देखिए ना, वैल्यू, आदमी कोई चीज अचीव करता है तो उसके पीछे वैल्यू होती है ना। तो वैल्यू क्या मिल रही है ये देखो आप। मेरे ख्याल से अगर ये बात हम राइटिंग पे लिख के देते ना इमिग्रेशन वालों को, तो ये फीस ना ये 4 गुना बढ़ा देंगे उठा के, अगर ये बात उनको पहुंचा दें कि ये यहाँ पे कंपैरिजन में इतना सस्ता माल है यहाँ पे डिग्री का। तो बस इससे फ़ायदा उठा लें सब लोग। डोंट वरी अबाउट दिस बिग ब्लैक्स 5 लाख। हाउ मेनी पाकिस्तानीज आर पी वुड बी व्हेन कन्वर्जन? ठीक है, हमने बात कर ली इस पे। हाउ मच पीटी स्कोर रिक्वायर्ड और आईएलटीएस? पीटी जो है वो मिनिमम 65 है, लेकिन डोंट गो फॉर द मिनिमम, गो फॉर बिगर स्कोर लाइक 90 और 80। आईलेट जो है 7 है, डोंट गो फॉर 7, गो फॉर द बिगर स्कोर लाइक 8। देन वीज़ा ऑफिसर विल बी हैप्पी टू गिव यू द वीज़ा। ठीक है ना? एम ज़्यादा रखें। टोटल 8 लाख 5 लाख ये सब पैसों के ऊपर बात हो रही है। एनीवन कैन रिपीट द प्रोसीजर, हमने बात कर ली इस पे। आई हर्ड 99% वीजा रिफ्यूजल रेट इन केस ऑफ एशियन पीपल। व्हाट अ क्वेश्चन, तंजीला अमीन कहती हैं। तो ये कौन से वीजे की बात कर रही हैं? ये भी तरह स्पेसिफाई करें। स्टूडेंट वीजे की बात कर रही हैं, विजिट वीजा की बात कर रही हैं, ये कौन सा वीजा है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। समरीन खालिद कहते हैं नो, साहिल कहते हैं नो। तो ऐसा कुछ नहीं है। फार्मासिस्ट की वीजे की बातें हो रही हैं। हम लोग कोई हॉलीडे वीजे की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम फार्मासिस्ट जो कि ह्यूज डिमांड है, ठीक है ना, ह्यूज डिमांड है, उस वीजे की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट लेमैन, ट्रेडमैन, लेबरर, हम वो नहीं है। हम फार्मासिस्ट प्रोफेशन के लोग हैं, उसकी बात हो रही है। तो हमारा वीजा प्रायोरिटी पे इस वक्त। तो जस्ट स्टॉप टॉकिंग अबाउट दिस रिफ्यूजल वीजा, ठीक है? कैन एनीवन रिपीट दिस प्रोसीजर, हाउ टू अप्लाई इन उर्दू? ओए ये कौन है? अरीबा कौन है? हुज अरीबा? आप जानते हैं इनको? इज इट कौन सा? फ्रॉम अरीबा अरशद कौन है? क्योंकि उन्होंने उर्दू में कई दफा सवाल किया, शायद उनको समझाना। पता तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इनके ना ऐसे थे कि मुझे मजाक लगे हैं। अच्छा, ओके। मसलन कोई बताएं, कोई क्वेश्चन उनका क्या था? जी क्या मुझे क्वेश्चन? याद नहीं है सर। अच्छा, क्योंकि वो हर चीज़ को उर्दू में कह रही हैं कि उर्दू में प्रोसीजर समझाएं, तो उर्दू में भी बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी सब ये अगर रिकॉर्डिंग जी। देखेंगे तो उनको समझ में आ जब सर जाएगा। आप वो बता रहे थे ना, जब आप स्लाइड पर थे, तब इनके मैसेजेस आए हैं। अच्छा अच्छा, ओके, जी, चलिए ठीक है। लेकिन आई थिंक शी माइट नॉट बी इंटरेस्टेड। ओके ठीक है। तो एक सवाल है कि उस्मान पूछ रहे हैं कि कोई अगर पाकिस्तान में गवर्नमेंट जॉब में है और वो ऑस्ट्रेलिया आ जाता है तो उसको जॉब क्विट करनी पड़ेगी? जाहिर बात है, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी जॉब से रिजाइन करके आए, ताकि आपकी पाकिस्तान की जॉब में कोई पाकिस्तानी फार्मासिस्ट काम कर सके, ठीक है ना? तो दिस इज व्हाट माय रिकमेंडेशन। लेट अस नो अबाउट द कैप्स प्रिपरेशन। ठीक है, मैंने आपको बताया कि आप अपनी फीस जमा करें और आ जाए हमारे पास। सर आई हैव सम कंसर्न, वांट टू क्लियर फ्रॉम यू, कैन आई आस्क? ये इन्होंने सवाल किया था उस्मान ने, आई डोंट नो। डेफिनेटली, उस्मान ने किए क्वेश्चन सर, ये हो गया। ठीक है। डेफिनेटली वी वांट टू स्टे देयर इन ऑस्ट्रेलिया। ये हैं नातिक अब्बास, ओके। हो उस्मान ने गया। फिर सवाल किया है वही वाला ऑस्ट्रेलिया वाली जॉब का। अगर लगता है वो शायद गवर्नमेंट में जॉब में करते होंगे, शायद हो सकता है। जी गवर्नमेंट जॉब वालों को हाई कमीशन भी ये कहती है कि जब आप आ रहे हो तो अपनी जॉब रिजाइन करके आए। ये नहीं कि आप वहाँ पे एनुअल लीव ले लें और आपको वहाँ से तनख्वाह मिल रही है और ऑस्ट्रेलिया की भी तनख्वाह मिल रही है, ऐसा ना करें। कोई बता सकता है कि एमफिल के बाद एमबीए करने
के लिए क्या CGPA रिक्वायर्ड है? ये मुझे नहीं पता, आई डोंट नो व्हाट इज इट मीन। CGPA यूनिवर्सिटी के GPA की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से। जी 2.8 बट आई एम फिल हैविंग ये ओके हमारे से रिलेवेंट नहीं है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, हमारे से रिलेवेंट नहीं है। 2.8 यूजुअली ये भी हमारे से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि सिर्फ फार्मेसी की डिग्री चाहिए कैप्स को, दे डोंट सी योर GPA, तो कोई मसला नहीं है। काइंडली एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्टेट नॉमिनेशन। ओ माय गॉड, इसका सिंपल तरीका ये है कि आप स्टेट नॉमिनेशन लिखें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, स्टेट नॉमिनेशन लिखें साउथ ऑस्ट्रेलिया। उनकी इमिग्रेशन स्टेट गवर्नमेंट की अपनी एक वेबसाइट से, जैसे माइग्रेशन ऐसे एक वेबसाइट है साउथ ऑस्ट्रेलिया की, उसमें पोर्टल बनाएं और उसके अंदर जाके अपना कैप्स का रिजल्ट और PTE का रिजल्ट लोड कर दें, पासपोर्ट लोड कर दें, $300 वो फीस लेते हैं वो लोड कर दें, और अल्लाह खैर सल्ला आपको वो स्टेट नॉमिनेशन का आंसर आपको मिल जाएगा फॉरन विद इन अ वीक 10 days। What is the fee of state nomination? $350. I have the accreditation as a vaccinating pharmacist. Wow, in South Africa. Would I need additional accreditation in Australia? Yes, you would need. You would need a first aid certificate. You would need a ITP program training of face-to-face training in Australia. So you need to do some training, but it will be a huge advantage if you're already doing that. That's very good. I'm very happy. Who's the person who's asking this question? Mariam. Yes, I know Mariam. Yes, you are with me. I know that. I know you. Okay. Tanzila Amin getting, sir, I want to know if a person is not fresher in pharmacy, like pharmacy field, like I have done pharmacy Pharm D in 2014 and want to apply for registration, and I'm eligible for the test or not? Yes, you are eligible. What's the problem? If you have a degree, if you have a mark sheet, if you have a pharmacy license, you are eligible, no problem. और हमारे ग्रुप में 26 साल गैप के साथ भी फार्मेसी के साथ भी उन्होंने कैप्स किया है, 16 साल वालों ने किया है, और भी बहुत लोग हैं 10 साल वाले इन्होंने किया है। कोई नया मसला नहीं है, सब एलिजिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, इज देयर एनी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर कैप्स लाइक क्लिनिकल? कैप्स लिखने के लिए ना आपका CV चाहिए, ना एक्सपीरियंस चाहिए, जस्ट आपकी डिग्री, मार्कशीट और लाइसेंस की कॉपी चाहिए, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा कुछ भेजने की जरूरत नहीं है उनको डॉज कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो चाहिए वो दे दें और आगे चलें, ठीक है। प्लीज शेयर द लिंक। शेयर द लिंक, कौन सा लिंक? मुझे नहीं पता कौन सी लिंक की बात हो रही है। हम कैप्स की व्हाट्सएप ग्रुप का आपका लिंक शायद बहुत ऊपर चला गया, वो अगर आप दोबारा सेंड कर दें तो। कौन सा वाला ग्रुप? सॉरी, व्हाट्सएप ग्रुप का। व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप का तो सिर्फ मैंने नंबर लिखा था। मैं आपको आई थिंक पहले आपने ग्रुप का वो लिंक सेंड किया था। जोहिर, मैंने ग्रुप का लिंक कभी भी शेयर नहीं किया कहीं भी। मैं सिर्फ उनको कहता हूँ कि आप मुझे मैसेज करें, आप मुझे अपनी डिटेल भेजें, ताकि मुझे पर्सन का पता हो कि कौन आ रहा है मेरे ग्रुप में। आई नीड टू नो दैट पर्सन, देन आई आस्क देम टू ज्वाइन, आई इनवाइट देम माई सेल्फ। वरना तो हम कंट्रोल ही ना रख सकें कौन कौन से, मतलब हमें नंबर्स नहीं करने, हमें क्वालिटी करनी है, जो लोग प्रोग्रेस करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई माय ग्रुप्स आर वेरी सिंपल ग्रुप्स। उसमें जो भी है वो कुछ ना कुछ उनसे मेरी इंटरेक्शन रहती है। तो ये व्हाट्सएप है और इस पर एक प्रोसीजर लिखा हुआ है मैंने कि ये ऐसा ऐसा कर लें तो आ जाए। अगर आप चाहते हैं तो हम एक ग्रुप बना देते हैं जिसके अंदर सब लोग आ जाएं, लेकिन फिर वो मज़ा नहीं आएगा उसमें, फिर हम सवालात के जवाब ही देते रह जाएंगे ये वाले। नहीं सर, आपका प्रोसीजर बिल्कुल ठीक है, इसी तरह। हाँ, समझे, मैं रिक्रूट करता हूँ लोगों को। मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी मर्जी से ग्रुप, कुछ लोग होते हैं दोस्तों को अपने ना वो दे देते हैं व्हाट्सएप से निकाल के। वो अचानक से कोई बंदा आया हुआ था अननोन, तो मैं पूछता हूँ आप कौन हो भाई, कैसे आए उस ग्रुप के अंदर, मैं तो जानता ही नहीं आपको। तो फिर वो बताते हैं, मैंने कहा आप आते हो लेकिन आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपसे मेरी कोई इंटरेक्शन ही नहीं हुई है। और आप इस ग्रुप को वैसे ही लोगे जैसे कोई आपका कोई दूसरा तीसरा ग्रुप होगा व्हाट्सएप में, बस आप आ गए, वहाँ पे जो बात हो रही है होती रहे, उसमें आप ना पार्टिसिपेट करोगे, ना आपका कोई इंटरेस्ट होगा उसके अंदर, तो फिर फ़ायदा नहीं है ऐसी जगह पे आने का। तो मैं तो पीछे लग के पूछता हूँ कि हाँ भाई कैसा प्रोग्रेस चल रही है। हर हर चौथे पांचवें दिन मेरे पास से मैसेज जा रहा होता है। जो इंटरेक्शन नहीं कर रहा होता उसको मैं पूछ रहा होता हूँ हाँ भाई कैसा चल रहा है। तो मैं कहाँ पे था? सर्टिफिकेट, ओके सर, दिस इज़ अ प्रॉब्लम कि हम स्टडी वीज़े पे ऑस्ट्रेलिया आए हुए के बाद ऑस्ट्रेलिया रहे एग्ज़ाम दें। ये बात मैं शायद डिस्कस कर चुका हूँ अच्छे से कि ऑस्ट्रेलिया आके एग्ज़ाम देना और पाकिस्तान में एग्ज़ाम देना, देयर इज़ नो डिफरेंस। अस्सलाम वालेकुम। नाउ अडेज देयर आर इशूइंग ऑन टाइम लाइक मे बी 15 days सिंध फार्मेसी काउंसिल। अरे भाई, अरे वाह वाह, 15 दिन के अंदर दे रहे हैं। माय गॉड, मैंने तो कभी देखा नहीं ऐसा कुछ कि फार्मेसी काउंसिल इतना तेज काम करे पाकिस्तान में। ऐसा नहीं, अमेजिंग इन्फॉर्मेशन।
सर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है कैप्स के लिए? नहीं, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं, यहाँ पे हम थे। इसके बाद सर बाद में प्लीज गाइड कर दें किस बारे में। डू दे प्रोवाइड स्पाउस वीजा? यस, इफ यू आर मैरिड यू कम एज अ फैमिली। ऑस्ट्रेलिया लव टू ब्रिंग फैमिलीज, यस। उस्मान कहते हैं आई वाज लुकिंग ऑन APC वेबसाइट सो द असेसमेंट कैंडिडेट हैव टू सबमिट बर्थ सर्टिफिकेट एंड ऑफिशियल फोटो बेयरिंग। तो बर्थ सर्टिफिकेट तक ना जाएं, ज़रूरी नहीं कि बर्थ सर्टिफिकेट जमा करें, आपको सिर्फ पासपोर्ट चाहिए जिसमें आपकी फ़ोटो है। आप अगर चाहें तो अपना CNIC या ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी जमा कर सकते हैं, एक्सपायर भी है तब भी चला दें उठा के। बर्थ सर्टिफिकेट बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है पाकिस्तान में, तो उसकी वजह से अपना केस डिले ना करें। उनको कोई बर्थ सर्टिफिकेट लेके कुछ ज़्यादा चेक छानबीन नहीं करनी, उनको सिर्फ फोटो ID वाले 2 डॉक्यूमेंट चाहिए। आप पासपोर्ट तो है ही आपके पास, और दूसरा ये जो CNIC होता है जिसमें आपका नाम इंग्लिश में लिखा हो वो काफ़ी है उनके लिए, या ड्राइविंग लाइसेंस पाकिस्तान का उसमें भी आपका नाम इंग्लिश में लिखा होता है, फोटो होती है। या फिर यहाँ पे पाकिस्तान में मेरे ख्याल से कोविड वैक्सीनेशन का कार्ड भी होता है जिसके ऊपर फोटो लगी होती है, नाम लगा होता है, वो ही आप चला सकते हैं उसके अंदर। उनको सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट चाहिए। कैप्स इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। फ़ी इज़ $350 और 3050। फ़ी जो है स्टेट नॉमिनेशन की सद्दाम वो फीस है वहाँ की, जो आपने लिखी है $350। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ PTE टू एक्सपायर? 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के बाद एक्सपायर हो जाता है। व्हाट शुड बी द फर्स्ट PTE और कैप्स? PTE कर लो भाई, जान छूट जाएगी। कैप्स कर लो जो भी टाइम है, आई वुड रिकमेंड दैट। PTE पहले कर लो। आई हैव अ क्वेश्चन, पूछें? डू आई नीड ए जॉब ऑफर टू अप्लाई फॉर स्टेट नॉमिनेशन? नो सर, नो नो, ऐसा कुछ नहीं है। जॉब ऑफर के बगैर आप स्टेट नॉमिनेशन करेंगे, ये नया क्वेश्चन कोई लेकर आ गए, ची कोई है, CHIE, ये कंफ्यूज कर देंगे सब लोगों को। जॉब ऑफर कहाँ से आ गई? पहले आप स्टेट नॉमिनेशन अप्लाई करो, स्ट्रेट वीज़ा लो और पहुंचो ऑस्ट्रेलिया, फिर जॉब आएगी। गिव मी 10 एज वेल, संदस कुरैशी कह रहे हैं, ये कह रही हैं। रेज योर हैंड, आई विल गिव यू। अच्छा, आपने उनको जवाब दे दिया। प्लीज एक्सप्लेन कैप्स एग्जाम, व्हाट इट्स डिफिकल्टी लेवल, हाउ मच स्टडी रिक्वायर्ड? ओके, गुड क्वेश्चन अदनान फारूक, वेरी गुड क्वेश्चन। कितना डिफिकल्ट होता है? बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम उसको राइट तरीके से टारगेटेड पढ़ाई करें तो वो इजीली मैनेजेबल है। ठीक है, इजीली मैनेजेबल है। टारगेटेड पढ़ाई करनी है, हमें कोई पूरा उठा के PharmD का कोर्स नहीं पढ़ना है 5 साल का, हमने टारगेटेड पढ़ाई करनी है। उनके टारगेटेड टॉपिक्स हैं, उस पर कमांड होनी चाहिए। उनके कोई 20 टॉपिक्स हैं, उसमें से ही वो सवाल देंगे। 10 टॉपिक्स में से पेपर 1 में देंगे, 10 सवाल पेपर 2 में देंगे, और हर टॉपिक में से 10 क्वेश्चन डाल देंगे, और उन 10 में से वो चेक करेंगे कि आपने 8 सही किए, 7 सही किए हर टॉपिक में से। तो अगर आपने हर जगह से 80% कर दिए हर टॉपिक में, तो आप समझना कि आप पास हो गए। तो वो जो 50% वाली लॉजिक है ना, वो तो इलॉजिकल चीज़ है, उस पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो ये आंसर है इसका। टारगेटेड पढ़ाई करनी है, और 2 महीने से 2.5 महीने इज मोर देन इनफ। व्हाट इज द एज लिमिट फॉर अप्लाइंग फॉर PR? एज लिमिट 44 से ऊपर होगा तो आपका काम खत्म, यू कैन नॉट कम टू ऑस्ट्रेलिया। 44 से नीचे होना चाहिए। वो व्हाट इज द एज लिमिट फॉर अप्लाइंग फॉर कैप्स और फॉर टेस्ट? कैप्स टेस्ट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। वो 50 ईयर वाले बंदे ने भी ये भी किया, लेकिन उसका सिटीजनशिप था यहाँ पे, तो उसने वो भी कर लिया। ठीक है, लेकिन आप बाहर से आ रहे हो तो यू नीड टू बी अंडर 44 ईयर। सर दिस इज पॉसिबल कि हम स्टूडेंट वीज़े पे आ जाएं? फराज साहब फिर पूछ रहे हैं स्टूडेंट वीज़े पे आ जाए? भाई स्टूडेंट वीज़े पे आपके पास पैसा बहुत है, आ जाए, कोई मसला नहीं है, आ जाए। अब्दुल हक ब्रदर प्लीज चांस अदर इज विल। अच्छा, ये हाउ द वेदर कंडीशन इन रूरल? ओह वाओ, ओके, वेदर कंडीशन तो बहुत ही ज़बरदस्त है ऑस्ट्रेलिया की। हर तरीके का मौसम है यहाँ पे, बारिशें बहुत होती हैं, गर्मी भी बहुत पड़ती है। कनाडा की तरह बर्फ़ नहीं होती यहाँ पे, कुछ जगहों पे होती है स्नोई इलाकों में, बाकी सब जगह नहीं होती है। बहुत अच्छा मौसम है। आई लव ऑस्ट्रेलियन वेदर। खुला है, स्पोर्टिंग वेदर होता है, हर जगह स्पोर्ट्स हो रहे होते हैं। क्रिकेट एक बहुत बड़ा स्पोर्ट है जो कि हमारे मुल्क में भी अभी PSL खेला गया है। तो यहाँ बिग बैश होता है, यहाँ शेफील्ड शील्ड होती है, यहाँ पे हर दफ़ा कोई 6 महीने टका के क्रिकेट होती है, 6 महीने टका के फुटी होती है। तो वेदर बहुत अच्छा है, खुला वेदर है, बहुत इंजॉयमेंट वेदर है, आउटडोर के लिए बहुत ज़बरदस्त वेदर है, बारबेक्यू करने के लिए बहुत वेदर है। सर आई हैव ए क्वेश्चन। ओके, कौन है ये? YMC, रेज योर हैंड। अच्छा, आई हैव ए क्वेश्चन। सर डू वी नीड टू रजिस्टर एज अ फार्मासिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया टू वर्क एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव? ओह माय गॉड, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब जो है ना, वो यहाँ पे गोरों को मिलती हैं। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ के तरह से बात करते हैं, उनको डॉक्टरों को जाके इम्प्रेस करना होता है। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जो फील्ड है ना, वो एक स्पेशलाइज फील्ड है, उसमें ना ओवरसीज़ के लोग आते हैं, बहुत थोड़े से होते हैं, बहुत लिमिटेड लोगों को जॉब मिलती है।
आप ये नहीं समझना कि आपने मार्केटिंग में काम किया और आपको यहाँ मेडिकल रैप की जॉब मिल जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। आप ढूंढते रहोगे, टाइम ज़ाया करते रहोगे। बेस्ट ये है कि कैप्स करो, जॉब में घुस जाओ, एक्सपीरियंस गेन करो, ताल्लुकात बनाओ और फिर इसमें आ जाओ। शौक ही है लेकिन ये वाला बात पे पहले कर लो, 3-4 साल एज ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट काम कर लो, उसके बाद आ जाना। हो जाता है लेकिन टाइम लगता है। कैन समवन ट्रांसलेट द बैंक स्टेटमेंट रिस्पॉन्स? अच्छा, ये कोई जिम्बाब्वे से है जी, ओके। ओए, नॉट नेसेसरी, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, आपने बता दिया, नो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड। डू आई नीड टू जॉब ऑफर टू अप्लाई फॉर? नो 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 नो। इसरार खान, कैन यू प्लीज गाइड अदर्स? इसरार खान, कंवल रानी, इसरार खान, can you please share us, can you please share with us? इलियास कह रहे हैं, इलियास क्या कह रहे हैं? डॉक्टर इलियास डॉट पता नहीं क्या, उन्होंने अपनी ईमेल लिखी, आई डोंट नो क्या कह रहे हैं, क्या सवाल है उनका। कैन यू प्लीज सेंड मी दी मटेरियल फॉर कैप्स प्रिपरेशन? देखिए आनम, आपको मटेरियल उसी वक्त मिलेगा जब आप कैप्स की असेसमेंट डाल देंगी। ज्वाइन द कैप्स ग्रुप, ज्वाइन द कैप्स ग्रुप, ओके। फर्स्ट टाइम, काइंडली गाइज, वन एट अ टाइम, दैट्स गुड। ट्रबल इन लिसनिंग। स्टडी वीज़ा पर 3 ईयर में सिटीजन मिल रही है, जॉब पर्पस के लिए जा सकते हैं। ये कौन मिसगाइड कर रहा है? देखें, ये रूमर छोड़ी है किसी ने, यहाँ पे बहुत ही गलत कमेंट छोड़ा है किसी ने। अनम शेख कौन है? कह रहे हैं कि स्टडी वीज़े पे 3 साल में सिटीजनशिप मिल रही है। ऐसा तो कहीं भी नहीं हो रहा। और ये खुद ही समझ में आया, खुद ही कमेंट लिख दिया उन्होंने उठा के, सबको कन्फ्यूज़ कर दिया। ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है। 5 साल तो स्टैंडर्ड है आपको ऑस्ट्रेलिया में रहना है, उसके बाद देखेंगे, टेस्ट पास करेंगे, ये होगा वो होगा, सिटीजन अच्छे गुजरे होंगे। अगर कोई खुदा खास्ता किसी ने आपके खिलाफ पुलिस केस ना कर दिया, आपकी सिटीजनशिप ही नहीं होगी। तो 3 साल में कौन सी हो रही है? कोई प्राइम मिनिस्टर के भतीजे भांजे हैं लोग क्या, जिनको 3 साल में सिटीजनशिप मिल रही है? कुछ नहीं है ऐसा। रॉन्ग खबर, रॉन्ग न्यूज़ ना छोड़ें सर। ये कौन है? अनम शेख, आप रॉन्ग खबरें ना छोड़ें हमारे ग्रुप में। ऑन स्टडी वीज़ा यू गेट 2 years ऑफ स्टडी एंड देन 4 to 5 year पोस्ट, ये वो ड्यूरेशन, यू कैन फाइल अ PR। ये उमेश उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। प्लीज़ पे, प्लीज़ शेयर द कैप्स मटेरियल। नहीं, अभी नहीं। स्टडी हु हैज़ आस्क्ड द क्वेश्चन, वी विल शेयर कैप्स टेस्ट पेपर्स इन व्हाट्सएप ग्रुप। इमरान मकसूद कहते हैं, ये कौन है? आई डोंट नो, ओके। डू वी नीड बैंक स्टेटमेंट फॉर नॉमिनेशन? नो, I think so. State asked for a state nomination? No. A state nomination, no. If a state has given you a pre-invite, then there is no need for bank statement. Bank statement की ज़रूरत ही नहीं है भाई। I know I'm unable to raise my hand in a meeting. किंजार कहते हैं, kindly let me जरा ये सृष्टि, इनको कहा था क्वेश्चन कहने बताने के लिए, लेकिन आई थिंक उस वक्त कॉल कट हो गई थी उनकी। अच्छा ठीक है, मैं इनका क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। काइंडली लेट मी नो, कैन अ फार्मासिस्ट वर्किंग गवर्नमेंट अप्लाई as Australian government? आपसे क्वेश्चन मैंने पूछा था इनके बिहाफ पे। Just been working in a state level institution and then leave to go। ये मुझे समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट में काम कर रहा है, कोई ड्रग इंस्पेक्टर है और वो फिर ऑस्ट्रेलिया आना चाह रहा है, इस तरह का मुझे सवाल लग रहा है। जो कि गवर्नमेंट ओन अ फार्मासिस्ट, नहीं, बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इनको या तो ज़बानी बोलेंगे हम। उस वक्त भी हमने यही अज्यूम किया था कि शी इज टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट जॉब इन पाकिस्तान। जी ठीक है, देख लेंगे हम, इनका नाम मैंने लिख लिया, अगर दोबारा आए तो मैं बात कर लूँगा, पूछ लूँगा। हाँ, ये BS-17 की बात आ गई ना, देखेंगे गवर्नमेंट की बात कर रही है। पाकिस्तान में 17 ग्रेड 18 ग्रेड की जॉब पे कोई है तो वो ऑस्ट्रेलिया आगे किस तरह, तो ऑस्ट्रेलिया को क्या लेने देना? ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन जो है वो शायद, या पाकिस्तान गवर्नमेंट एतराज़ करेगी कि आप वहाँ से जॉब छोड़कर आएँ और यहाँ जॉब करें, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है। और अगर आपने एम्प्लॉयर को बता दिया इंटरव्यू में कि आपकी जॉब है वहाँ पे, तो वो नहीं लेगा आपको। वो कहेगा आपके पास इनकम आ रही है तो आप तो काम ही नहीं अच्छा करोगे हमारे लिए, परफॉर्म ही नहीं अच्छा करोगे। तो ये होता है, मैं जानता हूँ 2-3 लोगों के साथ इंटरव्यू में हुआ, इंटरव्यू में फेल हो गया उनका, क्योंकि उन्होंने शायद बता दिया था कि मेरे पास तो इनकम चल रही है पाकिस्तान में। वो समझे कि बड़ी बात होगी किसी को बताना, उन्होंने उसको वही इंटरव्यू बंद कर दिया उसका। ये हुआ था। How many times we can attempt the CAPS exam if someone doesn't pass? I think 2 से 3 अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है इसके ऊपर। 3 times a year दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देने का क्यों शौक है, एक दफ़ा दें, एक दफ़ा पास करें और आगे चलें। Also about jobs in community, Australia is designed in a way that many people get their medication in community. Yes, that's true. Yukon कह रहा है, Tayo कह रहा है, very good. Thanks for wonderful session, Zohe for hosting. आपकी तारीफ की उन्होंने, thank you. और ये हैं, okay.
hospital position is based on payment system. I don't know. I come to know Australian government does not own a farmer. I come to know that Australian government does not own a pharmacist who was working for a state level institution. What should a government servant do? That's मैं इसको समझ नहीं पा रहा इस क्वेश्चन को. वेरी ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू. और ये सवालात हैं ATO के, आपने शायद लिंक शेयर किए हैं, दैट्स वेरी गुड. टाइवन ने शेयर किए हैं शायद. ओके, फर्स्ट लेट्स एंटर इन ऑस्ट्रेलिया देन वरी अबाउट द टैक्सेस. ये भी बहुत ज़बरदस्त आंसर है किसी का कि पहले एंटर तो हो जाओ ऑस्ट्रेलिया, फिर देख लेंगे टैक्स वैक्स. सही है. How many times we can attempt the CAPS system and how many years the CAPS is valid? CAPS is valid for 3 years. How many times? 3 times in a year. We are interested to join our network. Okay. Can someone translate in Urdu? Or can someone translate in other language? Bring visa? Yes. Bring spouse ला सकते हैं, बच्चों को भी ला सकते हैं. Important question that please in English. Important question that you can. ये बड़ी अच्छी बात लिखी है. English तो बात करें. English पे हम बात कर रहे हैं. How much IELTS band ये हम discuss कर चुके हैं. 7. Private cover for family $1,000 per annum dear. Check OCH Australia. ठीक है, ये बहुत अच्छी बात की है, मिल जाता है. बूपा का कवर एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मुझे बतानी है. बूपा एक इंश्योरेंस होती है, प्राइवेट हेल्थ कवर, जिसमें फ्यूनरल, पाकिस्तान में जिसको हम तदफीन का सिलसिला कहते हैं, जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो तदफीन की जाती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत ही महंगा कॉस्टली प्रोसीजर है. तो जो बूपा जो कवर इंश्योरेंस करती है वो, उसमें मैक्सिमम $10,000 की फंडिंग होती है. अगर आप या किसी की डेथ हो जाए तो वो क्लेम कर सकते हैं. तो प्राइवेट हेल्थ कवर का ये भी फ़ायदा है. खुदा ना खास्ता किसी को ऐसा सानिया ना हो, लेकिन ये पता होना चाहिए. बहुत लोगों को नहीं पता होता ये बात. ठीक है, प्लीज़ एक्सप्लेन इन इंग्लिश, क्योंकि अभी एक फार्मासिस्ट है जिनकी डेथ हुई है पाकिस्तान में, शायद आपने सुना हो, ऑस्ट्रेलिया में. तो उनका ये प्रोसेस किया गया था अभी इंश्योरेंस से, तो वहाँ से कुछ हेल्प हुई थी. Because it's important, CAPS material हो जाएगा. English will be much helpful. Download Google Translator. लाल कह रहे हैं कि इंग्लिश में बात हो रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा, तो किसी ने बोल दिया कि आप गूगल ट्रांसलेटर लगा दें उस पर. वेट फॉर अ व्हाइल. सजेशन लाइन है. ओके ओके, प्लीज पुट सम लाइट ऑन इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट. हमने बात कर ली है. आई एम ट्रैवलिंग सो कनेक्शन इज इंटरप्टेड. ओके, अच्छा सर, स्टडी ग्रुप में कैसे करते हैं आप, वहाँ पे आ जाएं. ये इमरान मशहूद कौन है? ये कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप है? इमरान मशहूद कौन है? सर, इमरान मशहूद इज द प्रेसिडेंट ऑफ YPC गोमल यूनिवर्सिटी. अच्छा, एक्चुअली ओके ओके. तो ये वही ग्रुप है जो मैं जिसमें हूँ, या डिफरेंट ग्रुप है कोई ये वाला? सर ये डिफरेंट ग्रुप है, लेकिन उनकी कोलैबोरेशन से एक्चुअली हो रहा है ये. ओके, अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है. और समद भाई, आई कांट जॉइन द लिंक ड्यू टू सम रीजन, कैन यू प्रोवाइड योर व्हाट्सएप नंबर? ओके, इसमें लोग ज्वाइन कर लें आपके ख्याल से, या कुछ इसमें प्रॉब्लम? आई थिंक आपने लिंक्डइन का सेंड किया था, मेरे पास अभी है. आपने सेंड कर दिया सर सारे लिंक्स, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मैंने तो अपना सेंड कर दिया था, तो मुझे भी या तो ऐड करा दीजिएगा अगर उसमें हो. जैसे ये वाला ग्रुप है ना, मैं आपको भेज रहा हूँ, आप ही के नहीं, ये तो उनका है, ये अब्दुल रहमान का मैसेज में. आपका नंबर नहीं है जो है मेरे पास शायद, मेरे ख्याल से. सर मैं मैसेज करता हूँ आपको भी, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है. ओके ओके, नेक्स्ट सवाल है, can't open the link. How can we join the study group? स्टडी ग्रुप देखें, कैप्स करेंगे, असेसमेंट करेंगे, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं. How we can get better on LinkedIn account? Okay, आप अगर मेरा LinkedIn जाके देखें, जिसने सवाल किया सैयद सफदर हुसैन शाह, तो just try to copy what I have done. If you have done those courses, add those courses, add your degree, add your certification, and then you can uplift your. Okay, yes, your husband is right. Also, cost of insurance will go up. Okay. किसी ने लंबा सवाल किया है. सबा फातिमा कहती हैं, डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द फार्मासिस्ट हु आर वर्किंग इन पाकिस्तान मार्केटिंग डिपार्टमेंट फॉर 3 years? दे हैव ए चांस, दे डोंट हैव एनी चांस. नो, 189 90 कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज उनका कोई कैटेगरी नहीं है जिसमें वो असेसमेंट करा सकते. यू नीड टू डू कैप्स एंड देन कम एज ए विटास, एज ए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया नो एक्सपीरियंस वाले में करके आ जाए. विटासिस पे ना जाना, आपका लाइफ खराब हो जाएगा. विटासिस पे नहीं जाना. देयर इज नो
brighter chances. किसी ने नहीं किया हुआ है, ठीक है? Don't waste your time. Okay, yes, through Vitasis, just go on the website, research ये और okay, what does that ANZO code mean? ये ऑस्ट्रेलिया के कोड्स को डिफाइन करते हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के प्रोफेशन कोड्स को, उसकी ये एब्रिविएशन है. Zoin brother is also question. Vitasis की वेबसाइट किसने शेयर की? Is there any age limit for PR purpose? हमने बता दिया था 44 से नीचे हो तो सही है. Okay, किसी ने तनख्वाह फराज लिखते हैं $45 per hour ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है? ये तनख्वाह का रेट है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऐसे ही होता है फुल फ्लेश फार्मासिस्ट का रेट. ओके, यस, दे आर बेसिक, दे आर पॉइंट्स फॉर बेसिक एज पर्पस, बहुत अच्छी बात है. इंक्रीजिंग पॉइंट्स reduces the Department of Home Affairs. Sir, can you please make a guide or a group, those students who are fresh, okay, university graduate waiting for ये. If you want to join, we already have a group. अगर आप उसमें आ जाएं, स्टूडेंट भी उसमें आ सकते हैं, सब लोग उसमें अपनी तैयारी करके आगे बढ़ सकते हैं. शुक्रान फॉर द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन. कैप्स एग्जाम 2020, here we come. जबरदस्त. ये कौन है? मरियम कह रही हैं. आई डोंट नो मरियम, लेकिन आपका ये लिखने का जो स्टाइल है बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे लगता है कि यू आर रेडी, यू आर मेंटली रेडी. Okay, is there any opportunity for clinical pharmacies in Australia? बहुत अपॉर्चुनिटीज है. अनम शेख ने फिर सवाल किया, पहले वो कुछ सवाल कर रही थी कंफ्यूजन वाले, अब वो डायरेक्ट सवाल कर रही है क्लिनिकल फार्मासिस्ट पे. देखिए, आपको पहले फार्मासिस्ट बनना है, आपको रजिस्टर होना है इस कंट्री में, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं ना. तो पहले रजिस्टर हों, उसके बाद फिर जैसे मैंने आपको गाइड किया कि AACP की एक्रेडिटेशन ले लें, तो आप यू कैन वर्क एज क्लिनिकल फार्मासिस्ट, ठीक है? ओके, ऑन द लेफ्ट. व्हाट इज योर नंबर? जोहेब तलहा, व्हाट इज माय नंबर? ओके, आपका नंबर, आपको मैं नंबर देता हूँ. ये आपने मुझसे पूछा? मैंने भी आपको मैसेज कर दिया वैसे, और यहाँ पे मैंने को बाद में नंबर सेंड कर दिया था चैट में. जोहेब ताहिर. Yes, I got it. Yes, thank you. Okay. So I have 5 minutes. I have a few questions. I'm Hassan Ali. I'm also asking the question. My wife. अच्छा, ये आपने बात कर ली है, ठीक है? Okay. This is your WhatsApp, ठीक है? Currently working level 2 seller of as a medical writer. Okay. Do the caps. Come to Australia. Simple answer for you as well. Very informative session. Was this necessary? Confused in IELTS and PTE. If you confuse, do the PTE. PTE is much easier, and I can give you the preparation information for PTE. No problem. I have a lot of information. You can do the PTE exam by studying online. Do we need to do instantly after entering into Australia, or should we apply for Pakistan after CAPS? Do we need to get job instantly? Do we get job instantly? अचानक जॉब मिल जाएगी after entering? नहीं, अचानक नहीं मिलेगी. अचानक कुछ नहीं होता है. आपको अप्लाई करना होता है, आपको अपने रिज्यूमे को अपडेट करना होता है ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से, आपको अपने आप को मार्केट करना है, लिंक्डइन पे होना चाहिए, आप डिजिटली प्रेजेंस हो, आपके पास स्किल्स हो, ताकि आप रीच आउट कर सकें, कनेक्शन बनाएं, मेरे से कनेक्शन बनाएं, मेरे से रिक्वेस्ट डिस्कशन करें. लोगों से फार्मेसी गिल्ड की बॉडी, उनकी वेबसाइट पे जॉब लगी होती है, सीक वेबसाइट है यहाँ पे, वहाँ जॉब लगी हुई होती है, तो ये सारी एक्सप्लोर करनी होगी. और डोंट सेंड योर इमेच्योर CV, otherwise you will kill your chances. Make sure you have checked, you have cross-checked your CV with someone like me or some agencies where your CV is acceptable in Australian market. बहुत सारे लोग अपना CV चेक कराए बगैर भेज देते हैं और उनको जॉब नहीं मिलती है. तो मेक श्योर यू आर अवेयर अबाउट दिस पॉइंट. तो हर जगह की मार्केट का CV भेजने का तरीका अलग है, तो ऑस्ट्रेलिया का भी तरीका अलग है, ठीक है? डन. जबरदस्त. मेरे ख्याल से कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पे, कलीमुल्ला और बाकी सब सुन रहे हैं, तो आई होप कि यू हैव एंजॉयड द सेशन. एंड सेशन जो है वो काफ़ी लंबा गया. आई थिंक इज इट 3 hours? यस सर. यस, वेरी गुड. 3 बजे स्टार्ट किया था और 7 हो गए हैं. कितने बज रहे हैं आपके पास? यहाँ पे 7 हैं. 7 हो गए हैं. 3 ओके, इतना लंबा सेशन मैंने नहीं किया पहले आज तक. जबरदस्त. ओके, मेरा लास्ट सेशन 3 hours तक था, जो भी था पिछला. वो भी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, वो इतना लंबा सेशन था कि उसमें मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया था. आई वाजंट एबल टू डू. थैंक यू हर्बर्ट, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस, और होपफुली we'll share this recording very soon, or stay in touch
for your quick progress. I would advise quick progress का मतलब है कि जो वीजे वाला पर्चा है वो वैलिड है, वो उसको यूज कर लें, ठीक है, इंफॉर्मेशन को। ओके, मैं चलता हूँ, रात के यहाँ पे 12:40 हो रहे हैं, सुबह उठना है मुझे। Okay, thank you very much, sir, for your time. Okay, take care. Okay, assalamu alaikum. Thank you for organizing. Thank you for staying with me. Thank you very much. Thanks. Wow. Bye. Assalamu alaikum.